All right. So this is what we are going to cover today. We will look at the index first as to what is important in constitutional law for any LLM entrance exam, specifically CLAT, AILET, ILS, CUET, IIT Kharagpur. But otherwise also, if you just want to learn about the subject from a competitive exam point of view, then this will be very helpful for you, right? So see, first of all, you have to understand that constitution is very important for any entrance exam. Okay, I'm particularly talking about LLM entrance exams because in all of them, constitution forms a bulk of it, right? The weightage may differ from different exams, but we know that constitution will always be asked. Now, if you're preparing for CLAT, then you know that they will be asking case laws as well, but your basics understanding always has to be there. Okay, so if you have analyzed previous year papers, you would know that no matter what kind of pattern it is, be it recent cases, be it landmark judgments, if your base is clear, right, if your basic concepts are very good, then you will be able to solve maximum questions. Okay, so with that basics, we now need to proceed forward, right? Chalo. तो this is what we are dealing with. We know constitution is huge, तो हम पूरा तो obviously नहीं पढ़ेंगे. And that is also you need to understand कि whenever you are preparing for bulky subjects, okay, you always need to know what are the important areas and then you need to focus on them only. ठीक है, जैसे अगर हम starting से start करें, so the first and the most important thing in constitution will be the preamble. ठीक है, so today we will take a look at the preamble briefly कि preamble में हमारे लिए क्या important है, what kind of questions can come from preamble, right? Then we'll come to part one. Part one is not that important. ठीक है, part one में बस बहुत ही basic आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि what does part one deal with, what is the power of parliament, and how can it be done. Like for example, if restructuring has to be done in the country, right? Then who is empowered to do that, and what is the process for that? Okay, so very basics you need to know. Citizenship not very important. You can just read Article 11. Article 11 tells you that it will be the parliament which will be regulating citizenship. But other than that, you don't really have to read too much on part two. Okay? Constitutional Amendment Act, sorry, Citizenship Amendment Act जो आया था 2019 का, that has now become a little old, so I don't think that recent development is very recent as of now. But आप थोड़ा सा वो basic देख सकते हो. ठीक है, तो citizenship में भी ऐसा as such exam perspective से ज़्यादा कुछ नहीं है. Okay, now we come to the next part, which is part 3, which is fundamental rights. This obviously is very important. ठीक है, naturally fundamental rights से आपके सबसे ज्यादा questions आएंगे, not just because there'll be case laws on this, but in general fundamental rights यहाँ की clarity बहुत अच्छी होनी चाहिए, especially with respect to reservation, यानी कि articles 15 and 16. ठीक है, and in general basic clarity of the Bare Act with respect to what is right to equality. ठीक है, फिर हम right to freedom देखेंगे जिसमें article 19 and 21 and even 22 are very important. Right against exploitation is easy but of course important. Freedom of religion is very important because recently a lot of Supreme Court judgments have come on this and a 9-judge bench is currently sitting, right? So freedom of religion becomes very, very important. Okay, and then we have minority rights 29, 30, again important. Saving of certain laws, ये जो 4 provisions हैं, actually 3 because the last one has been omitted. These 3 are very important, but when you read them together with Article 368, which is amendment to the Constitution, ठीक है? तो जब हम amendment पढ़ेंगे, तो we will read it with these 3 articles because इसमें in general अगर आप isolation में पढ़ोगे, तो you will not understand how the law has developed. ठीक है, then we have right to constitutional remedies, जिसमें सबसे important है आपका Article 32, but उसके अलावा you also need to know what is Article 33 and 34. ठीक है, क्योंकि कभी-कभी पूछ लेते हैं कि मार्शल लॉ के प्रोविजंस कहाँ पे दिए हुए हैं या आर्म्ड फोर्सेस के रिलेशन में which article deals with it. So you need to know about 33 and 34. Okay, part 4 is important, but part 4 is easy because you need to know which article talks about which DPSP, right? So you don't have to, I mean, there is not much in it to read. You just have to remember one keyword with respect to the article number so that you are able to recall. For example, if I ask you where is what do you call village panchayats is given, right? Or where is uniform civil code given? So you should be able to answer questions like that. Okay, so part 4 is important, but there isn't anything to explain in part 4. It's mostly for you to memorize. Same applies for fundamental duties. आपको सारी 11 duties नहीं याद रखनी है. You just have to remember a few of them. Okay, for example, the fundamental duty with respect to protection of the environment. Okay, that's a very common question.
देन फंडामेंटल ड्यूटी विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ये 2-3 ही ड्यूटीज हैं जो आपको एग्जैक्ट क्लॉज के साथ याद रखनी है, ओके। देन वी विल कम टू पार्ट 5 and part 6, okay। Part 5 and part 6 has to be read together, okay। The union is what part 5 deals with, and then we have part 6 which deals with the state। अब यहाँ पे आपका पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इंडिया में व्हाट इज द स्ट्रक्चर, राइट। सो वी हैव अ लेजिस्लेचर, we have the judiciary, and then we have the executive, right। So these three organs, their composition, their working, their basic power and duties, they are given in part 5 and part 6, ठीक है। तो जब भी आप पार्ट 5 पढ़ो साथ में उसके यू हैव टू पैरेलली रीड पार्ट 6 एज वेल, क्योंकि जैसे पार्ट 5 है, पार्ट 5 का चैप्टर 1 है एग्जीक्यूटिव, राइट। तो जब आप यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ रहे हो, एट द सेम टाइम पिक द स्टेट एग्जीक्यूटिव एज वेल, बिकॉज थोड़े ही चेंजेस हैं, थोड़ा इधर उधर है, बट अदर देन दैट इट्स मेजरली सेम, right। So this is very important, but all articles are not important. When we'll take the class, I will let you know which particular article numbers are important for you to memorize, okay। So we will read the union executive and the state executive साथ में, फिर we will read the parliament and the state legislature from part 6 together, again in very brief। You don't need to know anything, everything about this। You need to just know the very basic article numbers, the ones where questions come from, ठीक है। फिर लास्ट में हम देखेंगे जुडिशरी, ठीक है। तो पहले यूनियन जुडिशरी, जहां पे वील टॉक अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, द कॉम्पोजिशन, द पावर, द जुरिस्डिक्शन, एंड देन सिमिलरली फ्रॉम पार्ट 6 वी विल टॉक अबाउट द स्टेट जुडिशरी विच इज द हाई कोर्ट, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल रीड दिस पार्ट। नाउ दीज 2 parts are very important, but although they seem lengthy, the amount of material you have to read from these is very less, okay। So it is mostly about just knowing the governance structure and knowing a few articles which are related to that, okay। Okay, so once we are done with this, of course we'll read about the ordinance making power also, which is given in article 123 and 213 of the constitution, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे यूनियन टेरिटरीज पे। यूनियन टेरिटरीज इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, पर्टिकुलरली आर्टिकल 239AA, ठीक है। आपको जनरली भी पता होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरीज में क्या गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है, बट अदर देन दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्ट 8 इज आर्टिकल 239AA विच डील्स विद द स्टेटस ऑफ दिल्ली। अभी एक रीसेंट जजमेंट भी आया था इन 2023, जहां पे इट वाज अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड द दिल्ली सीएम, राइट। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट 239AA बिकम्स एक्सट्रीमली रेलेवेंट, ठीक है। अब इसके बाद के जो पार्ट्स हैं वो उतने रेलेवेंट नहीं है, जैसे पंचायत नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मतलब आपको पार्ट नंबर पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम में दे मे आस्क यू व्हाट इज पार्ट 9A अबाउट, राइट। सो यू नीड टू नो दैट दिस इज अबाउट म्युनिसिपैलिटीज एंड यू नीड टू नो विच अमेंडमेंट एडेड दिस, ठीक है। बट अदर देन दैट इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो आपको इट्स ओके इफ यू डोंट नो अबाउट इट मच, राइट। तो पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन तीनों को आपको स्किप करना है। यू जस्ट हैव टू नो अबाउट देयर अमेंडमेंट नंबर्स एंड वेयर दे आर गिवन, ओके। नाउ विद रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज you need to know about Rajendra N. Shah judgment, okay। अभी थोड़ा पुराना हो गया, it came out in 2021 where the Supreme Court has struck down this part partially, ठीक है। तो अभी ये पूरा constitutional नहीं है, so you need to know about that judgment, कि what that judgment said and what part has been saved by the judgment, ठीक है। कि किस part को उन्होंने कहा है कि ये constitutional होगा but the remaining of it is not constitutional, and why unconstitutional। I'm sorry, yes ma'am, could you please repeat the name of judgment that you just said? I will be dealing with that in the classes when we come, but मैं एक बार आपको I'll just type it out on the screen, okay, ठीक है। बट हम इसको डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। राजेंद्र एन शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो 2021 केस, राइट। सो वी विल टॉक अबाउट इट। अभी मैं बस आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, राइट। हमारे लिए क्या क्या रेलेवेंट है, ओके। सो राजेंद्र एन शाह के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्ट 9B is partially unconstitutional so far as it applies to state municipalities, for the simple reason being that it does not follow the procedure of Article 368. Okay, they didn't say that it violates the basic structure. Okay, it was not struck down because of that. It was struck down because it didn't follow the procedure that is given in 368(2) proviso, where it is required that you have to take state ratification of at least half of the states for certain amendments to come. ठीक है,
तो उस वजह से दिस हैज बीन partially struck down, not entirely. Okay. Anyway, we will talk about this in detail when we deal with this topic, right? फिर हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम. फिर आएंगे रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स. इसमें लेजिस्लेटिव रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स 245 टू 255. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ से काफी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली फ्रॉम आर्टिकल 254 जो बात करता है इनकंसिस्टेंसी की विद रेस्पेक्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, तो 245 से 255 काफी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपको कुछ ही आर्टिकल्स पता होने चाहिए. ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, बट वी विल नॉट रीड द आर्टिकल्स फ्रॉम दिस पार्ट. ओके, सेम अप्लाइज फॉर द नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट 12 विच डील्स विद फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स. इसमें सिर्फ आपका आर्टिकल 265 रेलेवेंट होता है जो बात करता है टैक्सेस की, कि टैक्सेस कैसे इम्पोज होंगे इंडिया में. ठीक है, फिर यहाँ पे मिसलेनियस है. व्हेन वी विल कम टू द क्लासेस आई विल टेल यू 1-2 आर्टिकल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, बट मोस्टली दिस पार्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर आएंगे बोरोइंग पे. बोरोइंग इज नॉट रेलेवेंट. 300 हम देख लेंगे थोड़ा सा. ठीक है, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स और प्रोसीडिंग्स होते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो किसके नाम पे होते हैं. ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. 300 is slightly important. It talks about right to property, which earlier was a fundamental right, but अभी वो fundamental right नहीं, right? फिर हम आएंगे ट्रेड कॉमर्स पे. इस पे भी नहीं, I'll just tell you 1-2 articles, but trade commerce is also not very important for exam. ठीक है, then we come to the next part, services under the union and state. ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में उतना रेलेवेंट नहीं है, बट इट इज वेरी रेलेवेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ठीक है, तो वेन एवर वी विल टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यू नीड टू नो अबाउट आर्टिकल 310 एंड 311. ठीक है, क्योंकि ये बात करते हैं कि जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं, उनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और उनका जो स्पेशली रिमूवल होता है या सस्पेंशन होता है, वो कैसे होगा एंड व्हाट इज द बेसिक प्रोसीजर फॉर दैट. ठीक है, तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विस मैटर्स, दिस इज व्हेन 309 to 311 बिकम इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन में आप थोड़ा सा देख सकते हो कि पीएससी मेंबर्स को रिमूव कैसे किया जा सकता है. रिमूवल इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अदर देन दैट दिस पोर्शन इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट. Okay, next part very important, 14A talks about tribunals. Both articles important. There are 2 judgments also, Sampat Kumar and Elchand Kumar. Again, I will talk about them later when we deal with this in the coming classes. But part 14A very important. Okay. Then we have election. Election में आपको basic पता होना चाहिए कि election petition क्या होती है. ठीक है, तो हम election petition की बात करेंगे and that's it. Now this is a very miscellaneous sort of part, the next part which is part 16. ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ आर्टिकल्स पता होंगे जो हम स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15 एंड 16. ठीक है, तब वी विल टॉक अबाउट देम. फॉर एग्जांपल 335. ठीक है, जो बात करता है कि हाउ एडमिनिस्ट्रेशन में मेरिट मेंटेन होनी चाहिए इवन व्हेन यू आर डीलिंग विद रिजर्वेशन. ओके, देन वी हैव these things, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी एंड बैकवर्ड क्लासेस. ओके, एससीज कहाँ पे डिफाइंड है, एसटीज कहाँ पे डिफाइंड. ठीक है, ये उनकी डेफिनेशंस नहीं है, डिफाइंड वो कहीं बाद में है, लेकिन दीज टॉक अबाउट हाउ दे विल बी डिटरमाइंड. ठीक है, और ये बहुत ही रीसेंट अमेंडमेंट था 2021 का एससीबीसीज के रिस्पेक्ट में, सो दिस ऑल्सो बिकम्स रेलेवेंट. ठीक है, बट ऑल दीज थिंग्स वी विल टेक अप व्हेन वी आर टेकिंग अप reservation. ठीक है, तो आपको इसको अलग से नहीं पढ़ना है. when you are dealing with article 15 and 16, when we are talking about reservation for SCs, STs, SCBCs, there that is when you have to pick up these areas as well. ठीक है, now we come to official language. यहाँ पे कुछ ज्यादा important नहीं है. this part is okay. emergency provisions हम एक बार देख लेंगे, ये important है, इसकी एक basic understanding आपको होनी चाहिए. ठीक है, miscellaneous में as such कुछ नहीं है. आर्टिकल 366 में डेफिनेशन दी हुई है, इसमें हमारे लिए 2-3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अगेन जो हम रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे. ठीक है, तो एससी एसटी की डेफिनेशन और एससीबीसी की डेफिनेशन. ओके, देन लास्टली वी हैव आर्टिकल 368, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी आर डन विद द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो नाउ टेल मी इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन. ओके, सुधाकर has asked if part 5 is important or not. Yes, part 5 is very important. Okay, part 5 which you have to read along with part 6. Okay, so the state and the union, यहाँ आपको साथ साथ में you have to read it. All right. Excuse me, ma'am. Yes.
Ma'am, from the seventh schedule, what all things are important? Like what all entries we must remember? You don't have to remember entries. Okay, when we will talk about articles 245 to 254, ठीक है, तब मैं आपको बता दूंगी कि जो सेवेंथ शेड्यूल की तीन लिस्ट हैं उनको कैसे अप्रोच करना है. ठीक है, यू कांट मेमोराइज एंट्रीज, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. Yes, because no, there are a lot of entries only relevant to the judgment. हाँ, तो वो यू विल नॉट बी एबल टू मेमोराइज देम. जैसे कुछ है, फॉर एग्जांपल जब हम वो एनसीटी दिल्ली वाला केस लेंगे विच इज अबाउट आर्टिकल 239AA. ठीक है, Yes. उसमें दो तीन एंट्रीज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंट्री आई थिंक 1, 2 एंड 18 ऑफ द स्टेट लिस्ट. ठीक है, तो वो मैं आपको तभी बताऊंगी व्हेन वी डील विद दीज आर्टिकल्स. ठीक है, Okay. ऐसे सेपरेटली वी डोंट हैव टू मेमोराइज एंट्रीज. चलो, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे विच इज द प्रीएम्बल. चलो ठीक है. Okay, now we come to preamble. ठीक है, अब now that we are doing a quick revision of it, we need to have that pace जहाँ पे we don't go in too many details because I am coming with that understanding कि आप लोगों को कुछ basics तो पता है, right? तो उसके हिसाब से I will be revising these concepts. अगर आपके basics अभी भी clear नहीं है, if you're preparing for other exams जो next year होंगे, तो आप एक बार पहले अच्छे से बैराक पढ़ोगे and then you will come back and revisit these lectures. Okay? ठीक है. So now we come to the preamble, right? Now preamble is very important from in general understanding of the constitution. बट अगर हम बात करें एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो प्रीएम्बल में से कितने ही क्वेश्चंस आएंगे, राइट? सो फर्स्टली द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो अबाउट द प्रीएम्बल इज द amendment that has happened in it. Okay, very common question comes that in preamble which of the following amendments added certain words. ठीक है, तो दो तरीके से पूछ सकते हैं. they may ask you either the amendment number, ठीक है, कि कौन सा amendment था, which year it came in, okay, or they may ask you what things were added by this amendment. ठीक है, कि amendment ने क्या चीजों को add किया preamble में. ठीक है, तो ये तो बहुत ही basic question है. the amendment was 42nd constitutional amendment which came in the year 1976. ठीक है, 42nd अमेंडमेंट था, 1976 में आया था. दो चेंजेस किए इन्होंने. ठीक है, एक तो इन्होंने यहाँ पे चेंज किया, ये जो टर्म है यहाँ पे इन्होंने सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ठीक है, ये दो टर्म्स ऐड किए. फिर यहाँ पे यूनिटी ऑफ द नेशन हुआ करता था जिसको चेंज करके दे डिड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. ओके, सो आई थिंक दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर. there's only one amendment and it has made two changes, right? So ये एक तो ये question बनता है. Now the second question that comes is whether preamble is a part of the constitution or not. ठीक है, मतलब whether we can rely on the preamble or not to interpret the constitution. ठीक है, तो मैं आपको एक बार पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिखाती हूँ, फिर I'll tell you about two judgments which are important in this. ठीक है, so now let's cover a bit of theory parts. Okay, first things first, there would be two kinds of laws. Okay, one होते हैं laws governing the state जिनको हम public laws भी बोलते हैं. पब्लिक लॉज का काम ही होता है टू गवर्न द पब्लिक विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट, राइट? कि मतलब पब्लिक के स्टेट के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स और इंटरेस्ट होते हैं उसको गवर्न करने के लिए हमारे पास होते हैं पब्लिक लॉज. ठीक है, तो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो लॉ गवर्निंग द स्टेट है, इट्स अ पब्लिक लॉ, राइट? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये सारे फर्स्ट कैटेगरी में फॉलो करते हैं. एंड देन वी हैव लॉज विच गवर्न द मेंबर्स ऑफ द स्टेट, दैट इज द सिटीजन. ठीक है, अब ये लॉ का स्टेट से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन और बिटवीन पर्सन्स, राइट? तो इसमें आपके आते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एक्सेट्रा. ठीक है, जहां पे भी हम कंडक्ट गवर्न कर रहे हैं मेंबर्स का या सिटीजन का, दीज लॉज आर प्राइवेट लॉज. ओके, सो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है. अब हम आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होता है. ठीक है, आप सी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड डायरेक्टली, राइट? लाइक they will not be asking such easy questions, but you should know about them still because they help you answer questions which are a little complicated, which have to be understood by deductive reasoning. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है टू एस्टैब्लिश द फंडामेंटल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीन ऑर्गन्स हैं. अब ये तीन ऑर्गन्स को एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है. ठीक है, इनका स्ट्रक्चर ले डाउन किया है, देयर कॉम्पोजिशन, देयर पावर्स हैव बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन.
It talks about the relationship between organs as well, right? For example, the whole part 12 talks about legislative relations, administrative relations, right? It also talks about कि judiciary के पास कितनी power होगी, right? So it also talks about कि ये जो तीन organs हैं ये आपस में कैसे interact करेंगे. Okay, so this is the primary purpose of constitution, to basically establish कि हमारे देश में किस type की government होगी, or not just government, but how will our whole country be governed by different organs. Okay. Okay. Now there's a difference between these two terms, constitution and constitutional law. Okay. Constitution is a document जो हम अभी पढ़ रहे थे, the bare act that we were referring to. Okay, so constitution is a narrower concept. It's a document that is called the Constitution of India, right? Constitutional law on the other hand is a broader concept, क्योंकि constitutional law में constitution भी आता है, उसके अलावा भी कई चीजें आती हैं. जैसे अगर हम इंडिया के context में भी talk about it, then we have the constitution, we have judgments which equally form part of constitutional law, we have constitutional conventions जो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि what do they mean. So all these things are part of constitutional law. Okay? So there's a difference between the term constitution and constitutional law. अब आते हैं constitutional conventions पे. ठीक है, वैसे constitutional conventions are basically traditions, okay, which have been followed for a long time, and that is why they are followed. Okay, constitutional conventions आपके constitution में नहीं दिए हुए, they are not written in the constitution, right? तो ये जो पूरा चीज है, this is basically followed because of long standing practice or tradition. ठीक है, तो कई सारी चीजें होती हैं, जैसे for example the way in which things are done. Okay, so आप parliament का जो भी conduct होता है, जैसे for example when annual budget is passed in the month of February, right? तो क्या करती है finance minister जो है हमारी, she takes the budget and it is presented in the month of February to the parliament, और parliament में फिर वो debate होता है और pass होता है, right? अब ये जो process है, this is not given in the constitution, right? Like this is a part of constitutional conventions कि वो पहले उसको they take it in a leather binding something, okay? तो ये सारी जो चीजें हैं कि ये इसी तरीके से होगा, they are not given in the constitution or in the rules, they are done because they are part of a long standing practice. ठीक है, तो कुछ चीजें constitutional convention होती हैं. मोस्ट लाइकली आपको ऐसे एग्जाम्पल्स वहीं पे मिलेंगे कि पार्लियामेंट में जो भी चीजें होती हैं, मोस्टली दे आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस. ओके, अब इंडिया में उनका इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है क्योंकि वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से कन्वेंशंस हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूके बिकॉज वहां पे दे डोंट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस. ओके, अब कुछ फीचर्स देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. इट कैन बी रिटन और अनरिटन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इट कैन बी यूनिटरी और फेडरल. यूनिटरी का मतलब होता है कि एक ही गवर्नमेंट होगी, यानी कि सेंटर पे. फेडरल का मतलब होता है कि there'll be two tier government. There'll be a government at the center and then there'll be a state government as well. So India is a federal country. Okay, quasi federal बोलते हैं हम क्योंकि we have a strong center, right? Like even though state governments also have power, but the center has more power than them. So we have a quasi federal structure. ठीक है, Constitution is a organic living document. इसका मतलब ये होता है कि Constitution is not supposed to be stagnant. Okay, it is supposed to be growing with time. It is supposed to be changing with time. Okay, so इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो Constitution है वो living document है या फिर वो organic document है. Okay, इंडिया में Constitutional supremacy है. Constitutional supremacy का मतलब होता है that Constitution is supreme. Okay, so हम अगर किसी की भी बात करें, whether we are talking about parliament, executive or judiciary, the first and the only important thing is what does the constitution say about their powers. Okay, तो कोई भी एक ऑर्गन हमारे यहाँ सुप्रीमेसी क्लेम नहीं कर सकती है because इंडिया में constitution is supreme. Okay, and judiciary is the protector of the constitution क्योंकि judiciary का काम होता है constitution को interpret करना, apply करना, state के action को देखना whether it is abiding the constitution or not. So judiciary is called the guardian and the protector of the constitution. ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे कि अब इस टर्म का क्या मतलब होता है. ओके, अभी हमने क्या देखा था? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अनदर टर्म. नाउ देयर इज अ थर्ड टर्म व्हिच इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ क्वालिटी.
ठीक है, it's not a book, we are not talking about anything, we are talking about a quality that a constitution may or may not have. Okay, see, constitution किसी भी country का हो सकता है, right? वो constitution में whether it has certain qualities or certain features or not, that is what is meant by a country having constitutionalism. ठीक है, for example मान लीजिए कोई dictator country है, वहां पे they don't have democratic elections, right? They don't have a fair law making process. That country may also have a constitution, right? Like they can write a document and call it the constitution of their country. But does it mean that it is constitutionalism also or not? Okay, so the answer is no. Constitution is one thing, it's a document. Constitutionalism is a quality. ठीक है, अगर आपके constitution में checks and balances हैं, ठीक है, if it is putting a check on the functioning of the other organs, right? Fundamental rights are also one very good example of constitutionalism. ठीक है, तो आपका constitution कितने rights को protect कर रहा है, whether it is giving fair power to the governing bodies or not. Okay, all of these things indicate whether your country will have constitutionalism or not. ठीक है, तो constitutionalism का main काम होता है ये ensure करना कि आपके देश में limited government हो. Limited का मतलब है कि unlimited power नहीं होनी चाहिए किसी भी organ के पास, right? तो जो भी organs हैं, they should have balanced power. Their power should be kept under checks and balances. Okay, so that is what is meant by constitutionalism. अब ये कुछ factors हैं जिनको देख के हम देख सकते हैं whether a country is promoting constitutionalism or not. ठीक है, thankfully India satisfies most of them, actually all of them. ठीक है, written constitution है तो वो better होता है because then there is no ambiguity for the courts to interpret and apply it. Independent judiciary is one very good indicator. Rule of law, which is given in Article 14 in India. Separation of powers, accountable government, ठीक है, fundamental rights and decentralization of power. यानी कि power किसी एक person या एक body में concentrated नहीं होनी चाहिए, right? So these are some of the indicators of a country having constitutionalism. Okay. अब ये jurisprudence का थोड़ा सा concept है कि constitution को grand norm भी बोला जाता है. ठीक है, आप लोगों ने केल्सन की थ्योरी पढ़ी होगी, right? केल्सन talks about pure theory of law. तो उनका मानना था कि there are other norms and there is one grand norm जिससे सारे बाकी norms अपनी validity derive करते हैं, right? So Kelsen was of the opinion that one grand norm is always there on the top from which every other norm in the country or every other law in the country is deriving its validity. ठीक है, तो constitution को grand norm माना जाता है Kelsen की understanding में. ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि constitution is the grand norm in Kelsen's theory. Right? बाकी आप obviously jurisprudence में पढ़ोगे ही कि what is Kelsen's take on law. Okay, so that is there. अब हम आते हैं rule of law पे. Rule of law, I think everybody is aware of by now. कि rule of law is again a concept which basically wants the law to be fair, equal, and basically applicable to all. Right? तो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट था, ऑल्दो अ लॉट ऑफ जूरिस्ट हैव गिवन इट, बट एवी डाइसी इज एट्रिब्यूटेड टू इट द मोस्ट, क्योंकि उन्होंने अपनी बुक में, आई थिंक इन द ईयर 1880, राइट, ही रोट अ बुक जहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि रूल ऑफ लॉ क्या होगा एंड गिव 3 पोस्टुलेट्स फॉर दैट. ओके, तो उनका पहला पोस्टुलेट था सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सेकंड था इक्वालिटी बिफोर लॉ और थर्ड था प्रेडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट. तो आपको ये 3 पहले याद होनी चाहिए एंड देन यू नीड टू नो कि कहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, तो सी डायरेक्टली कहीं पे नहीं दिया हुआ है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आर्टिकल 14 which talks about right to equality, it is said to include rule of law. Okay, so article 14 is one good example and केशवानंद भारती के केस में कोर्ट ने कहा भी है कि रूल ऑफ लॉ इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि आप उसे अमेंड नहीं कर सकते हो, राइट? ठीक है, अब आते हैं सेपरेशन ऑफ पावर पे. ये भी एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप केस लॉज में काफी एप्लीकेशन देखोगे इसका, स्पेशली इफ यू रीड द सुप्रियो जजमेंट व्हिच वाज अबाउट द सेम सेक्स मैरिज व्हिच केम आउट वेरी रिसेंटली एंड इन अ लॉट ऑफ अदर केसेस एज वेल. Supreme Court keeps talking about separation of power. Okay, so in the case of Supreo, that is the whole contention. The court is saying that we agree that some form of marriage or union rights have to be given to LGBTQ couples. But the thing is that we cannot do that because of separation of power, because this is a policy issue. This is the issue on which a law has to be made, and that can only be done by the parliament, or if a policy has to be made, can only be made by the executive. Okay, so that is why the Supreme Court refused to give any remedy, because it is not empowered to give any remedy in this case, according to them.
ओके, तो ये जो डॉक्ट्रिन है सेपरेशन ऑफ पावर की, दिस हैज कम आउट, this is also a very old doctrine. Montesquieu is usually attributed to it. ठीक है, और भी jurists थे, but Montesquieu की understanding सबसे ज्यादा we read. So he was a French philosopher who basically talked about separation of power. ठीक है, तो उनका मानना था कि जितनी भी organs होती हैं तीनों, उनका फंक्शन डिवाइडेड होना चाहिए एंड देयर शुड नॉट बी एनी इंटरलैप बिटवीन देम. ओके, तो उनका मानना था कि चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए. सेपरेशन का पूरा काम होता है ये इंश्योर करना दैट कोई भी एक ऑर्गन इज नॉट एक्टिंग आर्बिट्रेरली. ठीक है, ताकि अगर कोई एक ऑर्गन आर्बिट्रेरली एक्ट करे तो सम अदर ऑर्गन मस्ट बी चेकिंग दैट, राइट. तो हमारे केस में वो जुडिशरी होती है, दैट जुडिशरी कीप्स इनटू चेक द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द अदर टू ऑर्गन्स. ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर को भी कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना है, इनिशियली इन द केस ऑफ केशव नंद भारती, बट देन वी हैव अ लॉट ऑफ अदर जजमेंट्स एज वेल, लाइक इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण, राम जवाया केस, एंड लिटरली अ लॉट ऑफ अदर जजमेंट्स व्हिच हैव ऑलरेडी सेड दिस. ठीक है, अब ये वाला पार्ट आप खुद से पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत. नाउ दिस इज नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर क्लैट, बट अगर आप बाकी एलएलएम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कभी कभी वो इस टाइप के स्टैटिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट कब अडॉप्ट हुआ था. ठीक है, कितने मेंबर्स थे, कितना टाइम लगा टू फॉर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इनैक्टेड. ओके, सो all these things are very static questions and there is a list of questions only that can be asked from this area. तो आप ये कहीं से भी कवर कर सकते हो because this is the part which you just have to memorize. Okay, but not particularly for CLAT, but most likely for other LLM exams. Sudhakar, I'm not sure if Supriyo case is given in the sample paper or not, because I don't know if the recent sample paper talks about Supriyo case. It did talk about Navtej Johar, right? Yes. See, Supriyo case will be important for your 2024 exam, even if it is included in the sample paper. Okay, although I'm yet to go through the very recent sample paper, but Supriyo judgment is very important. Okay, it's a very recent case. It's a 5-judge bench decision. It's on a very important fundamental rights issue, so you can expect that in your exam. ओके, ठीक है, अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे. ठीक है, अब इसमें आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन जनरल द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा. वी हैव अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है, हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है. इन टर्म्स के मैं आपको मीनिंग अभी बताऊंगी व्हेन वी डील विद द प्रियम्बल. ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब हमारे यहाँ जो लॉज बनते हैं हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म में बनते हैं. मतलब वी हैव इलेक्शंस, वी हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. So people elect the government and then these people form, they are the representatives of the areas in the parliament, in the state legislatures, and then they make the laws. Okay, we have a federation with a strong center. Yani ki we have a federation, matlab we have a 2-tier government, we have the center and we have the states, right? And it is with a strong center. Yani ki states के पास power है, but जब भी मान लीजिए कोई emergency situation होती है या जब भी कोई residuary power की हम बात करते हैं, तो इट इज द सेंटर विच हैज मोर पावर. ओके, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ. स्टेट्स की सिटीजनशिप नहीं मिलती है. यू आर जस्ट अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके, यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और केरला और तेलंगाना. नन ऑफ दैट. यू आर जस्ट अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, कुछ कंट्रीज में ड्वेल सिटीजनशिप होती है, जैसे यूएस में आप यूएस के भी सिटीजन हो और उनके फिर जो अलग से स्टेट्स हैं आप उनके भी सिटीजन. ठीक है, इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं. वी हैव अडल्ट सफरेज. अडल्ट सफरेज का मतलब होता है दैट people who are over the age of 18 years, या जैसे भी आप adulthood को define करते हो, इंडिया में age of majority is 18 years. Okay, so they are the ones who are eligible to vote and elect their government. ठीक है, ओके, अब हम आते हैं preamble पे. ठीक है, preamble अभी हम we have already seen it once. Preamble is a enacting clause. Enacting clause का मतलब होता है, अगर आप preamble को देखो, wait, I'll just show you. So if you look at the preamble, okay, तो क्या बोलता है? We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into this, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, etc. ठीक है, अब ये जो last line है यहाँ पे, this is the enacting clause where they are saying कि in our constituent assembly, this 26 November 1949, we are adopting, enacting and giving ourselves this constitution. ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि this is the enacting clause
because this is saying that this is when the constitution now comes into force. Okay, sure. अब आते हैं दो केसेस पे जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी इन द स्टार्टिंग, राइट. फर्स्ट जजमेंट इज द केस ऑफ इन रेफरेंस बेरेबरी यूनियन केस, ठीक है. दूसरा जजमेंट है आपका केशवनंद भारती केस. ओके, इन रेफरेंस बेरेबरी यूनियन केस कहता है दिस वाज ओवररूल्ड इन केशवनंद भारती. दिस जजमेंट सेज that see, preamble is important. Preamble tells us that what were our constitution makers thinking, but that is the extent of its importance. It is not a part of the constitution. ठीक है. तो इस केस का एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं what was the finding, so the finding was that the court said that preamble is not a part of the constitution in the case of Berebari Union, which was later overruled in the judgment of Keshavanand Bharti in 1973 by a 13 judge bench, जहां पे उन्होंने कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आप इसको अमेंड भी कर सकते हो एंड इसका यूज आप इंटरप्रिटेशन में भी कर सकते हो. ठीक है, तो केशवनंद भारती एंड इन रेफरेंस बी बेरेबरी, ये दो जजमेंट्स हैं जो आपको प्रियम्बल में याद रखते हैं. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. प्रियम्बल इज वेरी इजी. ओके, यू ओनली हैव टू रिमेंबर द अमेंडमेंट नंबर, द चेंजेस दैट इट ब्रॉट अबाउट एंड दीज टू केसेस, right? Keshavanand Bharti and this one. Okay, chalo. Ab before I move forward, I will quickly tell you the meaning of the terms. ठीक है, sovereign का क्या मतलब होता है? That we do not rely on anybody else to take decisions. Okay, we are sovereign. Our country, whatever decisions we are making as a country, we make them internally. ठीक है, we don't have a sovereign outside. We are sovereign. Okay, basically we are independent. सोशलिस्ट का मतलब होता है, आप सबको पता होगा सोशलिज्म. ठीक है, तो उनका कहना है कि वी आर अ वेलफेयर स्टेट, राइट. यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है विच इज देन रिफ्लेक्टेड इन योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री. ठीक है, नॉट ओनली द स्टेट का काम सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करना नहीं है, डिफेंस नहीं है. स्टेट का काम वेलफेयर मेजर्स रोल आउट करना भी है टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल. ओके, वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री. ऑल्सो वी आर सेक्युलर. सेक्युलर का मतलब होता है कि we don't have a religion. इसका मतलब ये नहीं है कि religion is not important or is not protected in India. It is under articles 25 to 28, but it means कि हम secular हैं. हमारे state का कोई religion नहीं. ठीक है, हमारा state we will protect all religions equally, but the state will not have a religion of its own. Okay? Democratic का मतलब होता है we have a democracy, यानी कि people vote. Okay, it's not a authoritative country, it's not a monarchy. Okay, it's a representative based country जो elect होते हैं, people elect them. Okay, and we are a republic. ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. I hope you guys are okay with this. ठीक है, now I come to the next part which is part 1. Okay, part 1 as I said is not very important, so I will just go through it very quickly. Okay, now article 1 says, it basically tells us our name. Who are we, right? Abhi bahut recently there was a debate also that before the G20 summit there were a lot of rumors that we are going to be renamed as Bharat officially everywhere, because in G20 they did use the term Bharat in a lot of places, right? So everybody was speaking out, especially news outlets saying that, oh, we are going now to be renamed as Bharat. Okay, that is factually untrue because we already are Bharat. ठीक है, अगर आप आर्टिकल 1 पढ़ो, आर्टिकल 1 ऑलरेडी क्लियरली बोलता है इंडिया दैट इज भारत. ओके, सो वी ऑलरेडी हैव टू नेम्स, इंडिया एंड भारत. ओके, सो इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आपके फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं एंड दैट इज इट. ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में अगर आप खोल के देखोगे तो दैट विल टेल यू हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन अ कंट्री. ठीक है, उनका क्या एरिया है और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं. ठीक है, आर्टिकल 2 बोलता है कि अगर आपको कोई नया स्टेट एडमिट करना है, यानी कि अगर आपको कोई नई टेरिटरी ऐड करनी है इंडिया में, तो दैट कैन ओनली बी डन बाय द पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ. ओके, 3 इज अबाउट इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन. कि अभी जैसे व्हाट हैपेंड इन 2019. इन 2019 जम्मू एंड कश्मीर वाज डिवाइडेड, राइट. इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल उसका स्पेशल स्टेटस उन्होंने ले लिया एंड देन दे मेड इट इनटू अ यूनियन टेरिटरी, राइट. सो हाउ डिड दैट हैपन? दैट हैपेंड अंडर आर्टिकल 3, क्योंकि आर्टिकल 3 आपको इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन की पावर देता है, क्योंकि आप यहाँ पे कहीं बाहर से तो टेरिटरी नहीं लेके आ रहे हो, यू आर जस्ट मॉडिफाइंग द टेरिटरीज, जो कई बार हुआ है. फॉर एग्जाम्पल इन द अर्ली 2000s when
Madhya Pradesh was divided into Madhya Pradesh and Chhattisgarh, right? Uttar Pradesh was divided into Uttar Pradesh and Uttarakhand. Bihar, Jharkhand का separation हुआ था. Gujarat, Maharashtra का. Okay, so all of these things have happened under Article 3. ठीक है, जो again आपको बताता है that Parliament may make a law for doing all of this. ठीक है, they may make a new state by separating, dividing. They may increase the area of any state. They may decrease the area of any state. They may alter the boundaries of any state. और दे में चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट. ठीक है, बस उसका एक क्वालिफायर है कि अगर आपको कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है विद रेस्पेक्ट टू चेंजेस इन द एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ द स्टेट्स, तो आप उसको इंट्रोड्यूस करने के पहले प्रेसिडेंट विल सेंड द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर देयर ओपिनियन. ठीक है, तो दैट इज द ओनली प्रोसेस कि आपको उनका ओपिनियन लेना है, बिकॉज अल्टीमेटली आप उनके एरिया, उनके नेम को चेंज कर रहे हो, बट अल्टीमेटली द पावर इज विद द पार्लियामेंट. ठीक है. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, a very small doubt, maybe silly as well. But what is the difference between entry B, C, and D? Like increasing, diminishing the area would itself alter the boundary of a state, right? Yes, it is just given to make it as exhaustive as possible. ठीक है, क्योंकि सी हो सकता है ना, आप एरिया इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो और बाउंड्री चेंज कर रहे हो. बाउंड्री चेंज करने से जरूरी नहीं है कि एरिया इंक्रीज या डिक्रीज हो. ठीक है, मतलब दे में चेंज द बाउंड्री इन सच अ मैनर कि जितना इंक्रीज हो रहा है उतना दूसरे साइड से डिक्रीज भी हो रहा है. ठीक है, सो द ओनली रीजन व्हाई दे हैव पुट दीज थ्री थिंग्स, ऑल्दो दे मे इंटरलैप, इज टू मेक इट एज एग्जॉस्टिव एज पॉसिबल कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है. ठीक है, अगर एरिया इंक्रीज डिक्रीज नहीं भी हो रहा है तो भी वो बाउंड्री चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो डोंट वरी टू मच अबाउट इट. ओके, नाउ वी कम टू आर्टिकल 4. आर्टिकल 4 बस ये बोलता है कि वट एवर चेंजेस यू आर मेकिंग in Article 2 or Article 3, in the first schedule or in the fourth schedule, they are not amendments for the purpose of Article 368. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको Article 2 या 3 को अमेंड करना है और उसके कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को, तो उसके लिए आपको 368 का प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 368 प्रोसेस इज अ लिटिल cumbersome, right? So they are saying that this will not be considered as amendment for the purposes of Article 368. क्योंकि इवन दो यू आर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बट उसके लिए आपको 368 के प्रोसेस की जरूरत नहीं. ठीक है, क्योंकि दीज आर वेरी मैकेनिकल थिंग्स. इसके लिए आपको 368 का प्रोसीजर वर्क करने की रिक्वायरमेंट एज पर आर्टिकल 4 नहीं है. ओके, now I'll quickly show you a few more things about this, but please understand this is not very important, but I'm just covering all the bases. Okay, see, अभी क्या होता है, we have states, we have union territories. Okay, पहले ये डिविजन नहीं था. पहले we used to have, when we got independent and up until 1956, there were no union territories. There were states and they were divided into different parts. Part A, B, C and D. ठीक है, you don't have to concern too much about it. But ये जो classification था, this was done away in the year 1956 by the 1956 State Reorganization Act. ठीक है, इसमें उन्होंने A, B, C, D classification हटा के what they did was they basically just said कि that now we'll have states and we'll have union territories. ठीक है, तो जनरली जो पार्ट ए के स्टेट्स थे वो स्टेट बन गए और बाकी यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गए, एंड देन वी हैव हैड अ लॉट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड. ठीक है, अब आप ये याद रख सकते हो कि ये जो चेंजेस थे दे वर मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस फजल अली. ठीक है, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस दे में आस्क, राइट. अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पार्लियामेंट कैन ओनली एस्टैब्लिश और एडमिट अ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 2. इट कैन नॉट एस्टैब्लिश अ यूनियन टेरिटरी. ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही कर सकते हो. ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू कैन मेमोराइज फाइन, अदरवाइज यू कैन लीव इट. ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको टेरिटोरियल इंटेग्रिटी गारंटी नहीं करता है, मतलब आपका एरिया चेंज हो सकता है, नाम भी चेंज हो सकता है. ठीक है, एज पर आर्टिकल 3. ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं सेशन की. सेशन का क्या मतलब होता है? ठीक है, हमने एडिशन की बात की कि अगर आपको कोई नई टेरिटरी इंडिया में ऐड करनी है तो आप आर्टिकल 2 के थ्रू कर सकते हो. पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ एंड डू दैट. बट अगर हम सेशन की बात करें, सेशन मतलब इफ वी आर सीडिंग एनी टेरिटरी, मतलब अगर हमारी कोई टेरिटरी किसी और के पास जा रही है, ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली नॉट कवर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आर्टिकल 3 सिर्फ इंटर स्टेट एडजस्टमेंट्स की बात करता है ना. तो सेशन ऑफ अ टेरिटरी मीन्स ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम वन टेरिटरी टू अनदर एंड देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन इन इट. बट ये जो केस था इन रेफरेंस बेरेबरी यूनियन, जो आपको याद हो, भी हमने प्रियम्बल में भी देखा था, उस केस में सेशन की बात थी, क्योंकि वहां पे देयर वाज अ बाउंड्री डिस्प्यूट व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट, तो वो बाउंड्री डिस्प्यूट इस केस में रिजॉल्व हुआ था. ठीक है, तो
कोर्ट ने कहा था कि सेशन ऑफ टेरिटरी कैन नॉट बी डन बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3, क्योंकि आर्टिकल 3 सिर्फ इंटरनल एडजस्टमेंट्स की बात करता है। तो अगर आपको कोई टेरिटरी सीड करनी है, ठीक है, टू गिव अवे सम टेरिटरी, then that can only be done by an amendment under article 368 to modify the first schedule, ठीक है। तो वो पार्ट 1 में कवर्ड नहीं होगा, इट विल बी कवर्ड बाय आर्टिकल 368, ठीक है। सेम केस है Okay, sorry guys, my internet just went away for a bit. Let me share my screen again. Okay, I hope I am visible and audible to everyone. I am audible, everyone. Can you please confirm? Okay, thank you, Akriti. Okay, so I think I was talking about citizenship. Okay, what does it talk about? See, so citizenship is not important for exams, but मैं आपको कुछ basic चीजें बता देती हूँ, ठीक है? Article 5, 6, 7 and 8. Okay, these 4 articles are not relevant now because they talk about citizenship at the commencement of the constitution. See, when the constitution came into being, उस टाइम पे क्या क्राइटेरिया था फॉर यू टू बी कंसिडर्ड अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एज यू कैन सी वी गॉट इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1947, कॉन्स्टिट्यूशन केम इन 1950, उसके बाद से बहुत टाइम हो चुका है, 75 प्लस इयर्स, राइट। सो दीज थिंग्स आर नॉट रेलिवेंट नाउ बिकॉज दे टॉक अबाउट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आप पढ़ सकते हो क्लियरली। आर्टिकल 5 बोलता है एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैड दिस शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यू कैन सी इट्स नॉट रेलेवेंट, अभी एग्जाम पर्पस से तो नहीं है इंपॉर्टेंट, आप आर्टिकल 5 फिर भी पढ़ सकते हो, अदर आर्टिकल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल सी थिंग्स दैट आर रेलेवेंट एज ऑफ नाउ। आर्टिकल 9 बोलता है पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन। तो यानी कि अगर आपने इंडिया की सिटीजनशिप, अगर आपने कहीं और की सिटीजनशिप एक्वायर करी है वॉलंटरली, तो देन ऑटोमेटिकली यू विल नॉट बी एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। आप यू कैन नॉट होल्ड 2 पासपोर्ट्स, यू कांट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है। कई सारे देश ऐसा अलाउ करते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज व्हिच अलाउ यू टू हैव 2 सिटीजनशिप्स, बट इंडिया डज नॉट अलाउ दैट, ओके। आर्टिकल 11 आपके लिए एक्चुअली सिर्फ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 11 बोलता है कि अब जो भी मैटर्स हैं सिटीजनशिप के, दे विल बी रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट बाय वे ऑफ मेकिंग अ लॉ, ओके। तो अभी क्या है, वी हैव द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 जो अब डील करता है कि हाउ कैन यू बी अ इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो नथिंग इन द foregoing provisions shall derogate from the power of parliament to make any provision with respect to acquisition of citizenship as well as termination, ठीक है। So now I will show you a few things, but this part in general is not very relevant. Okay. अब देखो 3 टाइप की सिटीजनशिप हो सकती है, बाय डोमिसाइल, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हो या आपके पेरेंट्स यहाँ रह रहे थे, दैट इज व्हाई यू आर अ सिटीजन। सिटीजन बाय माइग्रेशन, ठीक है, आप यहाँ पे कहीं से आए, या फिर रजिस्ट्रेशन जो नेचुरलाइजेशन भी होता है, ठीक है। अब डोमिसाइल इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डोमिसाइल का मतलब होता है, सी नाउ दिस इज ऑल ऑफ दिस इज रेलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ आल्सो, ठीक है। डोमिसाइल का मतलब होता है रेसिडेंस, यानी कि आप यहाँ रह भी रहे हो प्लस आपकी इंटेंशन है टू मेक दिस कंट्री योर होम, ओके। बिकॉज सी मेयर रेसिडेंस कैन नॉट बी डोमिसाइल, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी यू वेंट टू लेट्स से नॉर्वे टू विजिट नॉर्वे, right, that doesn't mean you are domiciled in Norway, okay, क्योंकि even though you are living there for the moment, for the time being, even let's say for few years, but your intention is not to make it your home, okay। So domicile का मतलब होता है not just residence in that country but also intention to make that country your home, okay।
अब आर्टिकल 11 के अंदर एज आई सेड पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट बनाया 1955 का, जो अब हर चीज से डील करता है कि हाउ कैन अ पर्सन बिकम अ सिटीजन एंड हाउ कैन अ पर्सन सीज टू बी एन इंडियन सिटीजन। ओके, अब इस लॉ में ये तरीके दिए हुए हैं कि आप इन तरीकों से इंडिया के सिटीजन बन सकते हो बाय बर्थ, ठीक है, दैट यू आर बोर्न हियर। माइंड यू इसके और डिटेल्ड रूल्स हैं, हम बहुत बेसिक देख रहे हैं। डिसेंट यानी कि आपके पेरेंट्स इंडियन थे, ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ योर फादर इज इंडियन एंड देन इवन इफ यू नॉट बोर्न इन इंडिया यू कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय डिसेंट। बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, उसके भी कंडीशंस होते हैं। नेचुरलाइजेशन कि आप यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी रूल है कि अगर आप 11 ईयर्स इंडिया में रहते हो, ठीक है, फॉर अ सर्टेन टाइम, देन आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजन बन सकते हो। या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सम टेरिटरी इन इंडिया, कि अगर इंडिया आप कहीं कोई और टेरिटरी अक्वायर कर ले, ठीक है, अब जो जनरली नहीं होता है, वी डोंट हैव वॉर्स लाइक दैट, बट इफ दैट समटाइम हैपेंस देन वहां के जो लोग हैं दे विल ऑल्सो अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट दैट यू डोंट हैव टू रीड टू मच अबाउट इट बिकॉज इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम पर्टिकुलरली, ओके। ये इंपॉर्टेंट था थोड़े साल पहले, अभी तो दिस हैज बीन लाइक 4 years old नाउ, बट आपको याद होगा कि देयर वर अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट, ओके, शाहीन बाग प्रोटेस्ट इफ यू रिमेंबर, ओके, सो दे वर अगेंस्ट दिस अमेंडमेंट दैट हैपेंड इन द सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। ये क्यों चैलेंज हो रहा था इतना, क्योंकि इसमें क्या था कि दे वर प्रोवाइडिंग फॉर अ फास्ट ट्रैक प्रोसेस, कि अगर आप इन 3-4 कंट्रीज से आए हो एंड इफ यू बिलोंग टू दिस रिलीजन एंड इफ यू हैव कम ऑन दिस डेट बिफोर दिस डेट, then you can get Indian citizenship in 5 years instead of the original 11 years, ठीक है। तो ये पूरा डिबेट इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ इन कैटेगरीज को इंक्लूड किया था एंड दे एक्सक्लूडेड मुस्लिम्स पर्टिकुलरली, ओके। तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन लोगों की उन्होंने एग्जेम्पशन किया कि वी कैन गिव यू सिटीजनशिप इन 5 years, बट दे एक्सक्लूडेड सर्टेन कैटेगरीज, ओके। तो इसलिए काफी चैलेंज में था, अभी तक देयर हैज नॉट बीन अ वर्डिक्ट ऑन दिस, सो it's not important for your exam particularly, ठीक है। Now take a minute, let me know if you have any questions, because now we are moving on to a very important topic which is fundamental rights, okay. Today I will cover article 12, 13 and 14, 15 and 16, okay. 15 and 16 I'll continue to the next class also, but I will start with this. Take a minute, if you have any questions you can ask me. Ma'am, a very small question. Uh, Ma'am, the cases that we have covered in preamble and like citizenship, etc. Ma'am, is it okay if we read them as much as they are given in the notes? Like, Yes, we do not need to go in details. We only need to remember what was said in that case, right? only one line की क्या finding थी, that is it, okay. Okay, okay. Right, चलो. Okay, so now we will come to fundamental rights, ठीक है। Very important, I don't need to tell you how important fundamental rights are, ठीक है। कुछ basic चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए about this is the part number, कि किस part में दिए हुए हैं। So part 3 talks about fundamental rights. फिर कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक दिए हुए हैं, so article 12 to article 35, right? Then you need to know the division, कि किस आर्टिकल में क्या है, ठीक है। सी फंडामेंटल राइट्स आर सो इंपॉर्टेंट that you need to know everything about them, okay। If I ask you what is article 15 clause 5, you should be able to tell me that, okay। So this is one part where you can't skip anything, you really need to be very thorough with your bare act, ठीक है। तो इसमें काफी सारे डिविजन्स हैं, जैसे आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन की, आर्टिकल 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है, एंड ऑल्सो जस्टिशियबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फिर आते हैं हम इसके कैटेगराइजेशन पे। तो द फर्स्ट कैटेगरी इज राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। वेट, I will just, ठीक है, यहां से देख देते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का पूरा पर्पस है आपको कुछ बेसिक सिविल राइट्स देना, जिनको हम ह्यूमन राइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ऑल्दो वी हैव अ ह्यूमन राइट लॉ आल्सो, बट मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट आर गिवन दे आर आल्सो क्लासिफाइड एज ह्यूमन राइट्स, ठीक है। कुछ फंडामेंटल राइट्स are available to everybody, okay, all persons can claim it, for example article 14, article 21, okay, but then there are some fundamental rights which are only available to Indian citizens, for example article 15, article 16, article 19, ठीक है। तो ऐसे जब हम हर एक फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो you need to read it in a manner where you are able to tell whether this fundamental right is available to everybody or only to a section of citizens, not a section of citizens, only to citizens, ठीक है। अब इमरजेंसी के टाइम पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है
कि can fundamental rights ever be taken away, okay, or can they be suspended for a bit? The answer is yes, okay. Emergency के टाइम पे some fundamental rights may be temporarily suspended, ठीक है. तो जब हम emergency वाले sections पढ़ेंगे, article 350, 51, 52 है ना, वो सारे, when we will read those, then we will see what is the process, who can do it, and which fundamental rights can be suspended, ठीक है. किन fundamental rights का suspension automatic होता है, किसके लिए आपको law बनाने की जरूरत है, okay. So different procedure है थोड़ा, but yes, fundamental rights may be suspended, some fundamental rights during emergency, okay. अब आप जब भी fundamental rights पढ़ोगे, कोर्ट का कहना है various judgments that fundamental rights have to be read with fundamental duties and directive principles of state policy, ठीक है. तो आप उन्हें isolation में नहीं पढ़ोगे, there always has to be a connection with DPSPs as well as fundamental duties, okay. अब फंडामेंटल राइट्स इंडिया में जो हैं, दे आर लूजली बेस्ड ऑन बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. लेकिन इंडिया के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो थोड़े ज्यादा डिटेल्ड हैं, और हमारे फंडामेंटल राइट्स में इन बिल्ट रिस्ट्रिक्शंस है ना. यूएस में क्या है, यूएस के फंडामेंटल राइट्स थोड़े ज्यादा वाइड हैं, और वहां पे जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो कोर्ट डिसाइड करती है. इंडिया के केस में हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेनेवर यू रीड आर्टिकल 19, आप जब भी 19(1)A के फ्रीडम पढ़ते हो, 19(1)A to G के, राइट, उसके बाद आप जो बाकी के क्लॉजेस पढ़ते हो उसमें रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, है ना. 19(2) to 19(6), इसमें हम रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इंडिया और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में यही डिफरेंस है कि इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें इनबिल्ट रिस्ट्रिक्शंस है. सेम थिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द to US, okay. Okay, so now these are the categories of fundamental rights. आपको ये आर्टिकल्स पता होने चाहिए. राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ है आर्टिकल 14 to 18 में. फिर है right to freedom, which is given in article 19 to 22. Then we have right against exploitation, 23 to 24. Right to freedom of religion, 25 to 28. Cultural and educational rights, 29 to 30. And right to constitutional remedies, which is given in 30 to 35. ठीक है. Now there is one छोटा doctrine, okay, which is doctrine of implied fundamental rights, ठीक है. अब आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा fundamental rights, I'm sure that all fundamental rights are not given, okay. Some we know because court has said that these are fundamental rights, okay. That is exactly what this doctrine said, that जरूरी नहीं है कि each and every fundamental right will be written in the constitution. Some can be derived or implied from the given fundamental rights, ठीक है. For example, आप जब आर्टिकल 19(1)A पढ़ते हो, 19(1)A क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट. लेकिन कोर्ट ने बोला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू प्रेस भी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू नो है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन है. अब राइट टू इंफॉर्मेशन हैज नोवेयर बीन गिवन एज अ फंडामेंटल राइट, बट इट हैज बीन रेड अंडर आर्टिकल 19(1)A, ठीक है. सिमिलरली रिसेंटली जो अभी सबसे रिसेंट एडिशन हुआ है अबाउट राइट टू प्राइवेसी, तो कोर्ट ने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, व्हिच इज राइट टू लाइफ and personal liberty, right. अब यहाँ तो नहीं दिया हुआ है कि right to privacy is also included, but courts have read article 21 in such a manner to include right to privacy as a fundamental right, ठीक है. So this is exactly what is meant by doctrine of implied fundamental rights, okay. कुछ fundamental rights implied है, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, but they are covered, okay. So this is where the role of courts become important, and this is where, if you remember, we saw that constitution is supposed to be a living document. That becomes important, ठीक है. कि अब आज से 50 years down the line, there may be some development in technology, in the cultural changes, the societal changes, which may require some other fundamental right to be recognized, ठीक है. So our constitution cannot be static. It has to be, it has to catch up with the times we are living in, okay? And this is when courts become important. This is when doctrine of implied fundamental rights become important, ठीक है. चलो अब एक और presumption पढ़ लेते हैं छोटा सा, क्योंकि हम आर्टिकल 13 की बात करेंगे जो बात करता है कि अगर कोई लॉ, इफ अ लॉ इज नॉट कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, देन इट कैन बी वॉइड, ठीक है. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक प्रिजम्पशन होता है जो कोर्ट्स हमेशा फॉलो करते हैं, कि वी विल ऑलवेज प्रिज्यूम दैट द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है. सो इट्स ओनली अ प्रिजम्पशन. इसका मतलब ये है कि द पर्सन हु इज चैलेंजिंग इट, द पर्सन हु इज सेइंग दैट दिस लॉ इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट पर्सन हैज टू प्रूव व्हाई दैट लॉ इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है. In the first instance, we will not assume that the law is not constitutional. So the burden of proof is always on the party who challenges the validity of that law. Okay? So this is a basic presumption that exists. अब fundamental rights को हमेशा liberally construe किया जाता है, ना कि literally. Okay? Literally का क्या मतलब होता है? It's a narrow interpretation, जहाँ पे
जो लिखा है आप उसे एग्जैक्टली वैसा ही इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है। दैट इज नॉट द केस विद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को आपको लिबरली कंस्ट्रू करना है, ठीक है, ताकि आप जितनी लिबर्टी और इक्वलिटी और जितने भी राइट्स प्रोटेक्ट कर सकते हो उतना आप करोगे, ओके। दे आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी वो इंटर रिलेटेड है। दिस वाज सेड इन द केस ऑफ मेनका गांधी ऑल्सो। मेनका गांधी में कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, ओके। तो उन्होंने स्पेशली होली ट्रिनिटी की बात की थी, दैट वाज द गोल्डन ट्रायंगल, आर्टिकल 14, 19 एंड 21, ओके। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज नाउ एप्लीकेबल, ओके। सो विद दैट नाउ वी कम टू आर्टिकल 12, ठीक है। हमने एक बेसिक देख लिया फंडामेंटल राइट्स का। अब हम आते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट पे, विच इज आर्टिकल 12, विच इज डेफिनेशन, ओके। वेरी इजी, राइट। आर्टिकल 12 हमें बताता है कि इन दिस पार्ट, यानी इन फंडामेंटल राइट्स, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, स्टेट मीन्स दिस, ओके। नाउ व्हाई आर वी लुकिंग एट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट? क्योंकि आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स मोस्टली आप स्टेट के अगेंस्ट ही क्लेम कर सकते हो, ठीक है। देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स व्हिच यू कैन क्लेम अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन्स आल्सो। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15 में जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज है, जो बोलता है कि आपके रिलीजन, सेक्स, जेंडर, कास्ट के बेसिस पे यू कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड एट पब्लिक प्लेसेस, राइट। तो वो आप दूसरे लोग, मतलब यू कैन क्लेम दैट अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन्स आल्सो, but most of the fundamental rights you can only claim against the state, right? So if we are saying that we can only claim these fundamental rights against the state, then we need to know what is state, what is meant by state, right? क्योंकि आप अगर पार्ट 6 देखते हो, पार्ट 6 में जो स्टेट है, स्टेट्स, दैट इज डिफरेंट स्टेट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट्स लाइक स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, राइट। बट यहाँ पे जब हम स्टेट टर्म यूज कर रहे हैं, वी डोंट मीन इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इसीलिए यहाँ पे दे हैड टू डिफाइन इट बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट। तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि सिर्फ इस पार्ट के लिए फॉर फंडामेंटल राइट्स स्टेट का मतलब होगा ये चीज है, ठीक है। क्या होता है मतलब, अब हम देखते हैं। स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो यूनियन के लेवल पे है आपकी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। फिर स्टेट लेवल पे आए कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ओके। फिर आए वो दूसरी चीजों पे। अब ये तो इजी है याद रखना कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। फिर वो बोलते हैं ऑल लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज भी इजी है, फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, ऑल ऑफ दैट, और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जो पार्ट है अदर अथॉरिटीज, नाउ दिस इज द टर्म विच हैज अट्रैक्टेड मोस्ट केस लॉस, ठीक है। कि बाकी चीजें तो हमें पता है कि व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज पार्लियामेंट, व्हाट इज लोकल अथॉरिटी, बट व्हाट इज मेंट बाय दिस अदर अथॉरिटी टर्म, ठीक है। अदर अथॉरिटीज का क्या मतलब होता है, ठीक है। सो दिस इज वेयर योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, योर PSUs, योर स्टैट्यूटरी बॉडीज, योर रेगुलेटरी बॉडीज, ओके, दिस इज वेयर ऑल ऑफ देम come under the term other authorities, okay. So you need to know some basic case laws on article 12 which has interpreted the meaning of the term other authorities, ठीक है। चलो, तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट था स्टेट को डिफाइन करना, क्या क्या इंक्लूड होता है ये हमने देख लिया, ठीक है, ओके। गवर्नमेंट बॉडीज, डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स आर क्लियरली कवर्ड अंडर अदर अथॉरिटीज, ठीक है। मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, व्हेन वी डील विद ऑटोनॉमस बॉडीज, ठीक है। कई सारी ऑटोनॉमस बॉडीज भी होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके कॉलेजेस, है ना। इफ यू लुक एट लेट्स से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, now national law universities have been made under a law, okay, they are autonomous bodies, वो particularly state legislature ने उसके laws बनाए and that is how they are framed। तो autonomous bodies जो होती हैं, now they can be statutory also, they can be non statutory also। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि हम कैसे पता करेंगे कि whether a autonomous body is other authority for the purpose of article 12 or not, okay। तो कोर्ट ने कुछ केसेस में टेस्ट ले डाउन किए हैं कि आप ये चीजें चेक करोगे टू सी इफ अ बॉडी इज स्टेट अंडर आर्टिकल 12 और नॉट, ओके। तो कोर्ट ने ये टेस्ट इवॉल्व किया है, द टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटालिटी, ठीक है। तो उनका कहना है कि अगर कोई बॉडी स्टेट की इंस्ट्रूमेंटालिटी है तो वो अदर अथॉरिटी में कवर्ड होगी, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा क्लैरिटी तो मिल नहीं रही है कि ठीक है आपने एक टर्म यूज करके दूसरा उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, व्हाट इज मेंट बाय इंस्ट्रूमेंटालिटी, ओके। फॉर दैट वी हैव केस लॉस। पहला केस जो है उज्जम्बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में कोर्ट ने कहा था कि अदर अथॉरिटीज को हम लिबरली कंस्ट्रू करेंगे, ठीक है। वी विल नॉट इंटरप्रेट अदर अथॉरिटीज नैरोली, वी विल कंस्ट्रू इट लिबरली, ओके।
फिर कोर्ट ने कहा वी विल नॉट अप्लाई एडजस्टम जेनेरिस रूल. ओके, नाउ व्हाट इज दिस रूल? एडजस्टम जेनेरिस बोलता है ऑफ द सेम काइंड. ओके वेट, आई विल टाइप इट आउट. ओके, ठीक है. तो इनका आर्ग्यूमेंट था इस केस में कि सी आर्टिकल 12 में कुछ चीजें बोली हुई हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स. ठीक है. तो उनका कहना था कि जो टर्म है अदर अथॉरिटीज, this has been used in article 12 and there are other terms also which are preceding this. Okay, तो उनका कहना था कि ये सारे सेम क्लास को बिलोंग करते हैं या फिर सेम काइंड के हैं, and that is why when we interpret other authorities we have to interpret them in that same manner. Okay, so what they were advocating was कि हम इसको narrow interpretation देते हैं कि जो बॉडीज हमें स्टेट जैसी लग रही हैं, मतलब जिनके पास स्टेट जैसे फंक्शंस हैं, सिर्फ उन्हीं को हम बोलेंगे कि दे आर अदर अथॉरिटीज और बाकी बॉडीज को हम कवर नहीं करेंगे. ठीक है. कोर्ट ने मना कर दिया. कोर्ट सेड कि नो, दिस इज नॉट द राइट इंटरप्रिटेशन बिकॉज दिस इज नॉट, यहाँ पे आप एडजस्टम जेनेरिस रूल नहीं लगा सकते बिकॉज देर इज नो सेम काइंड. यहाँ पे कोई सेम काइंड की चीजें नहीं दी हुई हैं. ठीक है. क्योंकि यू आर मेंशनिंग द पार्लियामेंट, यू आर मेंशनिंग यूनियन गवर्नमेंट, यू आर मेंशनिंग स्टेट गवर्नमेंट. इनके बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है. दे आर नॉट बिलोंगिंग टू द सेम क्लास और द सेम काइंड. ठीक है. तो अब जब इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो एडजस्टम जेनेरिस रूल कैन नॉट अप्लाई टू इंटरप्रेट दिस टर्म. ठीक है. तो कोर्ट ने बेसिकली मना किया. कोर्ट ने कहा कि वी विल नॉट गिव अ नैरो इंटरप्रिटेशन टू द टर्म अदर अथॉरिटीज. ठीक है. जो कि जरूरी भी था, क्योंकि इफ वी वांट मैक्सिमम application of fundamental rights, then we have to recognize that there will be a lot of bodies which are, let's say, deriving funding from the state, or they are under the control of the state, but we are saying that they are not state under article 12, so they're not liable to protect fundamental rights. Okay, so that kind of interpretation would have harmed fundamental rights, and that's why the court did not agree to that. Okay, so the first case was Ujjambai versus state of UP. ठीक है. फिर we have the second judgment of राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल. यहाँ पे भी कोर्ट ने सेम बात बोली थी. कोर्ट ने कहा विल नॉट अप्लाई द एडजस्टम जेनेरिस रूल. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, यानी जो स्टैट्यूट या लॉ के अंदर बनी है, दे विल बी अदर अथॉरिटीज अंडर आर्टिकल 12. ठीक है. जरूरी नहीं है कि अगर वो कमर्शियल एक्टिविटीज भी कर रही हैं, जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो कोर्ट ने कहा कि इट्स ओके, इवन इफ दे आर नॉट डिस्चार्जिंग सॉवरेन फंक्शंस, इवन इफ देयर फंक्शंस आर कमर्शियल इन नेचर, दे विल स्टिल बी कवर्ड अंडर द टर्म अदर अथॉरिटीज इन आर्टिकल 12. ठीक है. तो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल था कि स्टैट्यूटरी बॉडीज विल बी स्टेट. फिर हमारे नेक्स्ट केस पे सुखदेव वर्सेस भगत राम, जो भी सिमिलर चीज पे था, जहां पे कोर्ट ने कहा कि बॉडीज लाइक LIC, ONGC, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सब भी स्टेट हैं. कोर्ट ने इस केस में कहा कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज भी अदर अथॉरिटी हो सकती हैं इफ दे आर एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट. ओके. नेक्स्ट केस है सबजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये अच्छा केस नहीं था. अच्छा इन द सेंस इट्स नॉट अ गुड प्रेसिडेंट. दिस वाज लेटर ओवर रूल. ठीक है. इस केस में कोर्ट ने मना कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि ये जो गवर्नमेंट कंपनी है, इवन दो इसको गवर्नमेंट से फंडिंग मिल रही है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो उन्होंने कहा क्योंकि ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसीलिए दिस इज नॉट स्टेट. ओके, बट दिस जजमेंट वाज ओवर रूल्ड लेटर. ओके, सो दिस इज नॉट अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट. अब 3 केसेस पे आएंगे जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट हैं. RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब एंड प्रदीप कुमार बिस्वास. ठीक है. ये 4 आपको पता होने चाहिए. अब इसमें अलग अलग बातें बोली हैं, बट अल्टीमेटली आपको तो टेस्ट पता होना चाहिए. ठीक है. RD शेट्टी में कोर्ट ने कहा था कि स्टैट्यूटरी बॉडीज आर अदर अथॉरिटीज अंडर आर्टिकल 12. फिर कोर्ट ने कहा कि लेकिन बाकी बॉडीज जो नॉन स्टैट्यूटरी हैं वो भी स्टेट हो सकती हैं. ठीक है. सोम प्रकाश के केस में कोर्ट ने कहा था फंक्शनल टेस्ट हम अप्लाई करेंगे. ठीक है. हम ये नहीं देखेंगे कि बॉडी कैसे क्रिएट हुई, वेदर इट वाज क्रिएटेड बाय अ लॉ, वेदर इट इज क्रिएटेड विदाउट अ लॉ, वेदर इट्स नॉन स्टैट्यूटरी. व्हाट विल मैटर इज व्हाई वाज इट क्रिएटेड. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि ट्रू टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी होता है कि आपका क्या फंक्शन. ओके. ये जो लाइन यहाँ पे दी हुई है इन द कोर्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी ये लाइन देके पूछ लेते हैं कि विच जजमेंट सेड दिस. ओके, कि ब्रूडिंग प्रेजेंस ऑफ द स्टेट बिहाइंड द ऑपरेशंस ऑफ द बॉडी. राइट. अजय हासिया पे आते हैं. अजय हासिया काफी इंपॉर्टेंट है. अजय हासिया में एक्चुअली एक इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसको स्टेट से काफी सारा फंड मिलता था. तो इवन दो इट वाज अ प्राइवेट कॉलेज, बट कोर्ट ने कहा कि इवन दो दिस इज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी, it is receiving
significant funds from the state and the state is controlling it. So that is why this college is also state for the purpose of Article 12. ठीक है, आप ये पढ़ लेना. I have already covered these in brief. I'm just pausing this on the screen so you can take screenshots and read if you want. ठीक है, फिर आते हैं लास्ट केस पे जो जिसने फाइनली पूरी पोजीशन सेटल कर दी. दिस 7 जज बेंच केस ऑफ प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी. ठीक है, इस केस में कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अजय हासिया का जो टेस्ट है दैट इज एप्लीकेबल, पर इट इज नॉट अ रिजिड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि अगर वो टेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है तो कोई बॉडी स्टेट नहीं होगी. ठीक है, फिर इस केस में कोर्ट ने कहा कि हम 3 चीजें देखेंगे. फाइनेंशियल कंट्रोल किसके पास है, फंक्शनल मतलब फंक्शन क्या है उनका, और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ लाई करता है. ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और द स्टेट, then that particular body will be other authority for the purpose of Article 12. ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा वाइड टेस्ट दिया कि अगर हमें फाइनेंशियली पता चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली पता चल रहा है, फंक्शनली पता चल रहा है कि अगर स्टेट का इंटरफेरेंस है, then that body will be state. Okay, the primary test is of funding and control, and this judgment overruled the Sabajit Tiwari case. Okay, ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या जुडिशरी कवर्ड है आर्टिकल 12 में. ओके, क्योंकि हमने देखा है कि वहां पे क्लियरली दे हैव मेंशन द पार्लियामेंट, द लेजिस्लेचर, द गवर्नमेंट, बट दे हैव नॉट मेंशन जुडिशरी, राइट. तो इसके लिए वी हैव 2-3 केसेस जहां पे कोर्ट ने कहा है कि जुडिशरी इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 12. ओके, मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि किसी कोर्ट का जजमेंट है एंड दैट जजमेंट इज इन्फ्रिंजिंग योर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, क्योंकि जुडिशरी इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 12. ओके, क्योंकि हमारा मानना है कि judiciary is something which interprets the law and you have remedies against that. If you're not happy with the judgment, you can appeal it to different forums like High Court or even Supreme Court, right? So judiciary is not covered under Article 12, but there is a qualifier. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्या qualifier. ठीक है, तो पहले तो आप जजमेंट्स के नाम याद रखोगे कि इस पॉइंट पे कौन से जजमेंट्स हैं. तो नरेश श्रीधर मिराजकर एंड AR अंतुले वर्सेस RS नायर. ठीक है, रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा भी है, प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर आल्सो. ओके, सो यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर दीज नेम्स, राइट. आपको इन केस का डिटेल नहीं पता होना चाहिए, बट आपको एटलीस्ट इनके नाम याद होने चाहिए, राइट. सी, अब आई विल एक्सप्लेन अ वेरी छोटा कॉन्सेप्ट वेरी क्विकली, दैट जुडिशरी हैज 2 functions. ठीक है, वन इज द जुडिशियल फंक्शन और द एडजुडिकेटरी फंक्शन जो हमें पता है जजमेंट्स देना. दूसरा हो सकता है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. ठीक है, तो ये है कि व्हेन जुडिशरी इज एक्टिंग इन इट्स जुडिशियल कैपेसिटी, व्हेन इट्स गिविंग जजमेंट, देन इट इज नॉट स्टेट. आर्टिकल 12 डज नॉट अप्लाई. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द जुडिशरी, देन आर्टिकल 12 इज एप्लीकेबल. अब इसका क्या मतलब होता है? सी, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता है दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम होता है, DJS, राइट. मेनी ऑफ यू माइट बी एस्पायरिंग टू राइट इट एज वेल. अब ये एग्जाम कौन कराता है? हु कंडक्ट्स इट? दिल्ली जुडिशरी, दिल्ली हाई कोर्ट, राइट. सो दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट का एक काम है जजमेंट्स देना, विच इज इट्स जुडिशियल साइड. बट उनका एक काम ये भी है कि दिल्ली में जो जजेस का एग्जाम है, दे कंडक्ट दैट एग्जाम. ओके, तो ये जो उनका काम है, दिस इज नॉट अ जुडिशियल वर्क, राइट. लाइक दे आर नॉट गिविंग जजमेंट्स. They are looking at the administrative side of things. So whenever the judiciary is dealing with the administrative side, then Article 12 is applicable. ठीक है, आप उन decisions को फिर challenge कर सकते हो. जैसे last year in 2022 दिल्ली जुडिशरी में कुछ एज का इशू था, उन्होंने 35 years कुछ मिनिमम एज लगा दी थी for TJHS, right? So that was challenged before the Supreme Court in its jurisdiction. ठीक है, तो वो इसलिए challenge हुआ था क्योंकि वो administrative side का decision था. Okay? सो जुडिशरी के लिए आई होप आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो गई हो कि जुडिशरी इज जनरली नॉट कवर्ड, बट अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की बात करें तो दैट विल बी कवर्ड अंडर आर्टिकल 12. ओके, चलो, लोकल अथॉरिटी के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. लोकल अथॉरिटी में इतना कुछ डिबेट नहीं है. ठीक है, सो यू कैन रीड इट. ओके, सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ आर्टिकल 12. Okay, I think I will cover Article 13 in the next class. Okay, so I'll just quickly tell you what I'm going to cover in the next class, which is going to be tomorrow at same time, 3 p.m. We'll cover Article 13. Okay, very important. And then we will finish whole right to equality.
reservation and everything included. And maybe I will cover the next set of article also if time permits. Okay? So please come prepared. And if you have any questions, now let me know. Okay, hi everyone. So we are going to start with today's session. So if you attended last class, you would know that we were talking about Constitution of India, right? We started from the index. We saw that how to cover Constitution in general and broad, and basically what areas are important in it, right? Especially from an exam perspective, if you're preparing for CLAT PG or if you're preparing for AILET PG or any other LLM entrance exam, then how to basically go about it. Right. So yesterday's class was about that, and we have covered till Article 12. Right. So today we are going to start with Article 13 onward. And if you have any questions, do let me know. Okay. Right. Chalo. So today we are going to start with fundamental rights. We have already seen the definition under Article 12. Right. So Article 12 basically tells us who will be state, right? For the purposes of this part, that is part 3, that is your fundamental rights chapter. For this particular part, what is state? Because state can have a different definition in different parts of the constitution. As we know that if you look at part 6, which talks about the states, right? So wahan pe states ka matlab hota hai the states in India, for example, state of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Mizoram, Telangana, etc. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम स्टेट बोलते हैं in this part for fundamental rights, state has a different definition. Okay, so now let's start with Article 13. Article 13 is very important because Article 13 is the one which lays down the foundation of judicial review in India, right? Because Article 13 basically tells you that what is the significance of fundamental rights or what is the significance of this part, right? So it very clearly says that if there is any law which is inconsistent with fundamental rights, be it pre-constitutional law or be it post-constitutional law, such a law will be void, right? So this is wherein the court's role become important because it is the courts which will strike down laws for violating fundamental rights. Okay, so Article 13 very important. Article 13 is important from your exam perspective also, but mostly इसमें आपकी basic understanding काफी अच्छी होनी चाहिए कि what does 13.1 talk about, what does 13.2 talk about, what is the definition of law under Article 13. Okay, so all these things have to be kept in mind, right? So let's start with Article 13. Article 13 clause 1 talks about pre-constitutional laws. Okay, so Article 13.1 बोलता है कि all laws in force, ठीक है, तो जहां पे they have used the term laws in force, उसका मतलब है pre-constitutional laws, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि when the constitution came into being, right, like at the commencement of the constitution, जितने भी law in force थे already, insofar as they are inconsistent with fundamental rights, shall to the extent of such inconsistency be void. Okay, so they are saying that pre-constitutional laws which are existing at the commencement of the constitution, if they are violating fundamental rights, then they will be void. Okay, it also encapsulates the understanding of doctrine of severability, right? Like the entire law will not be struck down, but only that part as is inconsistent with fundamental rights. ठीक है, अब यहाँ पे एक और डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होती है, that is doctrine of eclipse. Okay, doctrine of eclipse ये बोलती है, and doctrine of eclipse only applies to pre-constitutional laws, it does not apply to post-constitutional laws. Doctrine of eclipse का ये कहना है that see, अब जो laws in force थे when the constitution came into being, right, so they were then held to be unconstitutional, okay, at the commencement of the constitution, but उसके पहले तक they were very much valid because they were made by a competent legislature, right? So they were valid. They only became invalid on the coming of the constitution because they violate some part of fundamental rights. ठीक है, तो उनका कहना है कि मान लीजिए if later on if there is any amendment in fundamental rights, है ना, जो होता भी है, for example right to property was initially a fundamental right but it no longer is, right? तो वो वही बोल रहे हैं कि अगर कोई amendment होता है fundamental rights में, and because of this amendment now ये जो laws in force थे पहले जो अब unconstitutional हो गए हैं, but now they are no longer inconsistent with fundamental rights because of the change in fundamental rights, so these laws can revive. Okay, they can come back. तो इसी को बोला जाता है doctrine of eclipse कि ये जो laws हैं they are only eclipsed for the time being. So if there is any subsequent change in fundamental rights, if any deletion, addition, anything,
then if that inconsistency is being taken away, then those laws can come into force again. Okay, अब आते हैं 13.2 पे। 13.2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। ठीक है, कि अब जो लॉज बनेंगे, नाउ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिंग टू बी, so now what is the power of the state? Okay, so it clearly says that the state shall not make any law. ठीक है, so they are putting an embargo on the power of the state itself, कि state ऐसा कोई law बनाएगा ही नहीं। ठीक है, so they are taking away the power of the state to make any law which is unconstitutional. Unconstitutional यानी कि inconsistent with fundamental rights. Okay, so the state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention will be void. ठीक है, यहाँ पे भी doctrine of severability equally apply होती है। अब यहाँ पे there is no application of doctrine of eclipse। ठीक है, एक दो छोटी बेंच के जजमेंट्स थे जिन्होंने कभी कभी हिंट किया है that doctrine of eclipse may apply on post constitutional laws, but no good judgment exists which can be said to be a binding precedent, which says that doctrine of eclipse applies to 13.2 as well. Okay, so 13.2 पे doctrine of eclipse इसीलिए अप्लाई नहीं होती है क्योंकि सी यहाँ के जो लॉज थे when they were made, यानी कि before constitution came into effect, they were valid laws, right? Like that parliament or whatever legislature has made those laws, that legislature had the power to make those laws. Okay, but यहाँ पे हमने state की power ही ले लिए। अगर आप wordings में difference देखें कि how is it phrased, so it clearly says that the state shall not make any law. तो यहाँ पे indication ये है that the laws are void ab initio. Okay, so because they are null and void from the starting, they cannot be revived back, even if there is a subsequent change in fundamental rights, which now takes away the inconsistency in that law. Okay, so that is 13.1 and 13.2, right? So this is the source of the power of judicial review, because this gives the power to the court to actually inquire into the validity of laws and whether they are offending any provision of part 3 or not. Okay, now we come to 13.3. 13.3 is also very important because 13.3 tells us the definition of law. Okay, because we generally understand law as meaning something which is made by the legislature, right? So basically a statute, but that is an incomplete understanding of the meaning of the term law under Article 13. Okay, Article 13 में उन्होंने define कर दिया कि in this article, ठीक है, हम सिर्फ इस article की बात करें, we are not talking about the term law in general used in the constitution. ठीक है, यहाँ के लिए in this article law का मतलब होता है this and laws in force का मतलब होता है this. ठीक है, now laws in force is not very relevant for us because this is talking about pre-constitutional law. Okay, but this definition 13.3a, the meaning of the term law, that is very important. ठीक है, तो सी लॉ में आपका लॉज तो इंक्लूड होते हैं, यानी कि statutes are included, legislations are included, but apart from that law includes any ordinance. Okay, so if any ordinance has been made by the president or the governor, order अगर executive ने government ने कोई order pass किया है, if any bylaws have been made, if any rules have been made by the government, if any regulations have been made by the government or regulatory bodies, if any notification has come out, custom or usage, etc. ठीक है, so all these things come within the definition of the term law. Okay, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप legislations को challenge कर सकते हो. For example, if the government has issued a notification which is violating fundamental rights, that can also equally be challenged under Article 13. Okay, because the meaning of the term law is quite wide under Article 13.3a. ठीक है, अब आते हैं 13.4 पे। 13.4 actually was added later on by the 24th amendment. तो इसके context को समझने के लिए when we will talk about Article 368, right? This is when we will understand what was the rationale and what was the chronology of why this amendment came. ठीक है, अभी के लिए आप देख सकते हो कि 13.4 बोलता है that nothing in this article shall apply to amendments under Article 368. ठीक है, तो अभी out of context इसको नहीं समझ पाओगे आप. So when we will talk about Article 368, which will be very soon, then we will come back and talk about 13 clause 4. Okay, now I will quickly show you a few more things that you need to know about Article 13, which is also known as justiciability of fundamental rights. ठीक है, अब this provides for judicial review, as I told you. Article 13 deals with statutory law and other kind of laws, but it does not deal with judge-made law. ठीक है, तो मतलब आप judgments को challenge नहीं कर सकते. You cannot say that a judgment is violating your fundamental right. Okay, and so basically judgments के against you have appeals available, you have revision available, you have, if you're talking about Supreme Court, there is SLP jurisdiction, we have
curative petition jurisdiction, ठीक है. So you have all those remedies against judgments, but judge made law यानी कि judgments आर्टिकल 13 में कवर्ड नहीं है, ठीक है, बिकॉज अभी हमने 13 के अंदर लॉ की डेफिनेशन देखी, वहां पे जजमेंट्स आर नॉट कवर्ड, राइट. Now, power of judicial review is held to be part of basic structure. This was held in Keshav Nand Bharti, Indira Gandhi versus Raj Narayan, and a lot of judgments after that. ठीक है. Definition of Article 13 हम already देख चुके हैं कि लॉ की क्या डेफिनेशन होती है. ओके, अब आते हैं एक और छोटे से पॉइंट पे. या दैट इज कि क्या पर्सनल लॉज कवर्ड होते हैं आर्टिकल 13 में, ठीक है. सी नाउ पर्सनल लॉज विच हैव बीन कोडिफाइड, दे आर कवर्ड, राइट. अगर जैसे फॉर एग्जांपल इन हिंदूज, नाउ ऑल द प्रोविजंस हैव बीन कोडिफाइड. So we have the Hindu Marriage Act, we have Hindu Succession Act, we have Hindu Adoptions and Maintenance Act. So the laws which are codified, it is still easy to apply, part 3 on them. But the laws which are not codified yet, ठीक है, तो उसका एक सवाल आता है कि क्या पर्सनल लॉज आर दे कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द टर्म लॉ और लॉ इन फोर्स और नॉट, ठीक है. तो इस पे देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डिबेट and the Supreme Court has generally not answered this question yet. There is only one judgment of Bombay High Court which did deal with this issue, and that judgment has been a precedent since then, ठीक है. So courts generally are very reluctant to interfere with personal laws, and that is why there is no particular judgment which says with certainty that yes, personal laws are covered under the definition of Article 13, ठीक है. बॉम्बे हाई कोर्ट के स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरासू अप्पा माली के केस में कोर्ट ने कहा था कि पर्सनल लॉज आर नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 13, ठीक है. तो उन्होंने उसको लॉ इन फोर्स की डेफिनेशन से चेक करके देखा था कि वेदर इट इज कवर्ड इन लॉ इन फोर्स और नॉट, बिकॉज द इशू वाज दैट द कोडिफाइड, दे आर अनकोडिफाइड लॉज. सो उनके ऊपर हाउ डू वी मेक देम covered under Article 13. So according to the reasoning given in this Bombay High Court judgment, the court was of the opinion that they are not covered, ठीक है. सेम चीज उन्होंने अहमदाबाद विमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी बोली थी, ठीक है. तो रीसेंट केसेस में जैसे कि आपके सबरीमाला जजमेंट और ट्रिपल तलाक जजमेंट, ओके, इन दीज केसेस दिस क्वेश्चन हैज कम अप एंसिलरीली, ठीक है. ऐसे डायरेक्ट इशू नहीं था किसी भी केस में कि वेदर पर्सनल लॉज आर कवर्ड और नॉट, and that is why the Supreme Court has not had an opportunity yet to answer this question, ठीक है. So let's see, there is a 9-judge bench sitting, will be sitting and hearing the matter on a lot of important questions on personal law. So then maybe we'll get to know whether they will be resolving this issue or not. Okay. ठीक है. हाँ, ठीक है. So as I said, in the triple talaq judgment, the Supreme Court did not look into the correctness of this judgment. However, Justice Chandrachud was of the opinion that this judgment needs to be revisited, ठीक है. But they did not revisit this judgment in the triple talaq case, okay. But there was a it was highlighted that this judgment in a proper case might need to be revisited, okay. Now 13(1), as I told you, refers to pre-constitutional laws. 13(2) refers to post-constitutional laws, right. ठीक है. अब हम बात करते हैं कुछ सिचुएशंस की जहां पे द लॉ इज नॉट वॉइड, ठीक है. इट मे बी वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, इट मे बी इनकंसिस्टेंट विद देम, बट इट इज नॉट नेसेसरली वॉइड फॉर ऑल पर्पसेस, ठीक है. तो लेट्स सी व्हाट आर दोस सिचुएशंस. ओके, सो व्हेन अ लॉ इज वॉइड इट इज अनएनफोर्सिएबल. However, there could be few exceptions to it, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू एवरीबडी एंड सम फंडामेंटल राइट्स आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन, ठीक है. तो अगर ऐसा कोई लॉ है which is being violative of, let's say, Article 19. Article 19 is only available to citizens, right? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि even though this law is void for citizens because they have the fundamental right of Article 19, but foreigners don't have this fundamental right, ठीक है. तो that law may be applicable to them, ठीक है. तो ये जो finding थी, this finding was of the judgment of State of Gujarat versus Sri Ambika Mills, ठीक है. Now 13(1), which deals with pre-constitutional laws, it is only prospective in nature and not retrospective, ठीक है. यानी कि जो भी law unconstitutional होगा under 13(1), that will only be after the constitution has come into being. So whatever might have happened under that law before constitution came into being, that is very much valid, okay. So for example, if somebody is being prosecuted for an offense which is covered in any of this law, now this law is void under 13(1) after constitution came into being, but the prosecution of that person will not be dropped because
this provision does not have a retrospective effect. Okay, this was one of the findings in the judgment of Keshavan Madhavan Menon versus State of Maharashtra. Okay. Okay. हाँ, अब मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ऑलरेडी ब्रीफ में बता दी थी इन द स्टार्टिंग कि व्हाट डज इट मीन. सो इट एक्चुअली इवॉल्व्ड इन द केस ऑफ भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. It was also discussed in the Keshavan Madhavan judgment that we just saw. Yes. Now, generally, doctrine of eclipse does not apply to post-constitutional laws as these laws are void ab initio. This was held in Deepchand case. ठीक है, ये सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, इतने तो आपको bare minimum पता ही होने चाहिए. Okay. Archana is saying, please explain retrospective term. Yes. So, Archana, retrospective का मतलब होता है something which applies from a date preceding, right? So when we say that, So when we say that 13(1) only has a prospective application, इसका मतलब ये है कि the laws which are violating fundamental rights, okay, they will only be valid, they will only be invalid prospectively, not from a previous date. I'll just give you an example. ठीक है, let's say there is a law which was enacted in the year 1947. ठीक है, let's say it provided for an offense of bribery. ठीक है, कुछ मान लीजिए कुछ bribery से related offense उन्होंने create किया and the punishment was, let's say, 2 years. Okay, now this law was made in 1947. Constitution came into effect in 1950, right? तो अब क्या है कि 1947 से लेके 1950 तक this law will be valid, right? Now let's say अगर ये law, if it is violating, let's say Article 19, ठीक है, तो now this law is unconstitutional or void, a better term, right? So now this law is void because of Article 13(1), because Article 13(1) says that if any pre-constitutional law violates Part 3, then it becomes void. ठीक है, so what we are saying is that 13(1) has retrospective application and not retrospective, meaning thereby that this law was valid between this time period, between 1947 to 1950. Okay, so let's say if a person, Mr. X, was being charged for this offense of bribery under this law, ठीक है, तो now he cannot come and say in 1950 that, oh, this law is invalid, so I cannot be prosecuted under that. ठीक है, because this law is valid for anything that was done between 1947 to 1950. Okay, so that is why we are saying that this law will only be void prospectively, not retrospectively. Okay, Archana, is it clear now? Okay. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, a very small confusion. When a law is made for citizens only, right? Yes. But it is held to be void, then how would it become applicable, or how would it be still applicable to those who are non-citizens? How will it be done? Like, because the law, see, the protection of, let's say, Article 19, which is only available to citizens, that is not available to non-citizens, right? Foreigners don't have the protection of Article 19. So that law can be made applicable to them. Okay, that law can still be valid for them, but it will not be valid for Indian citizens. okay. That is what the Ambika Mills case has said. But yes, there is actually a lot of criticism also of this particular issue that you've pointed out. But that's mostly an academic discussion and hasn't really reflected in any judgments, right? Archana is saying that no, Archana. Retrospectively does not mean that they are applicable even after 1950. Okay, see, I hope you know the meaning of the term prospective and retrospective. Prospective का मतलब होता है something that applies from a later date. Okay, something which is prospective in nature, like it does not apply from a preceding date. Okay, retrospective का मतलब होता है it will apply from a previous date, even when it was not there. Okay. I hope you remember the example that I gave you, that law will be only valid from this time period to this time period. Okay, this law will not be valid after 1950. Okay, but if, for example, if a person is already being charged under this law, तो वो charge तो पूरा होगा ना, that will be completed under this law. So that does not mean that this law is still valid after 1950. What we are saying is that if anything is happening between this time period, then this law will apply to that things. Okay? Okay. Sure.
Okay. So now what we were talking about, yes, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आपको केसेस के नाम पता होने चाहिए. दैट दिस वाज इवॉल्व्ड इन दिस जजमेंट एंड दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी क्लैरिफाइड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कैन नॉट अप्लाई टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ठीक है, अब अगर किसी लॉ को हमने 9th शेड्यूल में रख दिया है देन ऑल्सो इट विल नॉट बी हेल्ड टू बी वॉइड. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल व्हेन अगेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 368. ठीक है, बिकॉज आर्टिकल 31A, B, C, 9th शेड्यूल, 368, ऑल ऑफ दीज आर लिंक्ड. ऑलराइट, चलो अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पे. दिस ऑल्सो आई एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली. सेवरेबिलिटी का मतलब होता है कि यू विल सेवर, okay, you will cut off that part which is offending fundamental rights, but you will retain the other law. Okay, other parts of the law will be valid. For example, if let's say only one provision of a law is violating, let's say Article 14, okay, then that whole law does not need to become unconstitutional or void. That is exactly what doctrine of severability says. That a law is void only to the extent of inconsistency or contravention. ठीक है, तो अगर पॉसिबल है ऑफेंडिंग पार्ट को सेपरेट करना फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट, then the whole law will not be void. Okay, now RMDC versus Union of India काफी landmark case था. This is a very landmark case which explains this doctrine of severability. ठीक है, तो आपको इस जजमेंट का नाम याद रखना पड़ेगा. Okay, अब ये टेस्ट काफी डिटेल्ड है. ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो. इस टेस्ट में बेसिकली ये देखा जाता है क्योंकि वी विल हैव टू फाइंड आउट, राइट, कि जो पार्ट ऑफेंड कर रहा है whether that can be severed or not, because if it cannot be severed from the law without that law becoming meaningless, then you will have to hold the entire law as unconstitutional. So test ye hai ki we will have to look at the intention of the legislature, ki whether they would have enacted this law without the inconsistent part or not. ठीक है, अगर inconsistent part and consistent part are mixed up, then that law cannot be severed. Okay, अब doctrine of severability has been applied in a lot of judgments, of course, right? अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स को वेव कर सकते हैं. ठीक है, कि वी हैव फंडामेंटल राइट्स बट कैन वी से दैट वी डोंट वांट देम. ओके, सो दैट अनफॉर्चुनेटली बोथ वेज इज नॉट अलाउड. इन द यूएस this option exists. Okay, you can waive your fundamental rights, but in India fundamental rights cannot be waived, and there are two landmark judgments for this point. First is the case of Behram versus State of Maharashtra, and the other one is Bashesharnath versus IT Commissioner. ठीक है, तो कोर्ट का कहना है कि फंडामेंटल राइट्स आर अ पार्ट ऑफ पॉलिसी. ओके, दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड पीपल कैन नॉट बेसिकली से दैट दे डोंट वांट देम. ओके, सो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर डज नॉट अप्लाई टू फंडामेंटल राइट्स. ऑलराइट, so you need to remember this basic position, and you need to remember the name of these two judgments which have cemented this position, right? In America, fundamental rights can be waived. Okay, so this is Article 13. If you have any questions, let me know. Otherwise, I'll move on to the first set of fundamental rights, which is right to equality. Okay. Okay. चलो, तो अब बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, has the most important and most confusing provisions of the entire chapter of fundamental rights. That is the provision on reservation, right? So a lot of students face difficulty in this area because they feel that there are too many judgments and it's not possible to remember all of them, which is fair, that's true, but you don't have to remember all the judgments. You only have to remember the landmark ones, and you have to have conceptual clarity of what exactly is the right position with respect to Article 15 and Article 16. Okay, Ashna is saying 13B, 13(3)B. Yes, I explained, right, that laws in force is not that relevant because it applies to pre-constitutional laws. Okay, मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्या है. Laws in force का मतलब है any law which was passed by a competent legislature. ठीक है, तो इंडिया में जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम, जो भी लॉज कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, दे आर लॉज इन फोर्स. ठीक है, सो दे शुड, इसकी दो कंडीशन होती है. फर्स्ट, दे शुड बी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दे शुड नॉट बी रिपील्ड. ठीक है, अगर वो रिपील हो गए हैं तो ऑब्वियसली दे विल नाउ नॉट बी कंसिडर्ड टू बी लॉज इन फोर्स, राइट? सो दिस डेफिनेशन इज एक्चुअली नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट? ठीक है, सो सी, पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स is understanding what is relevant and what is irrelevant. Okay, so both things have to be considered because of course the constitution is huge, and if we need to read it
It will take us a lot of time, and you should definitely do that. You should read the constitution in detail. But if we are thinking about preparing for this subject for CLAT PG, which is like a month away, okay, then we need to thoda sa compartmentalize. Okay, so 13.3b, you need to definitely know what it is about, but it's not relevant from an exam perspective. Okay, chalo. Now I'll come to right to equality. Right to equality में we have Article 14, 15, 16, 17 and 18, right? Article 14 जनरल बात करता है कि there will be equality before law. ठीक है, तो एक जनरल प्रोविजन है इक्वालिटी का, जिसके अब स्पेशल प्रोविजंस हम देखेंगे आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 में. ठीक है, आर्टिकल 14 जनरली बात करता है कि लॉ के सामने एवरीबडी इज इक्वल, everybody is entitled to equality before law and everybody is entitled to equal protection of laws in the territory of India. Okay. Now Article 15 and 16 take it a step further. They say yes, we have equality, and to reinforce that we need to understand a few more things. We need to lay down certain principles of non-discrimination. ठीक है, तो Article 15 बात करता है prohibition of discrimination in public places. ठीक है, तो 15(1) बात करता है कि आप इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट. 15(2) बोलता है कि पब्लिक प्लेसेस में भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, राइट? सो 15(2) इज एप्लीकेबल टू प्राइवेट पीपल, सिटीजंस, इंडिविजुअल्स आल्सो, राइट? 15(3) बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन की, कि आप यू कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. 15(4), 5 and 6, okay, ये बाद में ऐड हुए, ये these came through amendments and they talk about reservation in educational institution. ठीक है, 15(4) जनरल बात करता है कि आप जनरली SCBCs यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और SCs और STs के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो. ठीक है, 15(5) पर्टिकुलरली बात करता है कि आप इनके लिए जो स्पेशल प्रोविजंस बनाओगे they can be with respect to admission in educational institutions. ठीक है, 15(6) which was recently added by the 2019 amendment deals with EWS reservation in the same area. Okay, अभी we'll come back to this later. फिर आर्टिकल 16 बात करता है सेम चीज की जो हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा कि there should be equality. उसी का एक स्टेप फर्दर इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, कि जब भी हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे भी देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो यहाँ पे 16(4) टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लासेस, एंड 15(4) टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन इन प्रमोशंस. 15(4)B talks about carry forwarding of vacancies, and 15(5) is not very important. 15(6) talks about same things for EWS. Okay, then we have two other articles which are important but nothing too detailed in them to read. Article 17 बात करता है कि untouchability will be abolished and if it is practiced in any form it will be punishable by law. Article 18 बात करता है abolition of titles. ठीक है, तो अब मैं धीरे धीरे करके आई विल कवर ऑल दीज आर्टिकल्स. विल स्टार्ट विद आर्टिकल 14. ओके, अब आर्टिकल 14 में सी आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है क्योंकि इट्स वेरी इजी. आर्टिकल 14 बात करता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन. ठीक है, मतलब ये हर किसी के पास अवेलेबल है, नॉट जस्ट सिटीजन बट ऑल्सो नॉन सिटीजन. तो स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस. ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. One is the test of reasonable classification. ठीक है, कि reasonable classification क्या कहता है, और दूसरा है टेस्ट ऑफ नॉन आर्बिट्रेरीनेस. ठीक है, तो ये दो टेस्ट कोर्ट्स ने डेवलप किए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू सी वेदर अ लॉ, वेदर एनी एक्शन बाय द गवर्नमेंट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 और नॉट. सो नाउ आई विल स्टार्ट. Okay. Okay. So Article 14 is available to all persons. Article 14 is the genus, यानी कि वो एक बड़ा it's a larger umbrella, and Article 15 and 16 are species under that. Article 14 is also modeled on Article 7 of the UDHR, your Human Rights Convention, and right to equality has been held to be a part of basic structure. ठीक है, ये कुछ basic बातें हैं.
आर्टिकल 14 को कोर्ट ने काफी इंटरप्रेट किया है और कोर्ट ने उसमें काफी सारी डॉक्ट्रिन्स को रीड किया है, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी इस्टॉपल। ठीक है, ये जो डॉक्ट्रिन होती है प्रोमिसरी इस्टॉपल, इट इज अ डॉक्ट्रिन विच इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, कि अगर स्टेट ने कुछ प्रॉमिस किया है, ठीक है, तो देन द स्टेट इज बाउंड टू डिलीवर दैट। ओके, ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं होती है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डॉक्ट्रिन विच you can only understand by looking at facts of any particular case, but the court has read this doctrine in article 14। ठीक है, similarly doctrine of non arbitrariness, जो कि एक टेस्ट भी है आर्टिकल 14 का, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, कि जब भी आप अगर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं होते हैं तो दे विल वायलेट आर्टिकल 14 एंड दे विल वायलेट आर्टिकल 21 एज वेल, राइट। नाउ आर्टिकल 14, जैसे मैंने आपको बताया, इट टॉक्स अबाउट टू थिंग्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ को हम बोलते हैं कि ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बोलता है कि किसी के भी फेवर में आप स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दोगे। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ऑन द अदर हैंड एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन डालता है ऑन द स्टेट कि जो भी लोग सिमिलरली सिचुएटेड हैं उनको स्टेट इक्वल प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, नाउ देर आर ऑफ कोर्स सम एक्सेप्शंस टू दिस, जैसे कि जो हम फॉरेन डिप्लोमैट्स को इम्यूनिटी देते हैं फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, that is a violation of article 14, ठीक है, but it is a recognized exception। okay, similarly article 361 जो प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी देता है in certain cases, that is also an exception to article 14। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि everybody is equal before law, then why are we giving immunity to president or governor? It is because they are exceptions and they are required to be allowed because of public policy। okay, now article 14 का पहला जो टेस्ट है, जैसे मैंने आपको बोला, इज द टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 14 ये नहीं बोलता है कि आपको हर किसी को एकदम एक साथ ट्रीट करना है। ओके, इफ समबडी इज सिचुएटेड एट अ डिफरेंट फुटिंग देन दे विल हैव टू बी ट्रीटेड इन दैट मैनर। ओके, तो बेसिकली इक्वल्स हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल्स हैव टू बी ट्रीटेड अनइक्वली। ठीक है, तो आर्टिकल 14 में इक्विटी का कॉन्सेप्ट इनबिल्ट है। तो अब हमें ये देखना है कि अब अगर मान लीजिए हमने कोई एक क्लासिफिकेशन किया एंड वी गेव देम सम डिफरेंट rights, okay, then whether that is permissible under article 14 or not, that can be basically understood from the doctrine of reasonable classification। Danish, I didn't understand ketchup rule, okay, first the spelling is very funny are you talking about the catch-up rule, CATCH, the catch-up rule or the ketchup rule? Catch-up rule, from what I am understanding, if it is catch-up rule indeed, it is applicable on Article 16. Okay, it is not something which we talk about under Article 14. Okay, but yes, I wish there was a catch-up rule also. ठीक है, चलो, so Article 14 क्लास लेजिस्लेशन को फॉरबिड करता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपसी दो तीन चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। पहले तो ये देखेंगे हम कि जो आपने क्लासिफिकेशन किया है वो रीजनेबल है या नहीं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो आपने क्लासिफिकेशन किया है उसका आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आप अचीव करना चाह रहे हो, उससे कोई नेक्सस या रिलेशन है या नहीं। ठीक है, तो अगर आप इस टेस्ट को फुलफिल कर लेते हो देन इट विल नॉट वायलेट आर्टिकल 14। बट अगर आपने सिर्फ क्लास लेजिस्लेशन बना दी, ओके, कि यू ओनली आइडेंटिफाइड अ क्लास एंड गेव देम सम डिफरेंट प्रोसीजर विदाउट जस्टिफाइंग व्हाई, विदाउट एस्टैब्लिशिंग अ नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट यू आर डूइंग, then that will not be allowed। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि क्लास लेजिस्लेशन इज नॉट परमिसिबल बट रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज परमिसिबल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन can be there but it has to be on reasonable grounds। ठीक है, अब आर के डालमे वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर was one of the judgments in which the court laid down this test। उसके बाद और भी कई सारे जजमेंट्स आए हैं जिसमें इसको एक्सपैंड किया गया है, बट यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस केस। ओके, तो क्या है ये टू प्रोंग टेस्ट? फर्स्ट इज दैट the classification should not be arbitrary, artificial or evasive. It must be based on intelligible differentia। intelligible differentia मतलब कि आपने जो भी क्लासिफिकेशन किया है उसका आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि द पीपल हु आर इंक्लूडेड इन दैट क्लासिफिकेशन एंड द पीपल हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट क्लासिफिकेशन, वेदर दैट इज बेस्ड ऑन रीजन और नॉट। ओके, सो दैट इज सीन, and the differentia must have a nexus or reasonable connection with the object that you are seeking to achieve। okay, फिर कोर्ट ने लेकिन कहा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि yes, doctrine of reasonable classification is a good test but over emphasis on this kind of a test is also not required। ठीक है, तो कोर्ट ने इन रेफरेंस स्पेशल कोर्ट्स बिल में कहा कि ठीक है, दिस इज वन ऑफ द टेस्ट बट दिस डज नॉट हैव टू बी द ओनली टेस्ट
and this is when a new test also came to be applicable. ठीक है, बट उसके पहले एक और जजमेंट देख लेते हैं, अनवर अली सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 14 सारे मैटर्स पे अप्लाई होता है, ठीक है, सब्सटैंटिव मैटर्स पे भी, प्रोसीजरल मैटर्स पे भी। अगर प्रोसीजर भी वायलेटिव है, आर्बिट्ररी है, इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14, देन इट विल ऑल्सो बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 14 सिर्फ सब्सटैंटिव मैटर्स पे अप्लाई होगा, राइट। फिर चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने कहा कि इवन वन पर्सन, इवन वन इंडिविजुअल कैन बी ट्रीटेड एज अ क्लास इन हिमसेल्फ, ठीक है। इस केस में एक्चुअली कुछ आई थिंक द इशू वाज विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर के लिए जो लॉ बना है, तो कोर्ट का कहना था कि इवन वन पर्सन, इवन वन इंडिविजुअल, इवन वन ऑफिस, दैट इन इटसेल्फ मे ऑल्सो बी अ क्लास फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 14, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी पे। एज आई सेड कि कोर्ट का कहना था कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन डॉक्ट्रिन इज वेल एंड गुड, बट दैट इज नॉट सर्विंग द पर्पस, ठीक है। इट इज स्टिल नॉट प्रूविंग to be covering all instances of inequality that have to be struck down under Article 14. Okay, so E.P. Royappa is that judgment which is called as incorporating this new concept of equality. ठीक है, कोर्ट ने इसमें रिकॉग्नाइज किया था कि we need to have a dynamic approach to Article 14, और यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया कि नॉन आर्बिट्रेरीनेस also needs to be seen, ठीक है, क्योंकि आर्बिट्रेरीनेस एंड इक्वलिटी दे आर पोलर ऑपोजिट्स, राइट। तो अगर कोई स्टेट एक्शन आर्बिट्रेरी है तो वो भी आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा, ओके। एंड देन दिस वाज फाइनली सीमेंटेड इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे कोर्ट ने कहा था कि नॉन आर्बिट्रेरीनेस इज ऑल्सो अ टेस्ट अंडर द अंडर आर्टिकल 14, ओके। यस अर्चना, अनवर अली सरकार केस में कुछ भी नहीं था, उसमें बस ये था कि सी आर्टिकल 14 है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, ये सिर्फ सब्सटैंटिव लॉ पे इट विल नॉट अप्लाई, इट विल अप्लाई टू प्रोसीजरल लॉ ऑल्सो, ओके। बिकॉज इन दिस केस आई रिमेंबर इन द केस ऑफ अनवर अली सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, दे एक्चुअली classified some offenses under the criminal law, and they said that for prosecuting these offenses a different procedure will apply, okay. So that was challenged in the court, saying that this different procedure that is being prescribed is violative of Article 14. So in that case, court said कि yes, even the procedure can be discriminatory. Okay, it's not just that Article 14 only applies to substantive matters; it can apply to procedural matters as well. Okay, so that is the whole judgment. ठीक है, कोर्ट ने यही कहा था कि ऐसा जो लॉ है which is giving arbitrary power to the government to select cases which will be tried by a special procedure, that is also void. Okay, गवर्नमेंट ऐसे पिक एंड चूज नहीं कर सकती है कि किसके ऊपर कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है, राइट। ओके, है ना। तो अब क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी अप्लाई होती है एंड डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस ऑल्सो, ठीक है। नाउ विद टाइम द शिफ्ट हैज बीन मोर टुवर्ड्स डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। तो कोर्ट ने कहा है कि अगर स्टेट एक्शन आर्बिट्ररी है, ठीक है, तो फिर उसे रीजनेबल क्लासिफिकेशन डॉक्ट्रिन भी सेव नहीं कर पाएगी, है ना। और अभी रिसेंट जजमेंट्स में आपने पढ़ा भी होगा कि कोर्ट हैज आल्सो स्टार्टेड यूजिंग अ टर्म manifest arbitrariness, okay, arbitrariness which is so manifest, so apparent that will violate Article 14 as well as Article 19. ठीक है, so this is about Article 14, ठीक है। जितने भी whatever judgments we discussed in this slide, all of them are important and you only have to remember them to the extent that we have discussed, okay. So landmark judgments are very important to memorize, especially their key points as to what they basically held, like their very key finding for which they are well known. All right, so that is Article 14. Now we come to Article 15, okay, very quickly. Now Article 15 and Article 16 are very linked, so whatever judgments we will see for Article 15 and Article 16, they'll be the same, right? So judgments on reservation more or less are same, even though Article 15 and 16 talk about different things, right? अब see, Article 15(1) very easy, बोलता है कि state will not discriminate on these grounds. Okay, now you have to memorize these grounds. There are 5 grounds and you should know what they are. ठीक है, so the grounds are religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. 15(2) also very easy. 15(2) बोलता है कि 15(1) क्या बोलता है, स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट। 15(2) बोलता है कि कोई भी सिटीजन को आप पब्लिक प्लेस में डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे इन ग्राउंड्स पे, ठीक है। तो अब डिफरेंस ये है कि 15(2) कैन अप्लाई टू इंडिविजुअल्स, सिटीजन्स, प्राइवेट पीपल, okay, to them as well. For example, if you go to a restaurant
and they refuse to let you in because of your religion, then you have your 15(2) has been violated. Okay, so क्योंकि generally हमने देखा है कि fundamental rights are only available against the state. ठीक है, but this is one example where fundamental rights are available even against other persons. ठीक है, तो 15(2) भी easy है ना। यहाँ पे उन्होंने बताया कहाँ कहाँ पे आप पढ़ सकते हो, कि मतलब मोस्टली पब्लिक प्लेसेस, राइट, लाइक दैट इज द बेसिक एसेंस। 15(3) टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। 15(4) अब 15(4) जो है दिस वाज एडेड बाय अ जजमेंट। ठीक है, तो मैं पहले आपको 15(3) तक के कुछ पॉइंट्स दिखा देती हूँ एंड देन वी विल टॉक अबाउट द अमेंडमेंट्स। ठीक है, हाँ, तो पहली बात तो ये कि आर्टिकल 15 इज अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी। ये जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट अ जनरल थिंग दैट देयर बी राइट टू इक्वालिटी, बट देन वी हैव special applications of article 14 in the examples of article 15, 16, 17 and 18, जो particularly किसी एक एरिया में इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कोर्ट का कहना है कि इफ अ लॉ इज मेड विच वायलेट्स आर्टिकल 15, ठीक है, अगर वो आर्टिकल 15 को वायलेट कर रहा है, then it cannot be saved by the doctrine of reasonable classification. That is obviously very logical. Article 14 on one hand applies to everybody, all persons, but Article 15 is only available to citizens. Okay? One thing that I forgot to tell you was that Article 14 can apply to artificial persons as well. Okay? I hope you know what are artificial persons. Persons who are not human beings, but they are classified as persons under the law. For example, a company which has been incorporated under the Companies Act 2013 or 1956 is a person in the eyes of law. ठीक है, तो this company will also be covered under Article 14. ठीक है, तो Article 14 में when they say any person, human beings, non-human beings who are classified as persons, citizens, non-citizens, all of them are covered. ठीक है, Article 15 on the other hand is only available to citizens. ठीक है, yes, Danish R.C. Cooper was a good example of this. ठीक है, चलो, क्लॉज 1 हमने देख लिया, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट। क्लॉज 2 में प्राइवेट पर्संस भी कवर हो सकते हैं। 15(3) टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, नाउ वी कम टू द केस ऑफ द फर्स्ट केस, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम डोराई राजन। ठीक है, इस केस में कोर्ट ने कहा, now this is the judgment because of which article 15(4) was added by the very first amendment. ठीक है, ओके, ठीक है। अब इस केस में इशू ये था कि मद्रास गवर्नमेंट ने इन द ईयर 1950 दे इशूड अ नोटिफिकेशन सेइंग दैट मेडिकल कॉलेजेस में the seats will be divided community wise. ठीक है, तो basically they were allotting seats on the basis of caste. Now this was challenged before the Supreme Court saying that this is violating Article 29 clause 2. ठीक है, I'm not sure if you guys remember 29(2), but I'll quickly show you. ठीक है, 29(2) clearly बोलता है कि in matters of educational institutions, in matters of admission, you will not discriminate on these grounds, and caste is one of the grounds of non-discrimination under Article 29(2). ठीक है, हाँ देखो, 29(2) बोलता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ठीक है, तो द ऑर्डर ऑफ मद्रास गवर्नमेंट इन दैट केस ऑफ द वन दैट वी आर सीइंग राइट नाउ, they challenged that order saying that you are dividing seats on the basis of caste and that is violating 29(2), because 29(2) clearly says that on the basis of caste you cannot deny somebody admission in any educational institution, right? So that was very fair. So this is why in the case of State of Madras versus Champakam Dorai Rajan, Supreme Court struck down this notification. Court said that this government order is violative of 29(2) and hence invalid, right? Now because of this, the first constitutional amendment added Article 15 clause 4. Okay, because see, if now this question would have come, obviously this would have been allowed, because we know that reservation on the basis of caste is permissible because of Article 15 clause 4 and 15(6), right? So this is something which was not the situation back in 1950. Okay, so this is the reason why the first amendment added Article 15 clause 4.
Okay, so I'll just quickly show you. ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए वो नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज से भी शुरू होता है, दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन 29(2), ठीक है, 29(2) को भी ओवरराइड किया उन्होंने कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन 29(2) शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी एसईबीसी जिसको हम बोलते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, or for SCs and STs. Okay, so you need to remember that 15(4) is applicable to SEBCs, SCs and STs. ठीक है, अब ये क्या होते हैं इसके बारे में I will talk about, but first I'll cover article 15 and 16. Then I will also tell you कि where exactly are they defined. How do we recognize if somebody is an SEBC, SC or ST or not? What is the test? ठीक है, तो 15(4) is this. 15(5) अब particularly बात करता है in educational institutions में admission, ठीक है, कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन 19(1)G. 19(1)G को क्यों ओवरराइड किया? क्योंकि 19(1)G आपको फ्रीडम देता है दैट यू कैन चूज एनी ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस एक्सेट्रा, राइट? तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है, यू हैव द फ्रीडम टू डू दैट, यू हैव द फ्रीडम टू लेट्स से इवन ओपन योर स्कूल, बट इवन देन स्टेट मे प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन दैट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो इसलिए दे हैड टू ओवरराइड 19(1)G एज वेल. Nothing in this article or in 19(1)G shall prevent the state from making any special provisions by law for the advancement of any SEBC, SC or ST insofar as they relate to admission in educational institutions, including private institutions. ठीक है, तो private institutions पे भी apply होता है. The only exception is minority institution. ठीक है, तो private institution चाहे aided हो या unaided हो, but minority institutions under 30 clause 1 are not covered under 15(5). ओके, तो हमने क्या देखा कि 15(5) बोलता है कि यू कैन मेक अ लॉ, ठीक है, आप ये रिजर्वेशन यू कैन नॉट डू इट बाय अ नोटिफिकेशन, यू हैव टू मेक अ लॉ. ओके, और यहाँ पे लॉ का मतलब सिर्फ लेजिस्लेशन है. ओके, व्हाई इज दैट? बिकॉज आर्टिकल 13 की जो डेफिनेशन थी ऑफ लॉ दैट वाज ओनली एप्लीकेबल टू दैट आर्टिकल, उसमें शुरू ही उन्होंने ऐसे किया है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस आर्टिकल. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कि दिस हैज टू बी बाय लॉ, वी मीन दैट दिस हैज टू बी बाय वे ऑफ अ लेजिस्लेशन. ठीक है, तो आप यहाँ पे SEBCs, SCs एंड STs के फेवर में रिजर्वेशन दे सकते हो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बट एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. ओके, नाउ वी कम टू 15(6). 15(6) में सेम चीज बोली हुई है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 15(4) एंड 15(5), but the only difference is that this is about EWS, the same thing but now applicable to economically weaker sections. ठीक है, so nothing in this shall prevent the state from making any special provision for advancement of EWS. ठीक है, so this is like 15(4) and the next one is like 15(5). this can be for admission in educational institution. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ differences हैं जो आपको पता होने चाहिए कि उन्होंने clearly they have excluded the classes mentioned in clause 4 and 5. Okay, which means that, see, I'll quickly explain. EWS is based on what ground? It is based on economic grounds, right? So the parameter of seeing whether somebody is an EWS will be on the basis of their financial condition. So government will specify some parameters that you must have this much family income, okay, this much land, whatever. They will specify the criteria and that is how they will determine whether you are EWS or not. ठीक है, अब now anybody can be EWS, है ना? Even people belonging to OBCs, SCs, STs, general category, anybody can fall in this category, right? Because it is based on economic criteria, it is not based on a caste criteria. But उसके बाद भी 6A and 6B have excluded these people from the EWS understanding. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने clearly बोला है कि EWS में आप जिसके लिए भी जो भी provisions बना सकते हो, they will be for EWS other than classes mentioned in 4 and 5. ठीक है, तो 4 and 5 में कौन कौन सी classes mentioned है? SEBCs, SC and ST. So these people will not be able to be classified as EWS even if they fulfill the criteria that is given for EWS. ठीक है, एक जो दूसरी चीज है जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम बता दिया है कि फॉर EWS the reservation cannot exceed 10% of the total seats in each category. ठीक है, तो ऐसा कुछ हमने क्राइटेरिया पहले नहीं देखा है. इंदिरा सोनी के जजमेंट में they did specify कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए जनरली, तो दैट इज वाई उन्होंने क्लासिफाई किया है
कि ईडब्ल्यूएस को हम जो रिजर्वेशन देंगे दैट कैन बी मैक्सिमम ऑफ 10%, ठीक है, इन एडिशन टू वट एवर इज द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, राइट? नाउ दिस ईडब्ल्यूएस amendment has been held to be constitutional last year in the case of Janhit Abhiyan versus Union of India. Okay. तो ये था 15.6। अब 15.6 में ही एक्सप्लेनेशन में उन्होंने डेफिनेशन भी बताई है कि हु इज ईडब्ल्यूएस फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 15 एंड 16। तो उन्होंने कहा है कि इट विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट नोटिफाई करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। ठीक है, अच्छा, नाउ वन मोर थिंग दैट आई विल क्लैरिफाई फॉर बोथ आर्टिकल 15 एंड 16। 15.4, 15.5, 15.6, article 16.4, 16.4a, all these articles are discretionary in nature, ठीक है, these are also called as enabling provisions, okay, a very key term which you have to understand. See, nobody has a right to claim reservation, okay, if the government, if the parliament has made a law providing for reservation, only then you can claim it, ठीक है। तो 15.4, 15.5, 15.6, 16.4, 4a, ये जितने भी जो बात करते हैं रिजर्वेशन की या स्पेशल प्रोविजंस की, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड इनेबलिंग प्रोविजंस। इनेबलिंग प्रोविजन का मतलब है दे इनेबल द गवर्नमेंट to provide reservation or to provide special provision, okay, but you do not have a fundamental right to go and ask them for something, okay, that is not a fundamental right because all of these things are only discretionary in nature, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। बट हाँ, एक बार इफ द लॉ इज मेड, इफ अ पॉलिसी इज रोल्ड आउट, then if you are being discriminated against, if you fall in that category, then you can definitely claim violation, okay. Yes, Danish, Justice CJI Lalit and Justice Bhatt dissented in the Janhit Abhiyan case. Yes, we will talk about that. Okay, ठीक है। अब एक और important point है कि if you are not born in that caste, if you acquire that caste, how can you acquire a caste? Women can acquire the surnames when they marry, right, or by adoption your caste may change। तो कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि if a woman by birth does not belong to a backward class, but upon marriage she will not be entitled to claim the benefit of reservation under the backward class, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर पोजिशन है कि आप मैरिज के थ्रू अपना कास्ट स्टेटस चेंज नहीं कर सकते, ओके। सो दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ Valsamma Paul versus Cochin University and Sandhya Thakur versus Vimla Devi Kushwaha, ठीक। अब आते हैं एससीबीसी की डेफिनेशन पे, क्योंकि who are SCs, who are STs is clear, that is defined in the constitution also, although now even SCBCs are defined, I will explain this a little later, but who are SCBCs, okay, because SCBCs में हमें समझ नहीं आ रहा है कि what caste are we talking about, right। तो कोर्ट ने इसका टेस्ट ले डाउन किया है कि SCBC में दोनों चीजें होनी चाहिए, they should be socially backward also and they should be educationally backward also। कोर्ट का कहना था कि पॉवर्टी अलोन यानी इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन cannot be the test of backwardness, but caste may be a relevant factor, ठीक है, although caste also cannot be the sole criteria, but caste may be a relevant factor, ठीक है। अब ये जो जजमेंट्स है ये हम आर्टिकल 16 में भी देखेंगे, MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, स्टेट ऑफ AP वर्सेस बलराम, KC वसंत कुमार, राइट, ऑल ऑफ दिस। MR बालाजी में कोर्ट ने कहा 15.4 is an exception to 15.1, later in Indra Soni court said no, 15.1, 15.4, these are only enabling provisions, right? 15.4 when it says that you can make special provisions, it's only an enabling provision and it is not an exception to 15.1, okay। So they were basically clarifying that reservation, concept of reservation is not violative of concept of equality, okay, which is now the acceptable position। So MR Balaji में they did say this, but this was overruled। फिर इसमें कहा इन्होंने कि backwardness must be both socially and educationally, that is true। Caste alone cannot be the criteria, this was also later overruled। Poverty can be a relevant factor, this is true, but not the economic status does not play a lot of role। फिर उन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लास को आप बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड में नहीं डिवाइड कर सकते हो, दिस वाज आल्सो ओवररूल्ड इन इंदिरा सोनी, ओके। फिर उन्होंने कहा रिजर्वेशन शुड बी लेस देन 50%, व्हिच इज द राइट पोजीशन, ओके। अब ये भी कुछ चीजें हैं आप पढ़ सकते हो। राजेंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में कोर्ट ने कहा कि
बैकवर्डनेस का जो टेस्ट है, बैकवर्डनेस कैन सोलली बी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, राइट। इसको स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस बलराम में भी अपहोल्ड किया गया। केसी वसंत कुमार ने थोड़ा डिफरेंट स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि कास्ट एंड पॉवर्टी बोथ शुड बी रेलेवेंट फैक्टर्स, ठीक है। अब सी, all of them are fine, but now the only case which is very relevant is the case of Indraswamy, because that authoritatively decided everything that we are discussing, ठीक है। तो आप ये थोड़ा बहुत इनके बारे में पता कर सकते हो, बट अल्टीमेटली यू शुड बी क्लियर ऑन इंद्रास्वामी's केस, ठीक है। तो इंद्रास्वामी के केस में कोर्ट ने कहा कि कास्ट कैन बी अ डोमिनेटिंग फैक्टर, कास्ट सोल फैक्टर भी हो सकता है ना। पॉवर्टी अलोन कैन नॉट बी अ सोल फैक्टर फॉर डिसाइडिंग SEBC, ओके। कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% एक्सेप्ट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, ठीक है। मतलब उन्होंने एक्सेप्शंस रिकॉग्नाइज किए कि हो सकता है इन सम केसेस रिजर्वेशन में एक्सीड 50%, ओके। कोर्ट ने ये भी अपहेल्ड किया कि बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBCs कैन बी डिवाइडेड इनटू बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड, ठीक है। और उसमें से भी मोर बैकवर्ड को रिजर्वेशन मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आते हैं एक और जजमेंट पे, एक और अच्छे पॉइंट पे, कि जो सुपर स्पेशलिटी स्कीम्स होती हैं, सुपर स्पेशलिटीज जो होती हैं, वहां पे रिजर्वेशन विल नॉट अप्लाई, ठीक है। तो कोर्ट ने प्रीति सागर के केस में कहा कि ऐसे एरियाज जो सुपर स्पेशलिटी हैं, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल फील्ड में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से अ कार्डियो सर्जन, राइट, अ हार्ट सर्जन, अ ब्रेन सर्जन, तो उन केसेस में जो भी सुपर स्पेशल स्कीम्स हैं, सुपर स्पेशलिटीज हैं, वहां पे रिजर्वेशन विल नॉट अप्लाई, वहां पे सिर्फ आप मेरिट के बेसिस पे ही एडमिशन दे सकते हो, ठीक है। ओके, फिर आर्टिकल 15(5) वाज एडेड बाय दिस अमेंडमेंट, ठीक है। अब जब भी देखो कि कुछ ऐड हुआ है तो उसके अमेंडमेंट्स यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, ओके। तो 15(5) वाज एडेड बाय 93rd अमेंडमेंट and this was enacted after the judgment of PA Namdar case, right? क्योंकि PA Namdar and TMA Pi Foundation, both these cases were on private institutions and how much the state can regulate them, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि we can regulate them, in fact we can even make reservation provisions for private institutions as well, right? अशोक कुमार ठाकुर के केस में कोर्ट ने 93rd अमेंडमेंट एक्ट को अपहेल्ड किया, यानी कि 15(5) की वैलिडिटी को उन्होंने अपहेल्ड किया, ओके। और ये है आपका रीसेंट जजमेंट, जिसको मैंने बताया था आपको, दैट EWS criteria, the 103rd Constitutional Amendment Act was upheld in the case of जनहित अभियान versus Union of India by a 5-judge bench, ठीक है। 3:2 की मेजोरिटी से डिसाइड हुआ था। CJI ललित and Justice Bhatt were in dissent, okay. So this is about Article 15. Take a minute, let me know if you have any questions. Okay, now we come to Article 16, ठीक है। Article 16 very important, right? Article 16 बात करता है equality in matters of public employment की, ठीक है। कि हमने Article 15 किस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि जनरल नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल है ना। उसके बाद ठीक है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का वगैरह वो आ गया, बट Article 16 बात करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में देयर विल बी इक्वालिटी, राइट। So there shall be equality of opportunity for all citizens, okay, again only applicable to citizens in matters relating to employment of appointment to any office under the state, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ग्राउंड्स बता दिए कि आप इन ग्राउंड्स पे तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। अब ये ग्राउंड्स थोड़े डिफरेंट है, ओके। आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड्स थे, यहाँ पे 7 ग्राउंड्स हैं, तो 2 एक्स्ट्रा ग्राउंड्स हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम, ओके। 16(3) also not very important. 16(3) बात करता है कि सी अगर if we have to provide that for somebody to be eligible for any public employment, they have to be resident of that state for certain time period. That can be done, but that can only be done by the parliament by making a law, ठीक है। तो मतलब अगर आपको रेसिडेंस की रिक्वायरमेंट कहीं डालनी है तो वो आप डाल सकते हो प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट, कि यू नो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू अप्लाई फॉर द पोजिशन ऑफ लेट्स से civil judge in the state of let's say Mizoram, okay, then you have to be resident of Mizoram for at least 2 years before applying, okay? इस टाइप की कंडीशन कैन बी पुट
बट इट कैन ओनली बी पुट बाय द पार्लियामेंट बाय वे ऑफ अ लॉ, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर ये नहीं कर सकती है, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने बस तरीका बताया कि अगर आपको ऐसा करना है तो दिस कैन ओनली बी डन बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, ओके। Then we come to 16(4). Very important. This is the provision which talks about reservation. ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि किसको reservation मिलेगा और किन grounds पे मिलेगा. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens. ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? Backward class of citizens. आर्टिकल 15 में कीवर्ड क्या थे? SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, SCs एंड STs. यहाँ पे क्या है? बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, ठीक है। अब बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन में SCs एंड STs आर इंक्लूडेड, ठीक है। जजमेंट्स में क्लैरिफाई ऑलरेडी कोट कर चुकी है, ओके। अब क्या इसके लिए क्या सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इफ यू वांट टू गिव रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लासेस, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये बैकवर्ड क्लासेस इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट are not adequately represented in the services under the state, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है कि अगर आपको बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, then the state should first form the opinion that they are not adequately represented in the services, ठीक है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है adequate representation, कि अगर वो adequately represented नहीं है तो आप उन्हें रिजर्वेशन दे सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं 4A पे. अब 4A, as you can see, it was added later on. This was added by the 77th amendment after the Indira Sawhney judgment. क्योंकि इंदिरा सोनी के केस में कोर्ट ने क्या दिया था? That you cannot give reservation and promotion. Okay, so then the parliament came up with the 77th amendment act and they added article 16(4). Okay, तो ये बोलता है nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion with consequential seniority in favor of SCs and STs. ठीक है, now यहाँ पे क्या qualifier है? 16(4) was applicable to backward classes, right? जिसमें SC, ST include होते हैं and other classes as well, OBCs also, right? But 16(4)A में reservation and promotion can only be given to SCs and STs. ठीक है, again same चीज, इस state के opinion में they should not be adequately represented, only then they can be given this reservation. Okay? अब ये क्या होता है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, ये मैं आपको भी बताऊंगी जजमेंट्स देखते हुए, बट आप इसका अमेंडमेंट याद रख सकते हो कि पहले ये टर्म नहीं था कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, इट वाज एडेड बाय द 85th अमेंडमेंट एक्ट. ओके, नाउ वी सी 16(4)B. 16(4)B बात करता है कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज की, क्योंकि इंदिरा सोनी के केस में, इंदिरा सोनी का केस वाज आल्सो नॉट इन फेवर ऑफ कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज, राइट. तो 16(4)B लाई पार्लियामेंट बाय 81st अमेंडमेंट एक्ट, और उन्होंने कहा कि वी कैन कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज एज वेल. ओके, कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है? आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ठीक है, मान लो इन द ईयर 2023 लेट्स से यू हैव योर सिविल जज एग्जाम एंड यहाँ पे लेट्स से 50 सीट्स आर फॉर जनरल, 18 आर फॉर SCs, 18 आर फॉर STs. ठीक है, मान लेते हैं ऐसा है. अब मान लीजिए दैट दीज 18 सीट्स ऑफ SCs आर नॉट फिल्ड, only 10 seats are filled. ठीक है, तो क्या हुआ? 8 seats are left, right? 18 were advertised and only 10 could be filled. 8 could not be filled. तो 16(4)B बोलता है अकॉर्डिंग टू द कैरी फॉरवर्ड रूल कि आप इस वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इन द कमिंग ईयर्स. ओके, तो अगर हम मान लीजिए नेक्स्ट ईयर नोटिफिकेशन आएगा इन द ईयर 2024, these vacancies can be added to whatever vacancies come for SCs in that year. ठीक है, तो आप ये जो वैकेंसी, जैसे 8 वैकेंसी हैं, अब आप इनको नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी में काउंट नहीं करोगे टू कैलकुलेट 50% सीलिंग. ओके, तो दे आर नॉट काउंटेड. तो मतलब आप उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर द कमिंग ईयर्स. दैट इज व्हाट कैरी फॉरवर्ड मीन्स. ओके, ma'am? Yes. Ma'am, the remaining 8 seats will be carried forward, right? And that will not be counted in the 50% cap. Yes. In the next year, whenever they are included, आप वो 8 सीट्स को ऐड नहीं करोगे टू कैलकुलेट की वेदर SCs का जो टोटल रिजर्वेशन परसेंटेज है 50% को एक्सीड कर रहा है या नहीं. ठीक है, ओके, ठीक है. सो दैट इज 16(4)B. फिर आते हैं 16(5) पे. 16(5) ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. 16(5) बोलता है कि दिस इज अबाउट रिलीजियस ऑफिसेस. ठीक है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denomination institution shall be a person professing that religion. तो वो बोल रहे हैं कि सी
अगर स्टेट ऐसा लॉ बनाती है सेइंग दैट कि फॉर एग्जांपल तिरुपति बालाजी टेम्पल, ओके, इफ दे आर मेकिंग दैट लॉ कि जो तिरुपति बालाजी टेम्पल का बोर्ड होगा उसमें जो लोग होंगे गवर्निंग मेंबर्स, they will only belong to a particular faith of Hindu religion. Okay, they can make such a law. That is what 16(5) is permitting. ठीक है, तो एज आई सेड नॉट वेरी रेलिवेंट, मतलब कोई केस लॉ नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर से नहीं है लैंडमार्क जजमेंट्स में, सो इट्स नॉट, इट्स कॉमनली इग्नोर्ड, राइट। नाउ वी कम टू 16(6). ये आपका वही ईडब्ल्यूएस वाला अमेंडमेंट है जिसमें कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस को भी आप रिजर्वेशन दे सकते हो अप टू 10%, ठीक है, प्रमोशंस में नहीं, ओनली एट एंट्री लेवल। ओके, so this is a provision like 16(4). और यहाँ पे भी उन्होंने सेम चीज की, they have excluded backward classes. So backward classes, even if they are satisfying EWS criteria, they will still not be considered as EWS for the purpose of Article 16(6). Okay, so nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment of post in favor of EWS other than the classes mentioned in clause 4. Okay, and this reservation will be in addition to existing reservation and subject to a maximum of 10%. ठीक है, I hope the bare act is clear to everyone. अब I will quickly go through some case law. ठीक है, वैसे तो मोस्टली वही हैं, एम आर बालाजी, इंदिरा सोनी, फिर कुछ और नए भी हैं जैसे एम नागराज, देन देवेंद्र सिंह, ठीक है, so we will see all of them. Okay, now let's see difference between article 15 and 16. article 15 is wider than article 16 क्योंकि 15 in general non discrimination की बात करता है, लेकिन article 16 public employment में discrimination की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 16 में लेकिन ज्यादा ग्राउंड्स हैं, एज आई टोल्ड यू आर्टिकल 16 has 7 grounds of non-discrimination, article 15 only has 5. Okay, now both the articles can only be invoked by citizens. Okay, अब 16(1) provides for equality of opportunity in public employment, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एवरीबडी इज इक्वल, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट कैन पुट क्वालिफिकेशंस, है ना, कि मान लीजिए आप ये तो नहीं बोल सकते कि इफ देयर इज एन अपॉइंटमेंट फॉर doctors in a medical college, if you don't have the requisite qualification, you cannot say that you should also be eligible to apply for it, right? So obviously qualifications can be put, ठीक है। Reservation can be provided to those classes also which are not mentioned in 16(4). What do we mean by this? Okay, see, आपने अभी recent years में सुना होगा reservation for PWD, है ना, आप लोग if you guys are taking any exam, you would have seen this quota as well, कि PWDs यानी persons with disability के लिए कोटा होता है, ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए भी कोटा होने लगा है, राइट। तो ये सारे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये 16(4) में तो नहीं दिए हुए हैं, 16(4) तो बात करता है बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस की, विच इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड समवॉट ऑन इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। नाउ PWD एंड ट्रांसजेंडर कैटेगरीज आर नॉट satisfying this criteria, so how are these categories getting reservation? The answer is 16(1). okay, because अभी हमने देखा था कि एम आर बालाजी में कोर्ट ने कहा 16(4) एंड 15(4) आर एक्सेप्शंस टू 16(1), जो कि इंदिरा सोनी में कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गिविंग रिजर्वेशन और मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस इज अ पार्ट ऑफ इक्वालिटी, राइट, इट इज नॉट वायलेटिव ऑफ इक्वालिटी एज गिवन इन 15(1) और 16(1). तो यहीं से वो कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि 16(1) जो एक बेसिक नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल ले डाउन करता है, इट इंक्लूड्स इन इट स्पेशल प्रोविजंस फॉर वल्नरेबल कैटेगरीज, ठीक है। तो इसीलिए कोर्ट ने नहीं, स्टेट ने जब भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को रिजर्वेशन दिया है, इट इज गिवन अंडर 16(1). ओके, वो रिजर्वेशन 16(4) के अंदर नहीं दिया जाता है, इट इज गिवन अंडर 16(1). ओके, दिस हैज बीन क्लैरिफाइड इन अ लॉट ऑफ जजमेंट्स, प्राइमरी जजमेंट बीइंग राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, नो, आई डोंट थिंक दिस इज अ जजमेंट ऑन दिस पार्ट। इसके लिए आपका ये जजमेंट है जीजा घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर एक अभी 2020 में भी जजमेंट आया था विकास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारे जजमेंट्स हैं जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की बात करते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ reservation to PWDs, transgender categories, all of them are given under Article 16(1). Okay. अब educational qualification can be a basis, yes. Principle of equal pay for equal work is also a constitutional good, ठीक है। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, it is on DTSPs.
इसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 16 का एक गोल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। 16(2) के ग्राउंड्स आपको ऑलरेडी पता है। 16(3) ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। 16(4) पे अब हम आते हैं। ठीक है, अब कुछ और जजमेंट्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे, राइट। नाउ सी, we have seen that under article 16(4) reservation can be granted only to backward class of citizens, है ना। अब ये बैकवर्ड क्लास में कौन कौन इंक्लूड होता है? बैकवर्ड क्लास में एससीज एंड एसटीज आर इंक्लूडेड एंड दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, ईवी चिनैया इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट जो अभी रिसेंटली चैलेंज भी हुआ था एंड इट हैज बीन रेफर्ड टू अ लार्जर बेंच नाउ। ठीक है, तो ईवी चिनैया में लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि एससी और एसटीज आर इंक्लूडेड इन बैकवर्ड क्लासेस। ओके, इंदिरा सोनी में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, एज आई टोल्ड यू, कि 16(4) इज ओनली एन इनेबलिंग प्रोविजन एंड इट इज नॉट एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16(1). ओके, अब एससीज एंड एसटीज कहाँ पे डिफाइंड है? दे आर डिफाइंड इन 366 क्लॉज 24 एंड 366 क्लॉज 25। ठीक है, मैं ये अभी आपको इसके बाद बताने वाली हूँ। दिस इज अ होल डिफरेंट डिबेट that I will be coming to after I am done with Article 16. ओके, अब आते हैं कुछ जजमेंट्स पे। ठीक है, अब ये थोड़ा डिस्क्रेशनरी हो जाता है कि आप कितने याद रख पाते हो, राइट। क्योंकि इंदिरा सोनी इज द मेन वन जहां पे कोर्ट ने फाइनल फाइंडिंग्स दी कि दिस इज द पोजीशन। अब उसके पहले बट अ लॉट ऑफ केसेस केम, राइट। सम ऑफ देम मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू रिमेंबर सम की फाइंडिंग्स ऑफ दोस जजमेंट्स। तो पहला केस है जनरल मैनेजर सदर्न रेलवे वर्सेस रंगाचारी, जहां पे कोर्ट ने कहा कि आप रिजर्वेशन प्रमोशंस में भी दे सकते हो। ठीक है, एंड दिस वाज बिफोर 16(4)(a). 16(4)(a) वाज नॉट एडेड बाय देम। दिस इज द 1962 केस, राइट। तो इसमें भी कोर्ट ने तब भी कहा कि रिजर्वेशन आप प्रमोशंस में भी दे सकते हो। एमआर बालाजी को हमने अभी देखा इन द लास्ट स्लाइड, राइट, कि रिजर्वेशन शुड बी बिलो 50%, और उन्होंने और भी कई सारी बातें कही थी विच वर लेटर ओवररूल्ड इन द इंदिरा सोनी केस। ठीक है, टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको कैरी फॉरवर्ड रूल केस भी बोला जाता है, क्योंकि इस केस में कोर्ट ने कैरी फॉरवर्ड रूल को स्ट्राइक डाउन कर दिया था एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट का कहना था कि कैरी फॉरवर्ड रूल से 50% की जो सीलिंग लिमिट है दैट विल बी वायलेटेड एंड दैट इज व्हाई इट शुड नॉट बी अलाउड। ठीक है, बट ऑफ कोर्स ये पोजीशन इंदिरा सोनी में पूरी तरह अप्रूव नहीं हुई थी। आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इंदिरा सोनी सेड, बट नाउ दैट 16(4)(b has come, so you know this judgment does not hold any water now, right? फिर और केसेस हैं, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस। इस केस में इशू ये था कि फॉर reservation was being given to SCs and STs in matters of promotion. ठीक है, reservation किस टाइप का कि they were getting extended period to clear their exam, their promotional exam. ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि this is valid and they said that preference to SCs and STs in promotion is a reasonable classification. ठीक है, फिर आते हैं केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका पे। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है हमें उसे रिवाइज करना चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस को डिटरमाइन करने के लिए 2 टेस्ट होने चाहिए। बैकवर्डनेस शुड बी कंपेरेबल टू एससीज एंड एसटीज एंड इट शुड सेटिस्फाई द मीन्स टेस्ट। ठीक है, ये दोनों फाइंडिंग्स को इंदिरा सोनी के केस में कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनकी बैकवर्डनेस शुड बी सिमिलर टू द बैकवर्डनेस ऑफ एससीज और एसटीज। ठीक है, सो केसी वसंत कुमार की जो फाइंडिंग्स है दे वर ओवर रूल। ओके, नाउ वी कम टू द आइकॉनिक Indira Sawhney case. Okay, now this is the judgment which talks about everything you need to know about Article 15 and Article 16. ठीक है, इसकी कुछ पोजीशंस ओवररूल हो गई हैं, जैसे कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन एंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाला ग्राउंड जो अभी रिसेंटली ओवररूल हुआ है। ओवररूल भी नहीं हुआ है, आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली जनहित अभियान सेड। ओके, तो ये जो केस है इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको मंडल कमीशन केस भी कहते हैं बिकॉज दिस केस केम आफ्टर द फाइंडिंग्स ऑफ मंडल कमीशन। मंडल कमीशन वाज फॉर्म्ड टू लुक इनटू द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन एंड उसकी जो फाइंडिंग्स थी उसके अगेंस्ट द चैलेंज वाज देयर। ओके, इट्स अ 9 जज बेंच डिसीजन। अभी कुछ चीजें आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं। 16(4) इज नॉट एन एक्सेप्शन टू 16(1). 16(4) डज नॉट ओनली इंक्लूड रिजर्वेशन, इसमें और भी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है, 16(4) is exhaustive of the provisions that can be made for backward class of citizens. कोर्ट का कहना था कि बैकवर्ड क्लासेस को आप रिजर्वेशन सिर्फ 16(4) के अंदर दे सकते हो। ठीक है, फिर आप उन्हें 16(1) के अंदर नहीं दोगे। 16(1) के अंदर और क्लासेस इंक्लूड हो सकती हैं जैसे PWD, ट्रांसजेंडर्स एक्सेट्रा, बट बैकवर्ड क्लासेस को अब हम रिजर्वेशन 16(4) के अंदर ही दे सकते हैं। ठीक है, तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए इट इज एन एग्जॉस्टिव प्रोविजन, बट 16(4) जनरली इज नॉट एन एग्जॉस्टिव प्रोविजन। ओके,
16(4) में सिर्फ रिजर्वेशन, सिर्फ 16(4) में आप दे सकते हो, दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज रिजर्वेशन कैन ऑल्सो बी गिवन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 1, ओके, जो मैंने आपको भी बताया। फिर कोर्ट ने कहा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बैकवर्ड क्लासेस शुड बी सिमिलरली सिचुएटेड इन बैकवर्डनेस एज एससीज एंड एसटीज। बैकवर्डनेस शुड बी मोस्टली सोशल, इट इज नॉट सिमिलर टू एससीबीसी, ओके, क्योंकि एससीबीसी में सोशल प्लस एजुकेशनल बैकवर्डनेस होनी चाहिए, ओके। बैकवर्ड क्लास कैन नॉट बी डिटरमाइंड सोनली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। अब ये दिस इज नॉट ट्रू एनीमोर बिकॉज ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हैज बीन हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे आप रिजर्वेशन दे सकते हो, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वी आर ओवर रूलिंग इंदिरा सोनी केस। उनका कहना था कि इंदिरा सोनी सेड दैट इकोनॉमिक basis पे you cannot give reservation under article 16(4), okay, but now that the parliament has added another article, another clause which specifically provides for economic grounds, then that does not violate Indira Sawhney case, क्योंकि इंदिरा सोनी में they were only dealing with 16(4), okay, और 16(4) में since economic criteria की बात नहीं थी, that is why उनकी जो finding थी कि आप economic criteria पे reservation नहीं दोगे, that is only restricted to 16(4), okay। कोर्ट का कहना था caste can be the sole or the dominant criteria for determining backwardness, okay। कोर्ट ने कहा बैकवर्डनेस को आप सब क्लासिफाई कर सकते हो इनटू बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड, ठीक है। क्रीमी लेयर को आपको एक्सक्लूड करना होगा। ओबीसीज में जो क्रीमी लेयर होती है आप उनको रिजर्वेशन नहीं दोगे, अदरवाइज इट विल डिफीट द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये तो अब एस्टैब्लिश पोजीशन है कि ओनली नॉन क्रीमी लेयर ओबीसीज गेट रिजर्वेशन, राइट। रिजर्वेशन शुड आइडियली नॉट एक्सीड 50%, ठीक है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में वो 50% को एक्सीड कर सकता है, बट आपको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस जस्टिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स अगर ओपन कैटेगरी की सीट्स में सिलेक्ट हो रहे हैं तो फिर उनको रिजर्वेशन कोटा में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है, बिकॉज दे डिड नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, दे क्वालिफाइड अंडर द मेरिट कैटेगरी और द ओपन कैटेगरी, सो दे विल बी काउंटेड अगेंस्ट द सीट ऑफ ओपन कैटेगरी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा 16(4) बात करता है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। अगर आपको ये टर्म याद हो, हमने यहाँ पे देखा था कि 16(4) क्या बोलता है कि आप रिजर्वेशन दे सकते हो, लेकिन आपको क्या सेटिस्फाई करना है खुद को, दैट इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट दोज क्लासेस आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि जो टेस्ट है वो है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का, ना कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। व्हाट डज दिस मीन? सो इट बेसिकली मीन, सी, प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है? प्रोपोर्शनल इज रिलेटिंग टू न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, है ना। एडिक्वेसी इज डिफरेंट। मैंने आपको जब हमारी नॉर्मल क्लासेस हुई थी तब भी काफी एग्जांपल्स दिए थे इसके, कि मान लीजिए इन अ स्टेट वी आर लुकिंग एट बैंक्स, कि गवर्नमेंट बैंक्स में क्या रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, व्हाटएवर, ठीक है। अभी यू नो गवर्नमेंट बैंक्स में देयर आर लॉट ऑफ पोजीशंस स्टार्टिंग फ्रॉम क्लर्क टू पीओ टू मैनेजर टू सीजीएम, है ना, जो भी उनका क्राइटेरिया होता है, राइट। तो अब हमें क्या देखना है कि मान लीजिए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एससीज, कि वेदर एससीज शुड बी गेटिंग रिजर्वेशन और नॉट इन प्रमोशंस, ओके, और इन जनरल, तो हम क्या देखेंगे कि वेदर एससीज आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड और नॉट, ठीक है। प्रोपोर्शनल नहीं देखेंगे कि एक स्टेट में कितने एससीज हैं एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर वर्किंग इन बैंक्स, ओके। व्हाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सीन? इट्स अ वेरी सिंपल रीजन कि ऐसा हो सकता है दैट majority of SCs are serving as clerks, okay, that they are not being promoted to PO, manager, CGM, ठीक है। that will indicate that there is still discrimination in the society, right। तो इसीलिए हम हमेशा adequate representation देखते हैं कि whether a class is represented at all stages or not, ठीक है। तो हम adequate representation में ये देखेंगे कि how many of them are clerks, how many of them are POs, how many of them are managers, how many of them have been promoted to this position, ठीक है। तो इसलिए आप कभी भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखते हो कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ क्या है, बिकॉज दैट विल नॉट गिव यू अ करेक्ट पिक्चर। सो ऑलवेज, एंड आर्टिकल 16 क्लियरली सेज that we are not looking for proportional representation, we are looking for adequate representation, ठीक है। So adequacy is not determined on numerical strength but depends on representation at different levels of administration, ठीक है। फिर कोर्ट ने कहा कैरी फॉरवर्ड रूल। कोर्ट ने कहा कैरी फॉरवर्ड रूल अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है, पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो वैकेंसीज और उसकी वजह से अगर 50% रूल ब्रीच हो रहा है तो फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम जनरली ये बोलते हैं कि इंदिरा सोनीज केस सेड दैट कैरी फॉरवर्डिंग वैकेंसीज इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। दे डिड नॉट से दैट, they said that if you carry forward vacancies and if they violate 50% rule then that will be invalid, okay, but now it doesn't matter because now we have 16(4)(d, ठीक है। तो अब इसका कोई पॉइंट नहीं है ज्यादा खास,
ठीक है. 16(4) does not apply to reservation and promotion. Rule of reservation does not apply to super specialities. ठीक है. अब ये एक कमेटी है जिसका आप नाम याद रख सकते हो, जस्टिस रामनंदन कमेटी. दिस वाज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग क्रीमी लेयर. ओके, चलो. ठीक है. अब आते हैं रिजर्वेशन एंड प्रमोशन पे. ये आपको पता है, मैं आपको बता चुकी हूँ. 16(4) ऐड हुआ है 77th अमेंडमेंट से, और अब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन कैन ऑल्सो बी गिवन. ओके. अब आते हैं एक और अमेंडमेंट पे, 82nd अमेंडमेंट. जस्ट अ सेकंड, आई विल एक्सप्लेन दिस अ लिटिल लेटर. आई एम अबाउट टू बी डन विद आर्टिकल 16 एंड देन आई विल कम टू ऑल दीज इश्यूज. ओके, ये थोड़ा सेपरेट टॉपिक है. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, a very small question. The term creamy layer was coined in Indra Swani case, right? Not coined. Coined But कब yeah, ये but हमको it नहीं was पता है, पर उन्होंने ये कहा कि क्रीमी लेयर को आप रिजर्वेशन नहीं दोगे. okay. Okay. So Not I can say that it was discussed. Creamy layer was discussed for the first time in Indra Swani case. not even for the first time. Okay? They just settled the position that creamy layer will not be eligible for reservation. Okay, not for the first Actually, time, but they settled it. actually, there was some question in the mock. I'm not remembering the question. Maybe I'll ask it in a day or two, ma'am. ठीक है, आप मुझे स्क्रीनशॉट एक बार भेज देना. I'll look. Okay. Okay. चलो. Now I come to the catch-up rule, also popularly known as the catch-up rule, as somebody pointed out. ठीक है, I'm just joking, please don't mind. Right? Catch-up rule अब बात करता है एक तरीके की, ठीक है, जो अब ओवररूल हो चुका है. राइट. सो कैचअप रूल एंड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, ये दो चीजें होती हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ 16(4)A. राइट. आई गिव अ ब्रीफ एग्जांपल. कैचअप रूल एंड एक तरफ आप मानो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, जो अब ऐड हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना. पहले उन्होंने कुछ नहीं लिखा था. पहले उन्होंने कहा कि आप बस प्रमोशंस में रिजर्वेशन दे सकते हो. ठीक है, उन्होंने नहीं बताया किस तरीके से. उन्होंने कहा आप दे सकते हो. तो फॉर द टाइम बीइंग, फॉर सम 5-6 years देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि हम क्या रूल अप्लाई करेंगे. एंड दैट इज व्हेन द सुप्रीम कोर्ट केम अप विद द कैचअप रूल एंड दे सेड कि कैचअप रूल विल अप्लाई. ओके. बट देन द पार्लियामेंट वाज नॉट हैप्पी विद इट. पार्लियामेंट थॉट कि हमारा तो इंटेंशन था ही नहीं, वी वांटेड टू गिव कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी. सो देन they made an amendment and they added that we will now give by consequential seniority. अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है. Okay, guys, give me a second. I'll just plug my laptop to the charger. Okay. All right. So see, catch-up rule and consequential seniority. Let's understand this by a quick example. Okay. So see, now let's say this is person A and this is person B. Okay. Person A belongs to the open category and person B, let's say, belongs to the SC category. Okay. Now let's say person A was appointed to services in the year 2010. Okay. Person B, this person was appointed in the year 2012. Okay. So who is senior? A is senior, right? Because A has been appointed before B. But now let's say they are both promoted, they are both to be promoted to the next position of manager. Okay. But since this person is SC, iske liye 16(4)A ke andar there is reservation provisions, and that is why let's say this person gets promoted to the position of manager in 2015. Okay. And this person got promoted in the year 2016. Okay, because he did not had any reservation. Right. So now at this stage, now at the stage of being manager, who is senior? Whether Mr. A is senior or whether Mr. B is senior, because A actually has been in service longer, right? He is numerically senior than B, but B has been promoted first, right? So catch-up rule says that A will be senior. Okay, catch-up rule ये बोलता है कि once you are now at promoted and now you are at the same position, now you will regain your seniority. Okay, so now A, when he is promoted in 2016, will be considered senior to B. Okay, even though B was promoted first. So this is what catch-up rule says. Consequential seniority says the opposite of that. Consequential seniority says that when we are promoting you, when we are giving you reservation and promotion, we are not just saying that you are promoted, but we are also giving you seniority. Okay, if you look at the term in itself, term says
कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, मतलब यू आर बीइंग गिवन सीनियोरिटी ऑल्सो एज अ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो ये रूल होता है। तो कैचअप रूल पहले एप्लीकेबल होता था, इसके दो जजमेंट्स हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दीपपाल सिंह चौहान एंड अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस केस में, इन दो केसेस में कोर्ट ने कैचअप रूल लगाया, बट फिर पार्लियामेंट ने उसको 85th अमेंडमेंट से निगेट कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी विल अप्लाई, आप कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी भी दे सकते हो, ठीक है। और ये चीज एम नागराज में कोर्ट ने अपहेल्ड। हाँ जी Ma'am, please could you explain this one again? Catch-up rule and consequential seniority rule. okay okay I will do that. Okay, see, A is senior because he was appointed in 2010. B was appointed in 2012. Okay, so अगर हम numerically देखें तो who is senior? A is senior, right? But now let's say ये लोग, these both were assistant managers. Now the next position was manager. So B was promoted in 2015 to the position of manager. Okay, but A was not promoted. A was promoted in 2016. B was promoted earlier because he got reservation. ठीक है। तो now in 2016 who is senior? A is senior और B is senior, ठीक है। तो दो रूल्स हैं जो अलग अलग आंसर देते हैं। कैचअप रूल बोलता है कि A सीनियर होगा क्योंकि A 2010 में अपॉइंट हुआ था, ठीक है। तो इवन दो वो मैनेजर बाद में बना बिकॉज ही डिड नॉट गेट एनी रिजर्वेशन, बट ही विल कैच अप हिज सीनियोरिटी, ठीक है, ही विल रीगेन हिज सीनियोरिटी। ओके, सो दैट इज व्हाट कैचअप रूल सेज कि जब आप नेक्स्ट पोजीशन पे प्रमोट हो गए हो तो आप अपनी सीनियोरिटी रीगेन कर लोगे, है ना। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी इसका बिल्कुल ऑपोजिट बोलता है। वो बोलता है कि अगर हम आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं प्रमोशन में, तो हम आपको सिर्फ रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, हम आपको उसके साथ सीनियर स्टेटस भी दे रहे हैं, सीनियोरिटी भी दे रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के हिसाब से बी विल बी सीनियर इवन दो वो 2012 में अपॉइंट हुआ है एंड ए 2010 में अपॉइंट हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am, it's clear now. ओके, So which one prevail now? नाउ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी 16(4) Okay. क्लियरली बोलता है ना कि Okay. कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, ठीक है। Okay, so that is that, and M Nagaraj upheld 85th amendment, ठीक है। M Nagaraj में कोर्ट ने कहा कि consequential seniority is bad, ठीक है। अब कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज का भी सेम है। कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज को कोर्ट ने मना किया था इंदिरा सोनी में, बट देन 16(4)B was added and 16(4)B has been upheld in M Nagaraj, ठीक है। अब आते हैं ईवी चिनैया पे। ईवी चिनैया, जैसे मैंने आपको बताया, ईवी चिनैया ने बताया कि एससीज एंड एसटीज आर कवर्ड अंडर बैकवर्ड क्लासेस, बट उसने एक और चीज कही। उन्होंने कहा कि ठीक है, ओबीसीज में वी डू अप्लाई क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड, है ना, कि हम उसमें सब क्लासिफाई कर देते हैं कि ओबीसीज में सब क्लासिफिकेशन हो सकता है टू बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस। पर उन्होंने कहा कि एससीज एंड एसटीज के केस में हम सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा था कि एससीज एंड एसटीज होमोजेनस क्लास होते हैं, ऑल ऑफ देम आर बैकवर्ड, और उसमें सब डिविजन परमिसिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर 2005 में कोर्ट ने कहा था, बट रिसेंटली 2020 में दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सिमिलर बेंच, सिमिलर मतलब कोऑर्डिनेट बेंच, सेम नंबर ऑफ बेंच, उन्होंने कहा कि सब क्लासिफिकेशन हम एससीज और एसटीज में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब वी नो कि 5 जज बेंच कैन नॉट ओवर रूल अनदर 5 जज बेंच, है ना, इसीलिए उन्होंने इस मैटर को 7 जज बेंच के पास रेफर कर दिया है और अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये दो केसेस आपको याद, ठीक है। तो ये था ईवी चिनैया एंड दविंदर सिंह। अब हम आते हैं एम नागराज पे। एम नागराज बहुत लैंडमार्क जजमेंट था। एम नागराज में कोर्ट ने 77th, 81st, 82nd और 85th की वैलिडिटी डिसाइड की थी, ठीक है। कोर्ट ने कहा सारे कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये चीजें बताऊंगी क्योंकि आई हैव टू टेल यू अबाउट आर्टिकल 335, 342A, ओके, सो आई विल टेल दैट इन द नेक्स्ट क्लास, बट आप अभी के लिए कुछ चीजें समझ सकते हो। कोर्ट ने कहा कि जब आप रिजर्वेशन दे रहे हो प्रमोशन में, तो आपको 3 चीजें देखनी पड़ेंगी। पहला, यू विल हैव टू डेमोन्स्ट्रेट बैकवर्डनेस बाय क्वांटिफाइबल डेटा, ठीक है, कि आपको पहले दिखाना पड़ेगा बाय डेटा, बाय स्टैटिस्टिक्स दैट एससीज एंड एसटीज आर बैकवर्ड इन योर स्टेट, ठीक है। फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, ठीक है। फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि आप ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन कर रहे हो। ये आर्टिकल 335 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये बात चैलेंज हुई जर्नैल सिंह के केस में 2018 में। तो कोर्ट ने कहा कि एम नागराज को हमें लार्जर बेंच के पास भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो टेस्ट नंबर 1 है कि आपको बैकवर्डनेस डेटा के थ्रू दिखानी है, ये गलत है,
क्योंकि इंदिरा सोनी में कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि एससीज एंड एसटीज आर बैकवर्ड, आपको कोई डेटा नहीं दिखाना है उसको प्रूव करने के लिए. सो दैट इज वाई द टेस्ट नंबर 2 and 3 विल बी एप्लीकेबल, बट टेस्ट नंबर 1 विल नॉट बी एप्लीकेबल. ठीक है. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, the recent bill for the reservation of women in legislative assemblies and parliament, that will be covered under Article 15, Clause 2, right? Just a second, I'll tell you. Okay. Yeah. So no, it will be covered under 15.3, not 15.2. Okay. 15.3 talks about special provisions for women and children, not 15.2. ठीक है. चलो, तो जैसा मैंने आपको बताया, एम नागराज का जो केस है वो जर्नैल सिंह 2018 में चैलेंज हुआ. 5 जज बेंच ने कहा देयर इज नो नीड टू रेफर एम नागराज टू अ लार्जर बेंच, बट टेस्ट नंबर 1 इज नॉट वैलिड. ठीक है. So that is the whole position. ठीक है. तो ये था आर्टिकल 16. अभी भी आई एम नॉट डन विद इट. I still have to tell you about some recent changes that happened by the 2018 amendment, फिर 2021 amendment. ठीक है. तो 102nd amendment, 105th amendment, ये मुझे अभी आपको बताना है. मराठा जजमेंट के बारे में बताना है, and then we will be done. Okay. So but that I will cover in the next class. Right. Now please let me know if you guys have any questions. I will meet you otherwise on coming Tuesday because of Diwali. So we will cover this then. Any questions? Anything that you would want me to cover? Okay, see, fundamental rights is the part which will take up most of our time, and reservation actually takes up a lot of time. But apart from that, we will be moving at a much nice speed. Okay, nicer speed. This will not be our speed. Okay, I intend to finish the entire constitution in the remaining 3 to 4 classes, not more than that. Chalo, so I will end this session now. I will see you guys for constitutional law revision now in the next week. Okay? So we are just going to start with today's session. I'll just wait for a minute or two to let everybody join in, and then we'll start. Happy Diwali to everyone. I hope you took this time to revise and go through everything that is important for your CLAT exam, as well as your UGC AILET, whatever you're preparing for, right? Okay, happy Diwali, Nilesh. Aapko bhi. Okay, right. Chalo. So I will start with today's session now. I'll just give a quick recap of what we have done in the last class, right? So last class when we met, we talked about reservation. So we completed, I believe, till Article 16. Okay. I told you that I am yet to tell you a few more things about reservations, especially about how SCs, STs, and SCBCs are determined. Okay, so there's a recent amendment, not very recent now, but fairly in the last 2-3 years. Some things have been added in the Constitution, so I'll quickly show you those, and then we'll move on to the next set of articles, which is right to freedom. Okay, chalo. Okay. All right. So if you guys remember, we talked about that under Article 15 and 16, there are certain categories which have been identified who will be eligible for the benefits of Article 15 and 16, right? For example, in Article 15, the beneficiaries will be SEBCs, which is socially and educationally backward class. And under Article 16, the benefit is given to backward classes, right? Apart from that, SCs and STs are covered, as well as by the 2019 amendment to the Constitution. Now, EWS is also covered. Okay, so now how do we determine these categories? Like who will be SCs, who will be STs, who will be SCBCs, who will be EWS? That is one last question which is left from that discussion. Okay, so for SCs and STs, the position has been quite clear. Okay, like the provisions have been there in the Constitution for determination of who will be SCs and STs. Okay, as you can see, you don't have to go through the definitions, but you can just take an overview look.
Article 341 tells us how SCs will be determined. Okay, so it tells us that the list will be prepared by the president. Okay, so president may, with respect to any state or UT, after consulting with the governor. Okay, so the first list which is prepared by the president by issuing a public notification. Okay, now once this list is made, the first task is with the president. The president is supposed to make this list for the state as well as the union territories. And once this list is made, then the parliament can amend that list. Okay, so 341(2) tells us that once this list is published by the president, okay, and list of SCs and STs have been published way back in the 1950s by the president. Okay, so once they are published, then any addition or exclusion to this list will be done by the parliament by making a law. Okay, so 341(2) says parliament may by law include in or exclude from the list of SCs, whatever. Okay. Now, same provision exists for SCs under Article 341. Same provision exists for STs under Article 342. Okay. So this is not where the problem lies, right? Now the problem was that with respect to SEBCs, which is socially and educationally backward class, no provision was there in the constitution. Okay, and fairly so, because if you remember when we talked about Article 15, it did not have any concept of reservation in it. And it was added later on by the First Amendment. Okay, so when the Constitution was drafted, SEBCs was something which was not present in it, and therefore it was not provided for, right? So SEBCs up until 2018, they were determined by the state themselves. Okay, so individual states used to determine who are SEBCs for the purpose of their state, right? Then what happened? The 2018 May, the 102nd Amendment came. Okay, as you can see, this now 342A. Socially and educationally backward classes. This was added by the 102nd Amendment 2018. ठीक है? तो 102nd Amendment में उन्होंने similar provision बना दिया कि President will first issue the central list and then इस list में Parliament can by law include or exclude SEBCs. Right? Now the problem that arose with this kind of a thing was that there was a judgment called Maratha judgment. I'm sure you guys might have heard of it, right? So Maratha judgment, which is also known as Lakshmi Rao Jai Shri Ram Patil versus State of Maharashtra, I guess. This was about giving reservation to Marathas in Maharashtra, right? So now by this judgment of 2021, one of the challenges was to the 102nd Amendment, okay? So the court said that the 102nd Amendment is constitutional. There's nothing wrong with it. And the court said that now that 342A has been added, now states do not have a power to determine SEBCs. Okay, because up until then, what was happening? SEBCs were being determined by the state themselves. But now court said that now that 102nd Amendment has come, and now they've provided for a similar provision as for SCs and STs for SEBCs as well. Now states do not have that power after this amendment. Okay, so now after this judgment, Parliament came up with the 105th constitutional amendment and they made changes to Article 342A. Okay, so now what we are seeing on the screen is the updated version. It is after the 105th amendment. तो पार्लियामेंट ने कहा अपने इस अमेंडमेंट में कि प्रेसिडेंट जो लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, वो सिर्फ सेंट्रल लिस्ट बनाएंगे, मतलब सेंटर के पर्पसेस के लिए होगी. तो सेंट्रल लॉज का जहां भी एप्लीकेशन होगा उसमें अगर हमको डिटरमाइन करना है who are SEBCs, then only this list will be used and states will continue to have the power to make the list of SEBCs for their own purpose. Okay, so because of the judgment in Maratha case, how the court decided that now states don't have a power, that is why the parliament corrected that. Okay, because parliament का intention कभी नहीं था to take away the power of states from determining who are SEBCs for their purpose. Okay, so this is what is important and this is just what I wanted to show you, right? You can go through the provisions yourselves. I've told you the basic gist of it. That is exactly what has happened. Okay, now they have clarified that president will only be make list central list, which will be for the purpose of central government. ठीक है, फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया एक्सप्लेनेशन में भी कि ये जो लिस्ट है, दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट व्हिच इज मेंटेन्ड बाय द स्टेट्स. ओके, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन 1 or 2, every state or UT may by law prepare and maintain for its own purpose a list of SEBCs which will be different from the central list. Okay.
Now, while we are at it, let's take a look at Article 366 also. So, Article 366 talks about definitions. Okay. Usually, हम क्या देखते हैं कि whenever we are reading a law, definitions are generally at the start of any law, right? Most of the laws, I think almost all the laws have definitions in the starting, but Constitution has definitions in the end, right? And they're not that relevant also, actually. I mean, they are relevant, but we don't really read them for the purpose of our examination. But I'll just show you the definitions of SC, ST, and SCBC. Okay, that's it. Okay, so this is 366 definitions. यहाँ पे हमारे लिए important है 24 and 25. ठीक है, 24 डिफाइन करता है SCs. SCs की definition बहुत clear है कि जो 341 में define होंगे वो SCs होंगे. Same definition is for STs. And then by the 2018 amendment, they added 26C, which talks about definition for SCBCs. Okay, so SCBCs are such backward classes are deemed to be SCBCs for the purpose of 342A. Okay, so definitions में ऐसा जितना कुछ खास नहीं है. Saurabh is saying Bihar recently elevated the percentage of reservation more than, will it be struck down or what? Saurabh, it depends. It can be challenged for sure, but there is no certainty if it will be struck down or not. Okay, because I think right now the total amount of reservation is around 65% in Bihar, including everything, including EWS as well. Okay, so Indra Sawhney's case never said that reservation could not be more than 50%. Okay, they said that in exceptional circumstances, reservation may exceed 50%. So we will have to wait and see how the Supreme Court interprets the reservation system right now in Bihar to see if there are justifiable situations or not for reservation to exceed 50%. Okay. So जरूरी नहीं है कि स्ट्राइक डाउन हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर 50% से ज्यादा होगा तो वो हर केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा. Okay. I hope that helps. चलो, so with this, now I'm done with the concept of reservation. Now we will come to the next set of fundamental rights, which is right to freedom. Okay. उसके पहले 17 और 18 भी है. 17 और 18 में as such कुछ नहीं है. आर्टिकल 17 बात करता है that untouchability is abolished, and आर्टिकल 18 बात करता है that titles नहीं दिए जाएंगे. Okay, everybody is equal. So apart from military and academic distinctions, आप किसी भी तरह का टाइटल किसी को नहीं दोगे. ठीक है. उसके अलावा उन्होंने थोड़ी सी और बातें कही हैं कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आप अगर बाहर किसी फॉरेन ऑफिस से अवार्ड एक्सेप्ट कर रहे हो तो यू विल हैव टू टेक परमिशन एक्सेट्रा. ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. Right, now I come to right to freedom. Okay, now this is again another important set of fundamental rights. Okay, so right to freedom में आते हैं आपके आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 21A and 22. ठीक है, all very important fundamental rights, but at the same time very easy also to understand, right? Like of course there are a lot of judgments on this, but it's quite easy to understand and decipher. सबसे पहले we'll start with article 19. ठीक है, article 19 very important. article 19 में 6 type of freedoms दिए हुए हैं. article 19 is protection of certain rights regarding freedom of speech etc. ठीक है, 19(1) में they have given 6 freedoms. उसके बाद 19(2) to 19(6). Now these are the provisions which talk about restrictions on these rights. Okay, because we know कि इंडिया में कोई भी fundamental right absolute नहीं है. ठीक है, सारे fundamental rights पे restrictions apply होती हैं. They all are subject to reasonable restrictions and they're also subject to harmonious interpretation with other fundamental rights. ठीक है, तो कोई भी fundamental right अपने आप में absolute नहीं है, and article 19 is a very good example of that, because article 19 में तो inbuilt restrictions हैं. 19(1) में they are listing down the freedoms, and in 19(2) to 19(6) they are also listing down the restrictions that can be imposed on those freedom by the state. Okay, तो आपका क्या काम है? You will have to remember first of all the freedoms, right, and what is their content, and then you will have to memorize what are individual restrictions. ठीक है, 19(1)A पे सबसे ज्यादा restrictions लगती हैं, बाकियों पे दो तीन ही है. So you have to memorize exactly किस fundamental right पे कौन सी restriction apply होती है. ठीक है, अब जो इंडिया और यूएस में फंडामेंटल राइट्स हैं, ओके, सो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स स्पेशली आर्टिकल 19 आर रिस्ट्रिक्टेड. ओके, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, दे हैव इनबिल्ट रिस्ट्रिक्शंस एज अपोज्ड टू द यूएस में this kind of fundamental right does not have any restrictions in the constitution. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां पे restriction नहीं लगेगी, but the thing is that it is the courts who interpret what restrictions will be reasonable. Okay, so there is no inbuilt restrictions when we talk about
यूएस एंड द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार ऐसा कंपैरेटिव एनालिसिस आता है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 19. ओके, तो नाउ आई विल स्टार्ट विद आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, इट इज नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स. अब देखते हैं व्हाट आर द 6 फंडामेंटल राइट्स ओके अंडर दिस आर्टिकल 19. 19(1) ये बात करता है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है. 19(1)(b) बोलता है आपके पास फ्रीडम है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. सी बोलता है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है. अब ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपको याद रखना है कौन से अमेंडमेंट से आया था. ठीक है. दिस केम बाय 97th अमेंडमेंट. एंड इफ यू गाइस रिमेंबर इन द previous classes we have also talked about that 97th amendment has been partially struck down in the case of Rajendra N Shah versus Union of India. ठीक है. अब उसका इस पे कोई बेरिंग नहीं है क्योंकि दिस इज स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है. उन्होंने जो भी उसको पार्शियली स्ट्राइक डाउन किया है दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डिफरेंट शेड्यूल ऑल टुगेदर. इट डज नॉट अप्लाई टू आर्टिकल 19. ओके, बिकॉज एंटायरली 97th अमेंडमेंट हैज नॉट बीन स्ट्रक. ओके, तो आपको ये तो ये याद रखना है कि कौन से अमेंडमेंट से दिस हैज बीन एडेड. फिर डी और ई हम जनरली साथ में पढ़ते हैं. डी बोलता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड ई बोलता है टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. और लास्ट जो फंडामेंटल राइट है इसमें वो है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. ठीक है. तो आई थिंक दिस इज फेयरली इजी टू अंडरस्टैंड. अब आपको ये याद रखना है कि अर्लियर राइट टू प्रॉपर्टी वाज आल्सो कवर्ड अंडर आर्टिकल 19(1)(f. ठीक है. आप जैसा कि देख सकते हो इट हैज बीन omitted. So this was omitted by the 44th constitutional amendment and it was added elsewhere, that is article 300A. So now it is only a constitutional right and not a fundamental right. ठीक है. अब इसके restrictions देखो, आप individually पढ़ सकते हो. ठीक है. इतना कुछ नहीं है. 19(1)(a यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो restrictions हैं, अब आपको 2-3 बातें याद रखनी है हर फंडामेंटल फ्रीडम के लिए. That whatever restrictions can be placed have to be by the state by making a law. Okay? ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कैन इशू अ नोटिफिकेशन पुटिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19(1). ओके, इफ दे वांट टू रिस्ट्रिक्ट एनी फंडामेंटल फ्रीडम दे विल हैव टू मेक अ लॉ फॉर इट. ठीक है. अभी रिसेंटली भी एक जजमेंट आया था, आई कांट रिमेंबर द नेम, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट एनीवे, बट उसमें भी कोर्ट ने कहा था कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन से यू कैन नॉट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम गिवन इन आर्टिकल 19. ओके, तो जो भी आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे वो लॉ के थ्रू होगा, बाय वे ऑफ अ लॉ. ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि इट हैज टू बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. ठीक है. कि अगर आप बोल भी रहे हो कि दैट यू आर पुटिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन लेट्स से द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, राइट, तो आपको ये बताना पड़ेगा, आपको ये डिफेंड करना पड़ेगा अगर कोर्ट में केस आता है कि आपने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो रीजनेबल है. ठीक है. फिर है कि आप सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, मतलब जो भी ग्राउंड्स जिस भी फंडामेंटल फ्रीडम के लिए दिए हुए हैं. ओके, इन द इंटरेस्ट ऑफ दीज ग्राउंड्स. ओके, सो 19(1)(a) पे सबसे ज्यादा ग्राउंड्स हैं, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की रिस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा है. इट इंक्लूड्स sovereignty and integrity of India, security of state, friendly relations with foreign state, public order, decency, morality, contempt of court, defamation and incitement to an offense. ठीक है. फिर हम बात करेंगे राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. उस पे लगती है आपकी सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, दैट्स इट. ठीक है. फिर नेक्स्ट पे आते हैं टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन. उस पे है सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी. ओके, तो ऐसे यू विल हैव टू मेमोराइज. देयर इज नो ट्रिक फॉर डूइंग दैट, यू जस्ट हैव टू सिट एंड मेमोराइज ऑल दिस, राइट. Okay, Ganul. I don't recall the name. I think it might be Kaushal Rao. Okay, I don't actually recall the name of that judgment. है ना. फिर आते हैं 5 पे. अब 5 जो है ये आपको दो उसकी रिस्ट्रिक्शंस बताता है, 19(1)(d) और 19(1)(e) की, जो बात करते हैं मूविंग फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी एंड टू रिसाइड एंड सेटल. ठीक है. तो इस पे रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी अलग हैं. इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब. ठीक है. अब आते हैं 19(6) पे. 19(6) की रिस्ट्रिक्शंस भी काफी अलग हैं, जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, बिजनेस, एसोसिएशन, व्हाटएवर. ठीक है. तो 19(6) बताता है कि अगर आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो दैट कैन बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक. ठीक है. सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है. एंड देन दे हैव आल्सो सेड कि अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है, ओके, प्रोवाइडिंग फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, तो दैट विल आल्सो बी वैलिड. ठीक है. मतलब इस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं, दैट यू विल नीड अ प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर प्रैक्टिसिंग एनी ट्रेड, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ यू माइट बी इन लॉ स्कूल, right? So if let's say you do not pass all your exams, if you do not graduate,
you can't actually get a license from BCI, right? Then you cannot go and say that your fundamental freedom of 19(1)(g) is being taken away because you are not being allowed to get a license. क्यों? क्योंकि वहां पे एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है एंड दैट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. ठीक है. सिमिलरली 6(2) बोलता है कि स्टेट अगर चाहे तो मोनोपोली भी बना सकता है. ठीक है. द कैरिंग ऑन बाय द स्टेट और बाय अ कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट ऑफ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू द एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल ऑफ सिटीजंस और अदरवाइज. ठीक है. आपने देखा भी होगा ना, जैसे कई बारी माइनिंग लीजेस होती हैं कि मिनरल्स को अगर माइन करना है तो दे मे पुट अ exclusion that only PSUs can do that, okay, or they may put some more conditions which makes it not possible for everybody to practice that trade. ठीक है. क्योंकि उन्होंने कहा है कि किसी भी टाइप का अगर इस तरह की कंडीशन वो बता रहे हैं कि दे विल एक्सक्लूड सिटीजंस वेदर पार्शियली और अदरवाइज, कंप्लीट और पार्शियल, सो दिस काइंड ऑफ मोनोपोली बाय द स्टेट कैन ऑल्सो बी परमिटेड. ठीक है. अब इन सब में एक कंडीशन है कि जो भी होगा वो ऑफकोर्स रीजनेबल होना चाहिए. ठीक है. तो अब जब भी कोर्ट्स whenever they hear any matter under Article 19, their primary course of inquiry is whether the restriction is reasonable or not. ठीक है. अब उसके लिए वो कई सारे टेस्ट देखते हैं, मोस्टली द टेस्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, कि क्या स्टेट ने आर्बिट्रेरीली एक्ट किया है. ठीक है. क्या उन्होंने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है जो ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है. ओके, इट इज नॉट द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव रिस्ट्रिक्शन दैट दे शुड हैव पुट. ओके, तो ये सारी चीजें देन द कोर्ट लुक्स इनटू, राइट. I will now just quickly show you a few more things about Article 19. ठीक है. ओके, अब ये सिर्फ सिटीजंस के लिए अवेलेबल है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट. एंड एक जजमेंट भी है इस पे, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस सीटीओ. ठीक है. इस केस में कोर्ट ने कहा था कि राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ओनली फॉर सिटीजंस. और क्योंकि यहाँ पे जो पेटिशनर थी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, दिस इज नॉट अ सिटीजन बिकॉज इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो कोर्ट ने कहा कि दिस कॉर्पोरेशन कैन नॉट इन्वोक आर्टिकल 19. ठीक है. फिर आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच इज योर बैंक नेशनलाइजेशन केस. इस केस में कोर्ट ने कहा कि दैट इज ट्रू दैट कॉर्पोरेशंस और कंपनीज they cannot claim Article 19 because they are not citizens, but जो शेयर होल्डर्स हैं उन कंपनी के, ठीक है, if they are citizens then they can claim their rights and that then those rights will not be lost just because they have associated to form a company. ठीक है. So if the action of the state impairs the right of the company thereby affecting the right of the shareholders, Article 19 protection will be available. Okay, this was also reiterated in Bennett Coleman versus Union of India case. ठीक है. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. यूएस और इंडिया का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया कि यूएस में इनबिल्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इंडिया में इनबिल्ट रिस्ट्रिक्शन है. ठीक है. यूएस में क्या होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर अप्लाई होती है. ये जो डॉक्ट्रिन है ये बोलती है कि पुलिस पावर इज द पावर ऑफ प्रमोटिंग पब्लिक वेलफेयर बाय रिस्ट्रेनिंग एंड रेगुलेटिंग द यूज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम. ओके, तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल केस के हिसाब से डिसाइड होगा कि वेदर that restriction is reasonable or not. Okay, they have already been provided कि आप किन grounds पे reasonable restriction लगा सकते हो. ठीक है. अब आते हैं टेस्ट पे. टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले तो बाय अ लॉ होना चाहिए कि पार्लियामेंट में बाय अ लॉ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन. ओके, और द स्टेट लेजिस्लेचर. तो जो भी अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर है, एंड हाउ विल दैट बी डिटरमाइंड, दैट विल बी डिटरमाइंड by the 3 schedules that we have, right, like the 3 lists that we have. तो वो डिटरमाइन करेंगे कि किसके पास उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की पावर है. ओके, सो अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर बाय वे ऑफ लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर पर्पस, जो भी रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, एंड द रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल. ओके, अब रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं, ऑब्वियसली ये कोर्ट्स टेस्ट करेंगे एंड दैट इज व्हाई जुडिशियल रिव्यू इज अवेलेबल, राइट. चलो, है ना. अब आते हैं रीजनेबलनेस के क्या क्या टेस्ट हैं. रिस्ट्रिक्शन शुड नॉट बी आर्बिट्ररी और एक्सेसिव. ओके, इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल कंट्रोल, मतलब सोसाइटी का इंटरेस्ट और इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट, दिस द कोर्ट विल आल्सो बैलेंस. देयर शुड बी अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड एंड द ऑब्जेक्ट दैट यू आर सीकिंग टू अचीव. ठीक है. फिर कोर्ट कुछ और चीजें भी देखती है कि एवरी रिस्ट्रिक्शन शुड बी जज्ड ऑन ओन मेरिट्स, कि कौन सा राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, व्हाट इज द ईविल दैट इज बीइंग सॉट टू बी रेमेडिड. ओके, तो कोर्ट साथ में ये भी देखती है कि जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो प्रोपोर्शनेट है या नहीं. ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर कुड बी मेनी वेज ऑफ अचीविंग अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, राइट, बट हमको कौन सा तरीका लेना है विच इज द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव. ओके, सो द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आल्सो अप्लाइज टू आर्टिकल 19. ओके,
अब जो रिस्ट्रिक्शंस डीपीएसपी को अचीव करने के लिए लगाई जाती हैं, ओके, वो जनरली रीजनेबल होती हैं। ओके, ऑलराइट। फिर है कि पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज, है ना, कि जस्ट बिकॉज कोई रिस्ट्रिक्शन अगर कोर्ट ने लगाई है दैट मे बी मिसयूज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव और मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इन इटसेल्फ इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड टू होल्ड दैट रिस्ट्रिक्शन एज अनरीजनेबल। ओके, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? अगर कोई सिटीजन चैलेंज करता है किसी लॉ को जिसके थ्रू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, तो इट द ओनस ऑफ प्रूविंग द रीजनेबिलिटी इज ऑन द स्टेट। ठीक है, अगर आपको याद हो जब हमने प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करी थी कि इफ यू आर चैलेंजिंग एनी लॉ देन द कोर्ट विल प्रिज्यूम इट टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, क्योंकि ये एक प्रिजम्पशन है जो हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो जो पर्सन उसे चैलेंज करता है दैट पर्सन हैज टू प्रूव दैट द लॉ इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, जब आप आर्टिकल 19 में रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं तो पहले तो स्टेट को प्रूव करना है कि उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो रीजनेबल है। एक बार जब स्टेट ये प्रूव कर देता है देन द ओनर शिफ्ट्स टू द पेटिशनर। ओके, सॉरी। ओके, नाउ वी कम टू 19(1)(a। ठीक है, अब 19(1)(a) में आपको याद होगा हमने बात की थी डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट्स की, where we saw that all fundamental rights are not listed down, right? Like the ambit of fundamental rights is much wider, but the constitution does not list down each and every fundamental right. ठीक है, it is for the courts, and the courts have in multiple judgments then expanded the scope of fundamental rights. So this is why when we talk about right to freedom of speech as well, कोर्ट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में और भी कई सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, जैसे कि राइट टू नो एंड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये भी 19(1)(a) का पार्ट है। फिर राइट ऑफ सिटीजंस टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स एट इलेक्शन। ठीक है, इसीलिए देयर वर अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स इन इलेक्टोरल लॉज, बिकॉज कोर्ट ने कहा कि आपके पास राइट है ये जानने का कि आप जिनके लिए वोट करने जा रहे हैं क्या उनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, व्हाट आर द स्टेटस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, वेयर हैव दे स्टडीड। ओके, सो बेसिकली जनरल नॉलेज अबाउट देम, अबाउट देयर क्रिमिनल बैकग्राउंड पर्टिकुलरली एंड अबाउट द असेट्स दैट दे होल्ड। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि राइट ऑफ सिटीजंस टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच में कंपेल्ड स्पीच भी हो सकती है। ठीक है, मतलब यू कैन बी कंपेल्ड ऑल्सो टू एक्सरसाइज दिस फ्रीडम, जैसे कि रिक्वायरमेंट ऑफ शोइंग एन एजुकेशनल फिल्म और अ डॉक्यूमेंट्री इन द सिनेमा हाउसेस। ठीक है, आप लोग आई एम श्योर all of you might have gone to see a movie sometime in your life, right? You might have seen that some disclosures are there at the starting which are mandatory, जैसे वो मुकेश वाला ad है ना, where he comes and talks about his sad story of how he got cancer, right? तो ऐसा तो नहीं है कि all cinema houses are getting any revenue out of it, like they are, why are they publishing that ad right before starting the movies? It is because that thing can be compelled. ठीक है, mandatory इस type के disclosures आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं, तो इवन कंपेल्ड स्पीच कैन बी अ पार्ट ऑफ 19(1)(a). ओके, सिमिलरली देयर कैन आल्सो बी फ्रीडम ऑफ साइलेंस। ठीक है, आपके पास राइट है नॉट टू स्पीक एज वेल। ठीक है, आप ये भी एक्सरसाइज कर सकते हो अंडर आर्टिकल 19(1)(a). अब इसमें जो लैंडमार्क केस है दैट इज द केस ऑफ बिजॉय मैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जहां पे जो स्टूडेंट्स थे दे वर बिलोंगिंग टू द जेहोवा फेथ, जेहोवा विटनेस फेथ, राइट, एंड दे रिफ्यूज टू सिंग द नेशनल एंथम। कोर्ट ने कहा कि दे डू हैव अ राइट अंडर 19(1)(a नॉट टू स्पीक। ठीक है, फिर आते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस पे। फ्रीडम ऑफ प्रेस है इंडिया में, प्रेस मतलब मीडिया हैज अ फ्रीडम एज वेल, राइट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है, एक्सप्रेसली, इंडिया में अलग से नहीं दिया हुआ, इट इज कवर्ड इन 19(1)(a इटसेल्फ। ओके, अब कई सारे जजमेंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ सकते हो। दीज आर सम ऑफ द लैंडमार्क फाइंडिंग्स ऑफ सम ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स। ठीक है, चलो ठीक है, फिर कोर्ट ने ये भी कहा कि नॉट जस्ट फ्रीडम ऑफ मीडिया बट इवन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट वो भी 19(1)(a के अंदर प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इनिशियली इन द हमदर्द दवाखाना केस कोर्ट सेड दैट commercial advertising is not covered under 19(1)(a, but then later on in Indian Express newspaper case कोर्ट का कहना था even commercial advertising is given the protection of 19(1)(a। ओके, फिर आप देख सकते हैं और भी कई सारे इसमें राइट्स हमने रीड किए हैं, जैसे प्री सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स इज परमिसिबल, है ना। फिल्म्स को अगर आप प्री सेंसर कर रहे हो, आपको पता होगा कि इंडिया में एक सेंसर बोर्ड है, राइट, उनका काम होता है फिल्म्स को कैटेगराइज करना ए और यू कैटेगरी में,
और इवन उनको सेंसर करना इफ दे फील दैट देयर समथिंग व्हिच द पब्लिक शुड नॉट बी सीन, राइट। तो कोर्ट ने के अब्बास के केस में कहा था कि प्री सेंसरशिप ऑफ फिल्म इज परमिसिबल एंड इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। फिर डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, धरने करना, ऑल ऑफ दीज आर आल्सो प्रोटेक्टेड अंडर 19(1)A, ठीक है। 19(1)A में भी प्रोटेक्टेड होते हैं, 19(1)B में भी प्रोटेक्टेड होते हैं, ओके। तो कुछ जजमेंट्स हैं जैसे टी के रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, हरीश उपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपको ये सारे जजमेंट्स एक बार इनके नाम और इनकी लैंडमार्क फाइंडिंग्स पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं 19(2) पे। 19(2) में एज सच कुछ समझने का नहीं है। ऑल यू नीड टू नो इज दैट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स टू इट, ठीक है। तो 19(2) से 19(6) में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं दे वर आइदर बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट और बाय द 16th अमेंडमेंट, ठीक है। तो जैसे फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, this was added by the first amendment, okay. Public order was also added by the first amendment after the Romesh Thapar case. डिसेंसी और मोरालिटी हमेशा से रहा है। इस पे 2 केसेस हैं जो आप आईपीसी में भी पढ़ते हो, ठीक है। रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दिस वाज अ केस इन विच द कोर्ट laid down what is the test of determining whether something is obscene or not, ठीक है, whether it is indecent or not। तो कोर्ट ने इस केस में हिकलिन टेस्ट अप्लाई किया था, बट लेटर ऑन इन द जजमेंट ऑफ अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, कोर्ट ने कहा कि हिकलिन टेस्ट में नॉट बी द बेस्ट टेस्ट एंड द बेस्ट टेस्ट इज एक्चुअली कंटेम्पररी कम्युनिटी स्टैंडर्ड केस, ओके। इसका मतलब है कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे इफ समथिंग इज ऑब्सीन और नॉट, वी विल डिटरमाइन इट बेस्ड ऑन द कंटेम्पररी पोजिशन की सोसाइटी अभी कितनी एडवांस्ड है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल सी इफ समथिंग इज ऑब्सीन और नॉट, ओके। डेफिनेशन का ग्राउंड आप सबको पता है। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एंड सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी वाज एडेड बाय द 16th अमेंडमेंट, ठीक है, ओके। ठीक है, चलो अब आते हैं 19(1)G पे, ठीक है। नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बचे हैं वो 19(1)G के। बीच वाले इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, इसमें ऐसा कुछ समझने का नहीं है, जस्ट हैव टू मेमोराइज दैम, राइट। अब 19(6) में जो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड द रिस्ट्रिक्शंस दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन इट, we know that the restrictions can be in the nature of protection of public general interest, or they can be in the nature of putting any professional or technical qualification, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा था कि a lot of things are not permissible, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, there is no right to carry on any anti-social or any dangerous activity, जिसको हम res extra commercium भी बोलते हैं। res extra commercium का मतलब होता है something which is outside commerce, मतलब जिसमें आप ट्रेड करने का कोई राइट क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये जनरली कोर्ट टॉक्स अबाउट दिस व्हेन वी टॉक अबाउट लेट्स से सेल ऑफ अल्कोहल, ओके। तो उस केस में कोर्ट जनरली इस प्रिंसिपल को अप्लाई करती है कि सेल इन अल्कोहल मे बी रिगार्डेड एज रेस एक्स्ट्रा कमर्शियल, ठीक है। आप उसमें राइट क्लेम नहीं कर सकते हो, दैट यू हैव अ राइट अंडर 19(1)G, ओके। इनफैक्ट आपको पता भी होगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेट्स लाइक बिहार एंड गुजरात वेयर सेल ऑफ अल्कोहल इज entirely banned, okay। दिस इज बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ओके। और इवन जिन स्टेट्स में ये बैंड नहीं भी है वहां पे भी द सेल ऑफ अल्कोहल इज वेरी रेगुलेटेड, इट इज ओनली डन बाय वेरी लाइसेंस्ड शॉप्स, राइट। सो रेस एक्स्ट्रा कमर्शियल उसी चीज को बोला जाता है, समथिंग विच इज आउटसाइड कॉमर्स, ओके। फिर है राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन। 19(1)G के अंदर आपके पास राइट है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी स्टैब्लिश कर सकते हो। दिस वाज लेड डाउन इन द केस ऑफ उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। फिर है राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, ठीक है। आपको विशाखा का केस याद होगा। विशाखा के केस में कोर्ट ने कहा था कि एवरी पर्सन हैज अ राइट टू कैरी ऑन देयर ट्रेड और प्रोफेशन अंडर आर्टिकल 19(1)G without being sexually harassed at the workplace, ठीक है। सो इवन दिस इज रेड अंडर आर्टिकल 19(1)G, ओके। ऑल्दो इसको आर्टिकल 21 का पार्ट भी बनाया गया है, बट दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)G, ठीक है। प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देयर इज अ जजमेंट कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड, जहां पे कोर्ट ने कहा था कि इफ यू आर पुटिंग अ रूल लाइक दिस, एक रूल होता था विच सेड दैट एडवोकेट्स ओवर द एज ऑफ 45 years कैन नॉट बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट, राइट। तो कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया और कोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लगा सकते हो, बट एज आई सेड even those qualifications have to be reasonable, right? ठीक है। So this is about Article 19. Okay. Now, if you have any questions, do let me know.
Otherwise, we start with Article 20. Okay, Article 20 is very, very easy to understand. There isn't much in it. एक दो cases हैं, but apart from that, it's very straightforward. ओके, ठीक है। तो अब हम आते हैं आर्टिकल 20 पे, जो बात करता है प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ओके, इट ओनली अप्लाइज टू क्रिमिनल केसेस। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपके पास कुछ बेसिक प्रोटेक्शन है, ठीक है। 20 क्लॉज 1 बोलता है कि सी, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस except for a violation of law in force at the time of commission of the act charged as an offense, nor be subject to a penalty greater than what might have been inflicted. Okay, इसको बोला जाता है ex post facto laws. Okay, इसका मतलब ये है कि आपने जिस दिन कोई एक्ट किया उस दिन उस एक्ट को क्राइम होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी डिफाइंड एज एन ऑफेंस इन इंडिया फॉर यू टू बी पनिश्ड फॉर इट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कमिटेड समथिंग विच इज नॉट अ क्राइम टुडे, बट लेट्स से देयर इज एन अमेंडमेंट टू द लॉ a year down the line. Okay, so you cannot be convicted under that law because when you committed that act, it was actually not an offense. ठीक है, तो इसी बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल को ये इनकलकेट करता है कि no person shall be convicted of any offense except for a violation of law in force at the time of commission of that act charged as an offense. दूसरी चीज जो ये प्रोहिबिट करते हैं कि आपके ऊपर ग्रेटर पेनल्टी नहीं लग सकती, ठीक है। मान लीजिए कोई पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड लॉ में एंड लेटर ऑन इट इज इंक्रीज्ड बाय एन अमेंडमेंट, ओके, तो आपके ऊपर वो ग्रेटर पेनल्टी नहीं लगेगी इफ व्हेन यू कमिटेड दैट ऑफेंस दैट पेनल्टी वाज नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो ये बेसिकली यही बोलते हैं कि क्रिमिनल लॉज जो हैं वो जनरली रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ओके, सो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 1। अब इसमें कुछ ऑब्वियसली देयर आर सम क्वालिफायर्स कि अब देखिए, सब्सटैंटिव लॉ आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रोसीजरल लॉ चेंज हो सकता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ चेंज इन आईपीसी इन द ऑफेंसेस, then that will not be applicable retrospectively on you because of article 20 clause 1. Okay, but if there is a change in only in the procedure, है ना, कि कैसे वो ऑफेंस ट्राई होगा, अगर उसमें कोई चेंज है तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ केसेस में अप्लाई हो सकता है, ठीक है। दैट विल नॉट वायलेट आर्टिकल 20 क्लॉज 1। ओके, ऑल्दो कुछ कुछ केसेस में प्रोसीजरल लॉज की चेंज को भी आप रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते इफ दे विल इम्पैक्ट एनी सब्सटैंटिव राइट, ठीक है। तो वो केस टू केस बेसिस पर डिटरमाइन होगा, बट बाय एंड लार्ज एज अ बेसिक प्रिंसिपल प्रोसीजरल लॉ कैन चेंज। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रेटर पेनल्टी तो आप पे नहीं लगा सकते, लेकिन लेसर पेनल्टी लगा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इन फॉर एग्जाम्पल, इफ बाय एन अमेंडमेंट द पेनल्टी इज रिड्यूस्ड, ओके, तो आपको उस बेनिफिशियल प्रोविजन का बेनिफिट बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है। तो 20 क्लॉज 1 विल नॉट प्रोहिबिट दैट, राइट। अब आर्टिकल 20 इज अवेलेबल टू ऑल पर्संस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इट विल ओनली बी अवेलेबल टू सिटीजंस, राइट। 20 क्लॉज 1 बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की, 20 क्लॉज 2 बात करता है डबल जेपर्डी की, जो भी हम देखेंगे, एंड 20 क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज में दो चीजें हो सकती हैं, और लॉ में डिक्लेयर सम एक्ट एज एन ऑफेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, a law may enhance the penalty, or a law may prescribe a new or a different procedure. Okay, so 20 clause 1 will only protect the first and the second situation, it will not protect the third situation. Okay, इस पे ये दो मैक्सिम्स पे बेस्ड है, आप इनको याद रख सकते हैं, दिस कुड बी अ पॉसिबल क्वेश्चन, ठीक है। सो वन मैक्सिम इज दिस, द सेकंड वन इज दिस, जिसका मतलब होता है कि a person should not be made to suffer penalty except for a clear breach of existing law and law looks forward not backward, ठीक है। तो ये जो दो मैक्सिम्स हैं, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 1, राइट। अब थोड़े से केसेस देखते हैं। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सिमिलर चीज थी कि ऑफरिंग ब्राइब वाज नॉट एन ऑफेंस इन आईपीसी इन 1948, इट वाज इंसर्टेड बाय 1952 अमेंडमेंट, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि अक्यूज्ड कैन नॉट बी पनिश्ड अंडर 165A ऑफ आईपीसी फॉर ऑफरिंग ब्राइब इन 1948 बिकॉज व्हेन ही डिड दैट इट वाज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। ओके, फिर कोर्ट ने कहा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि इंटरप्रिटेशन ऑफ अ प्रोविजन ऑफ लॉ डज नॉट क्रिएट एनी न्यू ऑफेंस, ठीक है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा था यहाँ पे, बिकॉज इफ सम ऑफ यू माइट हैव रेड दिस केस, दिस इज द जजमेंट इन फैमिली लॉ आल्सो, राइट। इस केस में इशू ये था कि कोर्ट ने कहा दैट फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ हिंदू मैन and that Hindu man is married, and if without divorcing his wife he converts to Islam and gets married again, okay, because in Islam bigamy is permitted, you can have up to 4 wives legally, right? So if that man, if a Hindu man who converts to Islam does this, then he can be punished for bigamy, okay.
सो कोर्ट ने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो विदाउट डिवोर्सिंग योर फर्स्ट वाइफ, सो इवन इफ इस्लाम अलाउज मोर देन वन वाइफ, इवन देन यू कैन बी पनिश्ड फॉर बाइगेमी। ओके, तो लिली थॉमस के केस में इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हमने सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट किया है, इसमें वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी न्यू ऑफेंस। तो कोर्ट का कहना था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ अ प्रोविजन ऑफ लॉ डज नॉट क्रिएट एनी न्यू ऑफेंस, तो वो आप पे रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो सकता है। ओके, फिर सेंटेंस की अगर बात आती है कि इनहैंस पेनल्टी तो आप पे नहीं लग सकती है, ठीक है, लेकिन अ सब्सिक्वेंट लॉ इफ इट प्रोवाइड्स फॉर अ मिनिमम फाइन दैट कैन बी अप्लाइड टू यू। ठीक है, मतलब कि बेनिफिशियल एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज कैन बी एप्लीकेबल टू यू। ओके, मतलब अगर कभी पेनल्टी कम हो रही है या इम्प्रिजनमेंट कम हो रहा है तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। उस पर जजमेंट है आपका बशीर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, प्रोसीजरल एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोसीजर पे आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट बिकॉज इन अमेरिका एक्स पोस्ट फैक्टो प्रोसीजरल लॉज आर आल्सो कवर्ड अंडर द प्रोटेक्शन। ठीक है, ओके, अब आते हैं डबल जेपर्डी पे, विच इज 20 क्लॉज 2। ठीक है, 20 क्लॉज 2 बोलता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ठीक है, अगर आपको एक बार पनिशमेंट हो चुकी है, अगर आप एक बार प्रोसिक्यूट एंड पनिश हो चुके हो, ठीक है, दोनों चीजें, प्रोसिक्यूट भी हुए थे और साथ में कन्विक्शन भी हुआ था, तो फिर आपको दोबारा उस चीज के लिए प्रोसिक्यूट एंड पनिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, so this is a very common I hope understanding of double jeopardy, right? So no person shall be prosecuted and punished for the same offense twice. It is based on the maxim of nemo debet vis vexere, which means a man must not be put twice in peril for the same offense. ठीक है, अब हाँ, 20 क्लॉज 2 में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? that the person must be accused of an offense, he must have been prosecuted and he must have been punished। ठीक है, अगर वो पर्सन acquit हो गया है तो फिर 20 क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है because the term that has been used is prosecuted and punished। ठीक है, फिर और भी कुछ चीजें हैं कि अगर पहला प्रोसिक्यूशन नलिटी थी तो 20 क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगा। ओके, पर्सन मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेकंड टाइम बिफोर अ कोर्ट और जुडिशियल ट्रिब्यूनल। ओके, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल पहले कोर्ट ने पनिश कर दिया एंड देन देयर इज अ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू इफ यू आर अ पब्लिक ऑफिसर। ठीक है, तो उसको डबल जेपर्डी हम नहीं बोलेंगे फॉर द पर्पस ऑफ 20 क्लॉज 2। ठीक है, अब आते हैं 20 क्लॉज 3 पे, विच इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, 20 क्लॉज 3 बोलता है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, मतलब आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता टू गिव एविडेंस अगेंस्ट योरसेल्फ। ये तो एक बहुत ही बेसिक पोस्टुलेट है ऑफ यू नो क्रिमिनल लॉ कि सी यू हैव एवरी राइट टू डिफेंड योरसेल्फ। ओके, इवन इफ यू आर इन द रॉन्ग, इवन इफ यू हैव कमिटेड समथिंग, यू हैव द राइट टू डिफेंड योरसेल्फ। तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा टू गिव एविडेंस अगेंस्ट योरसेल्फ। इसी को बोलते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, अब ये भी इस मैक्सिम पे बेस्ड है जो आपको याद होनी चाहिए बिकॉज सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अब दिस इज वेरी सिमिलर टू द फिफ्थ अमेंडमेंट प्रोटेक्शन गिवन इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इफ यू वॉच अमेरिकन मूवीज एंड टीवी शोज यू माइट हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द फैक्ट दैट somebody has claimed fifth amendment. What does that mean? Okay, तो यही होता है कि you refuse to answer something which may incriminate you। ठीक है, तो आपके पास वो राइट है कि आप मना कर सकते हो। अब एक और जजमेंट है यूएस का, विच इज मिरांडा वर्सेस एरिजोना। ठीक है, आपने मिरांडा राइट्स के बारे में या मिरांडा प्रिंसिपल के बारे में भी सुना होगा, तो वो सेम ही प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाज एक्सप्लेन्ड इन द केस ऑफ मिरांडा वर्सेस एरिजोना, इसीलिए इसको मिरांडा राइट्स भी बोलते हैं, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के राइट्स को। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, जजमेंट है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि आपको ये जरूर पता होगा कि ओके you cannot be forced to give evidence against yourself, but for example your DNA evidence can be taken। ठीक है, अगर आपने कोई क्राइम किया है और if you are a suspect in a crime, your DNA evidence may be collected, right? So how is that permissible? अगर आपको right है खुद को defend करने का, तो why can you not refuse that, right? It is because of this judgment, because this judgment clarified कि ऐसा नहीं है, फिर ऐसे तो कोई इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं पाएगी, राइट? लाइक इफ वी कैन नॉट कंपेल यू टू डू एनीथिंग देन हाउ विल द इन्वेस्टिगेशन गो ऑन। तो कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टिंग द अक्यूज टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और टू गिव अ सिग्नेचर और हैंड राइटिंग, दिस विल नॉट अमाउंट टू टेस्टिमोनियल कंपल्शन। ठीक है, तो कोर्ट का कहना था कि हम आपको टेस्टिमनी देने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, बट आपके पास से जो एविडेंस है वो डेफिनेटली कलेक्ट किया जा सकता है। ओके, मतलब आप पर्सनली यू कैन नॉट बी फोर्स्ड टू कन्फेस, यू कैन नॉट बी फोर्स्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन, बट ऑफ कोर्स अदर काइंड ऑफ एविडेंस कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम यू। ठीक है,
Now, because we have the protection of testimonial compulsion, this is why nobody can force you to take all these polygraph tests and all. ठीक है, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट, ये आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता लेने के लिए, क्योंकि अगर ये करने के लिए आपको फोर्स करेंगे तो दिस विल अमाउंट टू testimonial compulsion, and testimonial compulsion is protected by article 20 clause 3. ओके, यही चीज कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में बोली थी, विच इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट, जहां पे कोर्ट ने कहा कि कंपल्सरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नार्को एनालिसिस would amount to testimonial compulsion and therefore would violate article 20 clause 3. ठीक है, लेकिन DNA profiling is not a testimonial act and therefore not protected by 20 clause 3. ठीक है, so this is article 20. If you guys have any doubts, feel free to leave your questions. I will definitely take them all up. Right? Okay. Now we come to Article 21. Article 21, although is very lengthy, there are a lot of judgments on it, but it's very easy to understand. ठीक है, Article 21 में ऐसा बिल्कुल भी कुछ difficult नहीं है जो आपको समझ ना आए. 21 simply बात करता है protection of life and personal liberty. ठीक है, दो चीजें protected है. No person shall be deprived of his life. That is the first thing. Second thing है personal liberty, except according to procedure established by law. ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया था, all fundamental rights are restricted. राइट, नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट. तो आपके पास एब्सोल्यूट लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का भी फंडामेंटल राइट नहीं है. ठीक है, ये कैसे लिया जा सकता है? दिस कैन बी टेकन अवे बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ओके, अब हम हर चीज को अलग अलग से एनालाइज करेंगे. व्हाट डू दीस थिंग्स मीन? राइट, राइट टू लाइफ, दिस हैज बीन इंटरप्रेटेड वेरी वाइडली बाय द कोर्ट्स. राइट, जैसे आपने पढ़ा होगा, राइट टू लाइफ में राइट टू एनवायरमेंट भी इंक्लूड होता है, राइट टू लिव विद डिग्निटी इंक्लूड होता है, privacy इंक्लूड होता है, जो कि एस पुट्टास्वामी के केस में कोर्ट ने कहा that everybody has, right? So right to life has been interpreted to mean a lot of things. Okay? Similarly with right to personal liberty, आपके पास personal liberty है और इसको भी कोर्ट ने काफी widely interpret किया है. लेकिन none of these are absolute. ठीक है, ऑफ कोर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई क्राइम करते हो तो यू कैन बी अरेस्टेड. आप नहीं बोल सकते हो कि यू हैव आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन की कोई आपकी पर्सनल लिबर्टी नहीं ले सकता. ठीक है, इवन डेथ पेनल्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनल इन इंडिया. राइट, तो आपके पास राइट टू लाइफ भी एब्सोल्यूट नहीं है. राइट, बिकॉज डेथ पेनल्टी इज स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनल. तो वट एवर विल बी डन टू टेक अवे दीज टू राइट्स हैज टू बी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? दिस हैज ऑल्सो बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट इन अ लॉट ऑफ जजमेंट्स. राइट, so I'll now quickly show you a few things about article 21. Okay, so article 21 is huge. You can read the judgments on your own. I mean one liners कि किस केस में कोर्ट ने कौन सा right to life का facet interpret किया. That does not require much explanation, but a few other things too. राइट, अब आर्टिकल 21 इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स, सिटीजन, नॉन सिटीजन, ऑल पर्सन्स. ठीक है, लेकिन ये सिर्फ नेचुरल पर्सन्स पे अप्लाई होता है, आर्टिफिशियल पर्सन्स पे नहीं. एंड यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाई, है ना. ऑफ कोर्स, हाउ विल अ कंपनी क्लेम इट दैट इट हैज राइट टू लाइफ और दैट इट हैज राइट टू पर्सनल लिबर्टी? ठीक है, तो इवन दो उन्होंने वहां पे टर्म पर्सन्स यूज किया है, इट ओनली मीन्स नेचुरल पर्सन्स. ठीक है, सिटीजन, नॉन सिटीजन, एवरीबडी इट इज एप्लीकेबल टू. ओके, person also includes dead person in a limited sense. ठीक है, dead persons have a right to dignified burial. इसके अलावा उनके पास ज्यादा rights नहीं होते हैं because well they are dead. Right, so dead persons are included in article 21 but in a very limited sense. ठीक है, अब लाइफ का बहुत सारा मतलब उन्होंने दिया. लाइफ का मतलब उन्होंने कहा, लाइफ का मतलब सिर्फ एग्जिस्टेंस नहीं होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की भी हम बात करेंगे. राइट, तो डिफरेंट फैसेट्स क्या क्या हैं? राइट टू लिव विद डिग्निटी. ठीक है, इस पे 2-3 जजमेंट्स आप देख रहे हो, फ्रांसिस कॉरली, PUDR, जीजा घोष. These are some judgments which said that there is right to live with human dignity. आपके पास राइट टू रेपुटेशन है, जो कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के केस में कहा, जहां पे सेक्शन 499 और 500 ऑफ IPC वाज बीइंग चार्ज, जो डेफेमेशन का ऑफेंस है. ठीक है, तो उसमें कोर्ट ने कहा कि एवरी पर्सन हैज अ राइट टू रेपुटेशन अंडर आर्टिकल 21. ठीक है, इसीलिए डेफेमेशन इज राइट, आई मीन इट्स अ वैलिड ऑफेंस. ओके, आपके पास राइट टू लाइवलीहुड है, जो ओल्गा टेलिस के केस में कहा. सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस इज कवर्ड इन आर्टिकल 21. आपके पास राइट टू शेल्टर है, राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरमेंट है, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, राइट टू एजुकेशन है. ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो कवर्ड इन 21A नाउ. ओके, बट जब वो नहीं भी कवर्ड था, व्हेन इट वाज नॉट एडेड, इवन बिफोर दैट द कोर्ट हैज सेड दैट देयर इज राइट टू एजुकेशन. ठीक है, तो मोहिनी जैन, उन्नी कृष्णन, इन सारे केसेस में कोर्ट पहले ही बोल चुके हैं दैट देयर इज राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21. ओके, राइट टू हेल्थ एंड टाइमली मेडिकल एड इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट. नो राइट टू डाई और कमिट सुसाइड.
ठीक है। जैसे 19(1) में था ना कि यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो डिसाइड नॉट टू स्पीक। ओके, यहाँ पे ऐसा कोई नेगेटिव राइट एग्जिस्ट नहीं करता है। आप ये नहीं बोल सकते कि इफ यू वांट टू डाई यू हैव अ राइट टू डाई आल्सो अंडर आर्टिकल 21। ओके, एंड दिस हैज बीन इंटरप्रेटेड मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट जजमेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे कोर्ट ने कहा था कि अटेम्प्ट टू यू नो बेसिकली सुसाइड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसको ज्ञान कौर के कोर्ट के केस में कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया। कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। ओके, अभी रिसेंटली भी कॉमन कॉज के केस में कोर्ट ने कहा कि पैसिव यूथेनेशिया हैज बीन लीगलाइज्ड बट नॉट एक्टिव यूथेनेशिया। ठीक है, तो मर्सी किलिंग इज अलाउड अंडर आर्टिकल 21 बट यू कैन नॉट एक्टिवली चूज टू डाई। ओके, देयर इज नो राइट टू डाई पर से। ठीक है, फिर डेथ पेनल्टी भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, दैट हैज बीन हेल्ड इन मल्टीपल जजमेंट्स लाइक बच्चन सिंह के पहले के भी 2 केसेस थे, जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जहां पे पुराने सीआरपीसी के प्रोविजन पे उन्होंने कहा था डेथ पेनल्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनल। राजेंद्र प्रसाद वाज अ जजमेंट, इट वाज अ 2 जज बेंच डिसीजन, जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर वाज वन ऑफ द जजेस। उन्होंने कहा था कि डेथ पेनल्टी हमको अबॉलिश कर देनी चाहिए। ठीक है, पर उन्होंने सजेशन दिया था कि डेथ पेनल्टी वी शुड अबॉलिश फॉर ऑल ऑफेंसेस एंड वी शुड ओनली रिटेन इट फॉर इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ठीक है, तो जो लोग व्हाइट कॉलर क्राइम्स करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो लोग करते हैं, हमें सिर्फ उनके लिए डेथ पेनल्टी रिजर्व करनी चाहिए। ठीक है, बट this was overruled in the case of Bachchan Singh, where the court finally decided that death penalty is constitutional in India. ठीक है, उन्होंने कहा लेकिन ये डेथ पेनल्टी जो है वो आप सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दे सकते हो। फिर उन्होंने डिफाइन भी किया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस क्या होंगे। लेटर ऑन इन मच्छी सिंह कोर्ट ने फिर और इलैबोरेट किया कि हाउ विल वी डिटरमाइन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एटसेट्रा। ठीक है, फिर आते हैं राइट टू पर्सनल लिबर्टी पे। अब आपके पास लिबर्टी है टू मूव अराउंड। ठीक है, बट लिबर्टी का सिर्फ इतना नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं है एज वी आर सीइंग इन द केस ऑफ ए के गोपालन। ठीक है, ए के गोपालन वाज वन ऑफ द फर्स्ट जजमेंट्स ऑन पर्सनल लिबर्टी, जहां पे कोर्ट ने काफी नैरो व्यू दिया। उन्होंने कहा कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है फिजिकल लिबर्टी, अगर आप फिजिकली फ्री हो तो मतलब योर आर्टिकल 21 इज प्रोटेक्टेड, जो लेटर ऑन कोर्ट्स ने ओवररूल किया। ओके, especially अब जब now that right to privacy is a fundamental right, now this position is outdated. ठीक है, इवन लेटर ऑन इन खड़क सिंह ऑल्सो कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लिबर्टी का वाइड मीनिंग होता है। तो इस केस में क्या था कि इवन दो द पर्सन वाज नॉट अरेस्टेड, पुलिस वाज फॉलोइंग हिम, पुलिस उसके घर के बाहर दे यूज्ड टू सर्वेल हिम एंड ऑल ऑफ दैट। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो सारी हरकतें हैं इवन दे विल कम अंडर आर्टिकल 21 एंड दे विल वायलेट द पर्सन्स राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ फिजिकल लिबर्टी नहीं होता है। ओके, फाइनली मेनका गांधी के केस में कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लिबर्टी इज वाइडर देन जस्ट फिजिकल लिबर्टी। ओके, नाउ वी कम टू राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी अभी रिसेंटली 2017 में कोर्ट ने बोला दैट इट इज अ फंडामेंटल राइट, बट उसके पहले भी कई सारे जजमेंट्स थे जहां पे स्मॉलर बेंचेस ने बोला था दैट इट इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ऑल्दो देयर वर अ लॉट ऑफ बेंचेस व्हिच डिड से दैट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, तो एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दे बोथ रूल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी इज नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, लेटर डिसीजंस ऑफ स्मॉलर बेंचेस हाउएवर हेल्ड राइट टू प्राइवेसी एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, फाइनली जस्टिस के एस पुट्टास्वामी के केस में एक 9 जज बेंच ने इसको फाइनली डिसाइड किया एंड दे सेड दैट राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 एज वेल एज 21। ओके, ठीक है, फिर और भी चीजें होती हैं, जैसे एक्स वर्सेस जी के केस में कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी होती है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि इट इज एब्सोल्यूट इन नेचर। जैसे इस केस में द इशू वाज दैट मिस्टर एक्स हैड HIV एंड ही वाज अबाउट टू गेट मैरिड, then the hospital disclosed it to his fiancée, and then Mr. X said that his article 21 has been violated by the hospital. So the court said that this is not violated because right to privacy is not a fundamental right. ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर कोर्ट ने ये भी बोला है कि women have a right to make reproductive choices, यानी कि they have reproductive autonomy, मतलब वो डिसाइड कर सकती हैं, and this is more solidified with the enactment of the MTP Act, that women have right over their body and to take reproductive decision. ठीक है, इस पर जो लैंडमार्क जजमेंट है वो है सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ठीक है, फिर कोर्ट ने कहा कि राइट टू लिबर्टी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन हैव एज मेनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज यू वांट। ओके, इस पर जो लैंडमार्क केस है वो है जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, बिकॉज इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था कि इफ यू आर डिस्क्वालिफाइंग अ पर्सन हु हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस इन पंचायत, दिस इज वैलिड। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा ना रिसेंटली भी दैट
population control bills are in the pipeline, like the government is considering it. So can we say that it will violate Article 21? Probably not. Okay, because ऐसा नहीं है कि they will say that you can't have more than 2 children. You can definitely still have them. The law will most likely be like this, that if you have more than 2 children, you will not get the benefit of these schemes, right? Like you may not be eligible for government post, you may not be eligible for benefits that are given to, let's say, uh, below poverty line people. Okay, so that kind of restrictions may be imposed in that law. Okay, so that very likely will be constitutional. ठीक है. फिर कोर्ट ने कहा कि राइट ऑफ अ पर्सन हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी टू लिव इन अ लिव इन रिलेशनशिप इज आल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. राइट टू गो अब्रॉड वाज आल्सो हेल्ड पार्ट ऑफ राइट टू 21 अंडर द मेनका गांधी केस. ठीक है. आपके पास राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन भी है. इस पे तो बहुत सारे जजमेंट हैं. द होल क्रिमिनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस कम्स अंडर दिस एम्बिट. ठीक है. प्रिजनर राइट्स पे भी सेम है. तो आप लोग ये सारे जजमेंट्स पढ़ सकते हो, मतलब इनके नाम याद रख सकते हो, बट दीज आर वेरी वेरी लैंडमार्क केसेस. ठीक है. जैसे राइट टू फ्री लीगल एड, right to speedy trial, right to fair trial, right to open trial, right to bail. ठीक है. All of these things have been held to be part of Article 21. Okay. All you have to do is remember the name of judgments which have held these things. ठीक है. No right to anticipatory bail, right against custodial violence, death by hanging not violative of Article 21. This was held in Dina versus Union of India. ठीक है. चलो अब आते हैं लास्ट चीज पे, which is procedure established by law. ठीक है. इसका क्या मतलब है? क्योंकि हमने देखा था कि आपकी लाइफ और लिबर्टी ली जा सकती है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक है. अब इसका क्या मतलब है? सो देयर आर 2 जजमेंट्स. वन इज द केस ऑफ ए के गोपालन, द अदर इज द केस ऑफ मेनका गांधी. ठीक है. ए के गोपालन वाज अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. इसमें कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि वो लॉ फेयर है कि नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से अलाइंड है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. द प्रोसीजर शुड सिंपली बी प्रोवाइडेड बाय अ लॉ एंड दैट इज इट. ठीक है. तो ये एक्चुअली जजमेंट एक प्रिवेंटिव डिटेंशन केस का था. ठीक है. मेनका गांधी के केस में कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि अगर लॉ ने कोई प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया है तो दैट विल सैटिस्फाई आर्टिकल 21. ओके. उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजर है इट मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल. इट शुड अलाइन विद प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है. तो कोर्ट ने कहा कि यूएस में जो कॉन्सेप्ट होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, ठीक है, जिसमें यही सारी चीजें इंक्लूड होती हैं कि लॉ सिर्फ लॉ नहीं होना चाहिए, लॉ फेयर भी होना चाहिए, रीजनेबल भी होना चाहिए. ठीक है. तो कोर्ट ने कहा कि इंडिया में जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो यूएस के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जैसा ही है. ठीक है. बस नाम अलग है, बट इट इज सिमिलर इन कंटेंट विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, समथिंग विच वाज नेगेटेड इन द ए के गोपालन केस. ठीक है. ओके. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आर्टिकल 21. ओके. Now tell me if you have any questions. Otherwise, I'll move on to the next article, which is 21A. तो बहुत ही easy है. 21A में as such कुछ नहीं है. It is only right to education. So you only have to remember the amendment. ठीक है. एक चीज और आपको याद रखनी है कि right to education is the only fundamental right in the constitution which puts a positive obligation on the state. ठीक है. आप बाकी जितने भी fundamental rights पढ़ोगे वो सारे negatively worded हैं कि no person shall be denied this, every person has this, state will not deny this person this, right? 21A is one of those which says कि state की responsibility है free education देने की. ठीक है. So this is the only fundamental right which puts this kind of a positive obligation on the state. तो 21A बोलता है state shall provide free and compulsory education to all children between the age of 6 to 14 years. ठीक है. बाकी जो जजमेंट्स हमने राइट टू एजुकेशन में देखे थे इन आर्टिकल 21, दे आर इक्वली एप्लीकेबल फॉर 21A, राइट? नाउ वी कम टू 22. नाउ 22 इज ओके, लाइक इट्स रेलेवेंट ऑफ कोर्स, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. ठीक है. इट्स नॉट नेसेसरीली नाउ अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो क्रिमिनल लॉ का भी काफी बड़ा पार्ट है, बट हम देखते हैं हमारे लिए कितना रेलेवेंट है. ठीक है. आर्टिकल 22 बात करता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. ठीक है. अगर आपको अरेस्ट या डिटेन किया गया है तो आपके पास क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है. नाउ 22(1) एंड 22(2) टॉक अबाउट बेसिक प्रोटेक्शन जो आपके पास है, सबके पास है. ठीक है. 22(3) आपको बताता है कि ये जो प्रोटेक्शन अभी हमने देखे ये किन किन लोगों के पास नहीं होंगे. ठीक है. एंड देन 22(4) टू 22(7) टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन. ठीक है. अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है? जैसा नाम से ही काफी क्लियर है, इट इज टू प्रिवेंट समथिंग. ठीक है. मतलब आपने अभी कोई क्राइम किया नहीं है, बट देर इज ओनली अ लाइवलीहुड कि आप कोई क्राइम करोगे, और उस चीज को रोकने के लिए आपको प्रिवेंटिवली डिटेन किया जा रहा है.
टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ दैट ऑफेंस। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हो कि काफी वेग प्रोसीजर है एंड इट इज ससेप्ट टू अ लॉट ऑफ मिसयूज ऑल्सो, एंड इट हैज बीन मिसयूज्ड ऑल्सो एज हैज बीन डॉक्यूमेंटेड ऑल्सो। क्योंकि अगर सिर्फ सस्पिशन है दैट यू मे कमिट अ क्राइम, then it is not solid enough, right? Like if you are detaining somebody just on a suspicion, then it takes away, your guarantee to a free and fair trial, especially when the law is very relaxed on this, क्योंकि आपके पास ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं होती है when we talk about preventive detention. ठीक है, but as I said, that's a separate topic altogether and that's mostly for criminal law. ठीक है, तो we will talk about this from a constitutional law perspective. ठीक है, तो आपके लिए 22(1) and 22 are more important than the remaining parts. रिमेनिंग पार्ट में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो अभी आप इसमें देख रहे हो वेयर एक्ट में जो भी है, दिस इज स्टिल मोर रिलैक्स्ड। ओके, ये काफी पावर देता है गवर्नमेंट को और लॉ मेकर्स को टू मेक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज more draconian, right? To give as less protection to people who are being detained under this laws. But it was supposed to be amended. Okay, it has been amended by the 44th amendment. ठीक है, जिन्होंने प्रोसीजर को थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाया है कि आपको अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है तो द प्रोसीजर विल बी अ लिटिल मोर स्ट्रिक्ट, राइट? बट द सैड पार्ट इज दैट दिस अमेंडमेंट इज येट टू बी नोटिफाइड। ठीक है, अभी तक ये फोर्स में नहीं आया, एज यू कैन सी यहाँ पे एस्टेरिक बना हुआ है ना, तो दिस इज नॉट येट नोटिफाइड, मतलब ये अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है। अभी तक गवर्नमेंट ने इसकी कोई डेट फिक्स नहीं करी है कि किस डेट से ये अप्लाई होगा। सो दैट इज वाई इवन टिल डेट फ्रॉम 1978 टू 2023 ये जो पुराना प्रोसीजर दिया हुआ है दिस इज एप्लीकेबल। ठीक है, एक जजमेंट भी था जहां पे द पार्टी वाज आर्ग्यूइंग दैट द कोर्ट शुड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू एनफोर्स दिस प्रोविजन, तो कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये काम जो है ये गवर्नमेंट का ही है एंड क्योंकि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है तो वो गवर्नमेंट को नहीं बता सकते व्हेन टू इनैक्ट अ पर्टिकुलर प्रोसीजर। ओके, सो नाउ वी कम टू 22(1) and 22 which are more important for us. 22(1) बोलता है no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds of such arrest. ठीक है, अगर आपको डिटेन किया गया है तो आपको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. ठीक है, आपके पास राइट है कि आप अपने you can be defended by whoever you want to be. Okay, now provided of course that you can afford those people, but yes, you have the right to consult and be defended by a legal practitioner of your choice. ठीक है, 22(2) कुछ टाइम लिमिट इंपोज करता है जो सिमिलर टाइम लिमिट्स आपने सीआरपीसी में भी देखी होंगी, दैट एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, अभी जो 24 आवर्स है इसमें ऑब्वियसली ट्रैवल टाइम इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो प्रोटेक्शंस हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं इफ यू हैव बीन अरेस्टेड और डिटेन्ड इन कस्टडी। ओके, ठीक है, 22 is available to again everybody, citizens, non-citizens, everybody. It does not apply to enemy aliens and it does not apply to people who are in preventive detention. ठीक है, ये 22(3) में दिया हुआ है, राइट? क्या क्या सेफगार्ड्स हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं 22(1) और 22(2) में। 22(3) बोलता है कि जो 22(1) और 2 का प्रोटेक्शन है दैट विल नॉट बी अवेलेबल टू एनिमी एलियंस, यानी कि इफ वी आर एट वॉर विद अ कंट्री तो वहां के जो लोग हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी एनिमी एलियंस, तो अगर आप उनको इंडिया में अरेस्ट करते हो तो उनको 22(1) और 2 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव लॉ के अंदर, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर डिटेन किया गया है तो भी आपको 22(1) और 2 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एज आई हैव टोल्ड यू व्हाट इट इज, प्रिवेंटिव डिटेंशन का पर्पस आपको पनिश करना नहीं होता है, इट इज टू प्रिवेंट द क्राइम फ्रॉम हैपनिंग। ठीक है, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉल्स इन एंट्री 9 ऑफ द स्टेट लिस्ट। ठीक है, लिस्ट 1 में भी है और लिस्ट 3 में भी है, तो यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन पर लॉज यूनियन भी बना सकती है एंड अंडर कॉन्करेंट लिस्ट इस पे स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉज बना सकती है। ओके, बिकॉज समटाइम्स दे डू आस्क यू क्वेश्चंस ऑफ वेयर अ पर्टिकुलर एंट्री फॉल्स। ठीक है, अब आप कुछ लॉज देख सकते हो कौन कौन से आए थे, कब रिपील हुए एंड अभी कौन कौन से लॉज इन फोर्स हैं। ठीक है, अभी पर्टिकुलरली देयर इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट व्हिच इज स्टिल इन फोर्स एंड वी हैव द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ठीक है, ये भी है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, बट जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है एनएसए एंड यूएपीए एज ऑफ नाउ। ठीक है, यू कैन सी अदर लॉज ऑल्सो व्हिच हैव कम एंड गॉन व्हिच आर नो लॉन्गर वैलिड नाउ। ठीक है, अब क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अगर आपने किसी को डिटेन किया है तो क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? द आंसर इज यस।
ठीक है। ऑल्दो कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है, जनरली कोर्ट देखता है कि क्या ये एक्शन मैलाफाइड तरीके से लिया गया, क्या इसमें नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, क्या इररेलेवेंट ग्राउंड्स को कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बेसिस पे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। Actually, in the last 1.5 years, a lot of judgments of preventive detention have indeed come. Okay, but it is doubtful whether it is, important for CLAT or not. ठीक है। अदरवाइज काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, बट शायद CLAT के लिए उतना रेलेवेंट हम उसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 44th अमेंडमेंट अभी तक फोर्स में नहीं आया है। ए के रॉय के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द एग्जीक्यूटिव टू गिव एन एनफोर्समेंट डेट ऑफ द अमेंडमेंट, ठीक है। एज ऑफ नाउ the old position of article 22(4) to 7 applies and not the new one, ठीक है। आपको चाहिए तो आप एक बार इसमें से पढ़ लेना क्या क्या चीजें हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट यस आपको एक बार बैरैक्ट इसका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ वी कम टू आर्टिकल 23 and 24. Again, very easy, nothing much in this. You just have to remember the name of the laws which have been enacted under 23 and 24. Okay, 23 बात करता है कि प्रोहिबिशन है ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, मतलब आप किसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो और फोर्स्ड लेबर नहीं कर सकते हो, यानी बंधुआ मजदूरी, ठीक है। तो 23(1) बोलता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेकार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर are prohibited and any contravention will be a punishable offense. 23(2) बोलता है कि even though that is true, but nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purpose on you, ठीक है। वो आपके ऊपर कंपल्सरी सर्विस लगा सकते हैं पब्लिक पर्पस के लिए। जब वो ऐसा करेंगे तो दे विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ दैट, ठीक है। 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ओके, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। Now, who is a child for the purpose of Article 24? Any person who is under the age of 14 years. ठीक है। अब as I said, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, you just need to know the name of the cases, ठीक है। The protection is available to all persons. विशालजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया was the landmark judgment जहां पे कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए for rehabilitation of child prostitution victims. Okay, also the case of गौरव जैन। तो मे बी आपसे जजमेंट के नाम पूछ सकते हैं। अब आप लॉज के नाम याद रख सकते हो कि 23 के अंदर जो लॉ है वो है इत्पा, ओके। पहले इसका नाम था सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956, बट इसको रीनेम कर दिया गया है 1986 में और नाउ इट इज कॉल्ड द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956, ओके। सो यू नीड टू नो दिस। देन यू हैव, ठीक है, ये सारी चीजें तो नॉर्मल है कि पब्लिक पर्पस के लिए आप कर सकते हो। कोर्ट ने स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में कहा था कि so I hope you guys know that there are two types of imprisonment. One is simple imprisonment, the other one is rigorous imprisonment. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? rigorous imprisonment में you are supposed to work also, है ना। तो कोर्ट ने इस केस में यही कहा कि convicted person को आप फोर्स कर सकते हो मैनुअल लेबर के लिए and that is protected by 23(2), ठीक है। बट कोर्ट ने ये भी कहा कि उसके लिए लेकिन आपको इक्विटेबल वेजेस जरूर देने होंगे, ठीक है। कंपल्सरी लेबर आप कर सकते हो पर फ्री लेबर आप नहीं करा सकते हो, राइट। सो कंपल्सरी मैनुअल लेबर इज प्रोटेक्टेड बट यू हैव टू पे इक्विटेबल वेजेस टू दोस पर्संस एज वेल, ठीक है। अब काफी सारे केसेस हैं, मोस्टली PILs, PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, MC मेहता एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। 24 के अंदर, आर्टिकल 24 के अंदर जो लॉ आया है वो है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, okay. So this is 23 and 24. As I said, it's not very important. There are only the name of laws that you have to memorize. Chalo. Okay. Now we come to the next set of fundamental rights, which is the right to freedom of religion. ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन अभी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज a 9-judge bench is sitting and I mean it has been formed, it will sit sometime in the future to decide some very important questions relating to article 25 and personal laws also, ठीक है। तो in that context it becomes very important for you to know कि what is freedom of religion और उसके specially restrictions क्या होते हैं, ठीक है। तो article 25, 26, 27 and 28 they talk about right to freedom of religion, okay. अब आर्टिकल 25 पे आते हैं, द फर्स्ट आर्टिकल विच टॉक्स अबाउट
फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दिस इज द जेनेसिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया, राइट। तो 25 बोलता है दैट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन द स्टार्टिंग ओनली दे आर टेलिंग यू व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम। ठीक है, तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, तो 4 रिस्ट्रिक्शंस बताई उन्होंने, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3, यानी कि बाकी फंडामेंटल राइट्स। तो इन सबके सब्जेक्ट करेंगे, मतलब दीज कैन बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। Subject to this, all persons, okay, again, not just citizens, non-citizens also, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ religious rights protected हैं, conscience also, ठीक है, if you believe in something else which is not religious, that is also protected under article 25(1). okay, अब आते हैं 25(2) पर, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात करता है कुछ एक्सेप्शंस की, कि ठीक है, इवन दो देयर इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कुछ चीजें हैं जो स्टेट कर सकता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। ठीक है, यानी कि अगर स्टेट चाहे तो ऐसा कोई लॉ बना सकता है टू रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, तो मतलब जो चीजें रिलीजियस नहीं है, जो रिलीजन से रिलेटेड है, यानी कि कोई इकोनॉमिक मैटर, फाइनेंशियल मैटर, पॉलिटिकल मैटर, इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए स्टेट कैन मेक अ लॉ। ओके, सिमिलरली सोशल रिफॉर्म के लिए, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर सोशल रिफॉर्म के लिए आप कोई लॉ लेके आ रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो वैलिड। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू। ठीक है, तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं एंड दे विल कम इन हैंडी व्हेन वी विल रीड आर्टिकल 26। ओके, अब 2 एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन है कि कैरिंग एंड वेयरिंग ऑफ किरपान्स बाय सिख्स इज पार्ट ऑफ द रिलीजन, एंड जब हम हिंदू यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं तो हिंदू का मतलब होता है हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। ठीक है, सो दैट इज द डेफिनेशन, राइट। सो दिस इज आर्टिकल 25। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 26। ठीक है, आर्टिकल 25 थोड़ा वाइड राइट है, इट इज अवेलेबल टू एवरीबडी। ठीक है, एवरी पर्सन कैन हैव दैट राइट, इट्स एन इंडिविजुअल राइट, आप इंडिविजुअली क्लेम कर सकते हो कि आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 26 ऑन द अदर हैंड इज मोर ऑफ अ ग्रुप राइट। ठीक है, 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब जैसे आर्टिकल 25 was available to all persons, आर्टिकल 26 is not available to all persons. It is only available to religious denomination. ठीक है, now what is a religious denomination? ये कोर्ट ने एक जजमेंट में टेस्ट ले डाउन किया कि how will we determine religious denomination. ठीक है, so we'll come to that a little later. But 26, as I said, is not applicable to everybody. It is only available to religious denominations. ठीक है, अब इनको क्या क्या राइट्स मिलते हैं, पहले तो रिस्ट्रिक्शन देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन थोड़ी अलग है, एक रिस्ट्रिक्शन कम है। यहाँ पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन हैं? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ओके, तो एक और जो रिस्ट्रिक्शन थी आर्टिकल 25 में, विच इज अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, दैट डज नॉट अप्लाई टू आर्टिकल 26। ठीक है, नाउ आर्टिकल 26 बोलता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन और उनके सेक्शंस के पास राइट है टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। वो इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दे कैन मैनेज देयर ओन अफेयर्स, they can own and acquire movable and immovable property and they can administer such property in accordance with that law. ठीक है, ये अभी रिसेंटली आपके सबरीमाला जजमेंट में चैलेंज हुआ था, मतलब चैलेंज मतलब इन्वोक हुआ था, क्योंकि वहां पे जो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स थे उनका कहना था कि हम रिलीजियस डिनोमिनेशन हैं एंड वी हैव राइट्स अंडर आर्टिकल 26 एज वेल। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 26 बोलता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास राइट है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो वो क्लेम कर रहे थे कि वी आर रिलीजियस डिनोमिनेशन और इवन इफ वी आर एक्सक्लूडिंग मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन फ्रॉम एंटरिंग आवर टेंपल, दैट कम्स विद इन आवर पावर ऑफ मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ आवर ओन रिलीजन। ठीक है, कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट का कहना था, उन्होंने आउटराइट ही रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप रिलीजियस डिनोमिनेशन ही नहीं हो तो सवाल ही नहीं उठता आपके ऊपर 26 एप्लीकेबल होने का। ठीक है, तो उस केस में काफी डिस्कशन हुआ था ऑन वेदर द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड अयप्पा आर अ रिलीजियस डिनोमिनेशन और नॉट। ओके, 27 एंड 28 ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, मतलब यू कैन जस्ट रीड देम फ्रॉम द बेयर एक्ट। 27 बोलता है कि आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कोई रिलीजियस टैक्स पे करने के लिए। रिलीजियस टैक्स मतलब ऐसा कोई भी टैक्स जिसके प्रोसीड्स किसी पर्टिकुलर रिलीजन के डेवलपमेंट के लिए यूज होंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई टैक्स पे करने के लिए यू कैन नॉट बी कंपेल्ड। ठीक है, 28 बात करते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते
टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिलीजन के बारे में नहीं पढ़ाया जा सकता, रिलीजन के बारे में पढ़ाया जा सकता है। एंड आई होप ऑल ऑफ यू माइट हैव इवन रेड इट, राइट? फॉर एग्जांपल, आई रिमेंबर in CBSE, I think in class 6 and 7, they have Ramayana and Mahabharat as part of the curriculum of Hindi, right? So these are religious texts, but they're still being taught in CBSE schools. So why is that? Because teaching of religious instruction is fine, okay? Teaching about religion is fine, but आप किसी को force नहीं कर सकते to practice in any religious worship or religious instruction. ठीक है, तो यही बातें उन्होंने बोली है 28 में कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड, स्पेशली जो होली स्टेट फंड से मेंटेन्ड है। ओके, फिर उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटाए हैं कि अगर स्टेट फंड से आप नहीं रेगुलेटेड हो तो आप कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड कि जो पर्सन्स हैं वो कंसेंट दें। ठीक है, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन recognized by state or receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious instruction or to attend any religious worship unless such person, or if that person is a minor, his guardian gives his consent। ठीक है, तो कंसेंट के साथ फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस जिनको स्टेट रिकॉग्निशन मिला हुआ है या जिन्हें स्टेट से फंड मिलता है, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो कंसेंट के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, तो मोस्टली फॉर योर एग्जाम पर्पसेस it is 25 and 26 which is more important, right? So now I'll show you a few cases on that. ठीक है, अब रिलीजन की कोई डेफिनेशन नहीं है, एज यू कैन इमेजिन दैट रिलीजन ऑब्वियसली कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, अब देखो आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं। आपके पास है राइट टू प्रोफेस योर रिलीजन, ठीक है, आप ओपनली अपनी फेथ प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है आपके पास, और राइट टू प्रोपेगेट भी है कि आप दूसरों को भी अपने रिलीजन के बारे में बता सकते हो। ठीक है, लेकिन आप इसमें किसी को फोर्स नहीं कर सकते, मतलब आप किसी को कन्वर्ट करने के लिए यू कैन नॉट फोर्स देम, दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर 25(1). ओके, अब कोर्ट ने एक टेस्ट इवॉल्व किया इन 1954 कॉल्ड द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो एसेंशियल है रिलीजन के लिए सिर्फ उन्हीं को हम 25 के अंदर प्रोटेक्ट करेंगे, और जो प्रैक्टिसेस एसेंशियल नहीं है दे मे नॉट रिसीव द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 25। ठीक है, सो दिस टेस्ट वाज लेड डाउन इन द जजमेंट ऑफ शिरूर मठ केस। इसका पूरा नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, सो अ 7 जज बेंच इन द शिरूर मठ केस laid down the test of essential religious practices। ओके, फिर कई सारे जजमेंट्स आए जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये डॉक्ट्रिन कैसे अप्लाई होगी। ठीक है, जैसे शिरूर मठ के केस में कोर्ट ने कहा था कि हम उस रिलीजन की डॉक्ट्रिन्स देख के डिसाइड करेंगे कि कोई चीज एसेंशियल है या नहीं। देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में कोर्ट ने कहा कि अल्टीमेटली जो डिसीजन होगा वो कोर्ट्स के ऊपर है, मतलब कोर्ट्स का रोल है डिसाइड करने में कि कोई चीज एसेंशियल है या नहीं। जस्ट बिकॉज दैट people of that religion are saying it is essential, court will not accept that on the face value। ठीक है, courts analyze करेंगे कि whether something is essential or not। ओके, दरगाह कमिटी वर्सेस सैयद हुसैन अली के केस में कोर्ट ने कहा था कि फॉर अ प्रैक्टिस टू बी ERP इट मस्ट बी रिगार्डेड एज सच बाय द रिलीजन इटसेल्फ। कोर्ट ने कहा कि जो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस हैं उनको हम ERP का स्टेटस नहीं देंगे। ठीक है, सो ऐसे कई सारे जजमेंट्स हैं एज यू कैन सी जिन्होंने अल्टीमेटली बताया है कि आप कैसे डिसाइड करोगे, बट दिस हैज ऑलवेज बीन अ वेरी a doctrine which does not really have a uniform application। ठीक है, आप ऐसे बता नहीं सकते हो कि किस केस में कोर्ट माइट कंसिडर समथिंग टू बी ERP और नॉट। ठीक है, जैसे अभी जो 2017 में केस आया था शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो ट्रिपल तलाक जजमेंट था आपका, इसमें वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स वाज कि ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस हमारे रिलीजन के लिए एसेंशियल है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। कोर्ट ने मना किया। कोर्ट ने कहा कि अगर आप इस्लाम के ही टेनेट्स को देखें, कुरान को देखें या बाकी रिलीजियस टेक्स्ट को देखें, तो हमेशा से ट्रिपल तलाक को, इवन तो हमेशा से वो लीगल रहा है, लेकिन हमेशा से उसको एक गलत काइंड ऑफ तलाक माना जाता है, लाइक इट इज नॉट अ अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक। तो इवन इन इस्लाम, कोर्ट का कहना था कि इवन इन इस्लाम इटसेल्फ it is not considered to be a good form of divorce, even though it is legal, it is still not considered to be the best way to divorce somebody। तो कोर्ट ने कहा कि ये प्रैक्टिस ERP का पार्ट नहीं है, and that is why they struck it down। ठीक है, फिर एक जजमेंट है कन्वर्जन पे कि आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते जबरदस्ती, बिकॉज 1.5-2 years before there were a lot of laws which the states were enacting for anti conversion, right? एक टाइम पे लव जिहाद बहुत था, मतलब था इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि एक्चुअली था, बट न्यूज में काफी था, राइट? तो बहुत पुराना जजमेंट है रेवरेंड स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का 1977 का। इस केस में कोर्ट ने दो लॉज को, दो स्टेट लॉज थे, एक मध्य प्रदेश का और उड़ीसा का, जो सिमिलर लॉज थे एंटी कन्वर्शन वाले। तो कोर्ट ने इनको अपहेल्ड किया और कोर्ट ने कहा कि किसी के पास किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करने का राइट नहीं है, इट इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25। ओके,
ठीक है, ये सब तो ठीक है, नॉट वेरी रेलिवेंट। आर्टिकल 26 पे आते हैं कि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है। अब आपको ये टेस्ट याद रखना है। ओके, तो एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो जजमेंट है, इसमें कोर्ट ने ले डाउन की 3 कंडीशंस जो आप देखोगे टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल फॉल अंडर रिलीजियस डिनोमिनेशन और नॉट। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट टेस्ट है कि इट मस्ट बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अ कॉमन फेथ और कॉमन बिलीफ सिस्टम। ठीक है, पहले तो कॉमन बिलीफ होना चाहिए उनका। दूसरा है इट मस्ट हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है इट मस्ट बी डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम। ठीक है, अब आप जैसा कि देख सकते हो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टेस्ट, राइट। अब किसी सेट ऑफ इंडिविजुअल्स की कॉमन फेथ है यानी आप कैसे डिटरमाइन करोगे, क्योंकि सबरीमाला जजमेंट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट, राइट, जहां पे कोर्ट ने कहा कि लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स आर नॉट रिलीजियस डिनोमिनेशन, है ना। उसमें जो माइनॉरिटी जज थी, डिसेंटिंग जज थी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, उन्होंने कहा कि लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स आर रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, तो एज यू कैन सी इवन दिस टेस्ट इज वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, राइट। चलो, फिर कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 26B यानी कि राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, हमें इसको 25(2) के साथ रीड करना है। 25(2) जो बोलता है कि स्टेट अगर चाहे तो लॉ बना के रिलीजन के कुछ एस्पेक्ट्स को रेगुलेट कर सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सेक्युलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, सोशल वेलफेयर के लिए लॉज बनाना। ठीक है, तो 26B विल हैव टू बी रेड विद 25(2)A and B, राइट। सो दिस इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब द लास्ट थिंग आई विल कवर टुडे is article 29 and 30. Okay, if time permits maybe 32 also, because 32 is also very छोटा सा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे, सेकंड लास्ट एक्चुअली, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, 2 ही फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें, 29 and 30, इनको हम माइनॉरिटी राइट्स भी बोलते हैं। 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ओके, अब इसकी जो हेडिंग है ये थोड़ी सी मिसनोमर है, बिकॉज इसका जो कंटेंट है इसमें हम माइनॉरिटीज की बात ही नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, 29(1) बोलता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स residing in India having a distinct language, script or culture shall have the right to conserve the same. ठीक है, तो एक्चुअली ये माइनॉरिटीज की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ऐसे कोई भी सिटीजन्स जिनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, उनके पास राइट है उसको कंजर्व करने का। ठीक है, तो दे आर नॉट नेसेसरली ओनली टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटीज। ठीक है, सेकंड 29(2) तो हमने पढ़ा ही था व्हेन वी वर रीडिंग आर्टिकल 15, है ना। 29(2) बोलता है कि एडमिशन के मामले में आप इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अगर आपको याद हो आर्टिकल 15(4) वाज एडेड, जहां पे उन्होंने क्लियरली लिखा था नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कवर्ड इन 29(2). ठीक है, सो आई होप यू रिमेंबर दैट डिस्कशन, दैट विल बी रेलेवेंट। ओके, तो एक ही आर्टिकल है एक्चुअली जो आपको पता होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू माइनॉरिटी राइट्स, दैट इज आर्टिकल 30। ओके, उसमें भी एक ही प्रोविजन है, 30 क्लॉज 1। आर्टिकल 30 बोलता है कि माइनॉरिटीज के पास राइट है टू इस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। ठीक है, 2 टाइप की माइनॉरिटीज यहाँ पे कवर्ड है, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, तो अगर आप रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो किसी स्टेट में, तो आपके पास राइट है कि आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश भी कर सकते हो और उसे एडमिनिस्टर यानी कि मेंटेन भी कर सकते हो। ओके, 30 1A और 2 ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। 1A बोलता है कि अगर स्टेट आपकी कंपलसरी अक्वायर कर रही है प्रॉपर्टी, तो स्टेट को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो तो वो एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन दे। और 30 क्लॉज 2 बोलता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में बिफोर ग्रांटिंग एड्स। ठीक है, तो बेसिकली 30 क्लॉज 1 इज द ओनली आर्टिकल विच इज वेरी रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम पर्पसेस। ठीक है, अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें पहले बता देती हूँ, देन आई विल शो यू द केसेस। ओके, सो सी, अब अगर आपको याद हो व्हेन वी रेड आर्टिकल 15(5), ओके, देन हमने देखा था कि आप यू कैन प्रोवाइड, मतलब स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर SCBCs एंड SCs and STs, एंड इवन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दे कैन डू दैट। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एड नहीं भी मिल रहा है तो भी उनके ऊपर रिजर्वेशन अप्लाई किया जा सकता है। दैट इज व्हाट आर्टिकल 15(5) सेड, राइट। बट अगर आपको याद हो उसमें उन्होंने कहा था कि बट दिस डज नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, मतलब स्टेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन के क्राइटेरिया नहीं दे सकते हैं, राइट। सो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन do enjoy certain more rights. Okay, more in the sense मतलब they have the right of non-interference by the state. ठीक है, although again I will say it,
कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है और ना ही आर्टिकल 30 क्लॉज 1 एब्सोल्यूट है, क्योंकि कई सारे जजमेंट्स में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि इवन दो इट इज ट्रू दैट स्टेट विल मिनिमली इंटरफियर इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, लेकिन ऐसे रेगुलेशंस जो मेरिट के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के लिए हैं, टीचर्स के इंटरेस्ट के लिए हैं, है ना, मेरिट के फेवर में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस और लॉज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे भी इक्वली एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, नॉन इंटरफियरेंस होगा स्टेट का, स्टेट ज्यादा इंटरफियर नहीं करेगा, लेकिन ये सारी चीजें प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी लॉज बनेंगे दे विल इक्वली अप्लाई टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एज वेल। ओके, फिर एक और चीज कोर्ट ने क्लैरिफाई करी है टाइम एंड अगेन, स्पेशली इन सेंट स्टीफन जजमेंट, सेंट स्टीफन के जितने भी केसेस हैं और सेंट जेवियर्स के भी, कोर्ट ने कहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस खुद डिसाइड कर सकते हैं उनको क्या करना है। ठीक है, मतलब दे कैन डिसाइड व्हाट इंस्टीट्यूशन दे वांट टू ओपन, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको उन इंस्टीट्यूशंस में अपने ही रिलीजन या अपनी ही लैंग्वेज की चीजें सिखानी होंगी। ओके, दे कैन ओपन एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेंट स्टीफेंस का नाम सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इट इज वन ऑफ द गुड कॉलेजेस, राइट। नाउ सेंट स्टीफेंस इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सिमिलरली मणिपाल यूनिवर्सिटी यू माइट हैव हर्ड, मणिपाल यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सिर्फ माइनॉरिटी एजुकेशन ही देंगे, मतलब उसी मैटर्स पे देंगे। दे कैन ओपन एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, बी इट स्कूल्स, कॉलेजेस, ओके, व्हाटएवर। ठीक है, फिर कोर्ट ने कहा कि सी, वैसे तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खुद डिसाइड करेंगे कि उनको कौन से बच्चे एडमिट करने हैं, दे हैव द एब्सोल्यूट राइट टू एडमिट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग ओनली टू देयर रिलीजन। ठीक है, दे कैन डू दैट, बट अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को स्टेट से एड मिल रहा है ना, तो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उन्हें कुछ परसेंटेज ऑफ नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को भी एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि जिनको एड मिलता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट से, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उनको सम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू नॉन माइनॉरिटी एडमिट। ठीक है, इवन तो कोई ऐसा पर्टिकुलर परसेंटेज सेट नहीं है, कुछ केसेस में कोर्ट ने कहा कि 50% होना चाहिए, बट दैट हैज बीन ओवररूल्ड। ऐसे ही आपको एक परसेंटेज उन्होंने सेट नहीं करी है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स आपको लेने चाहिए, बट आपके पास ऑब्लिगेशन है कि अगर आपको एड मिलता है तो यू विल हैव टू देन एडमिट नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स एज वेल। ओके, now I'll quickly show you some judgments on these points that I have just told you, right? ठीक है, 29 as I said does not really have much things in it. 29(2) we have already discussed in article 15. Okay, article 30 now applies to religious as well as linguistic minority. ठीक है, okay, ठीक है। अब हु इज अ माइनॉरिटी? ठीक है, अब माइनॉरिटी कौन है? जो भी नॉन डोमिनेंट ग्रुप होगा उसको माइनॉरिटी बोलेंगे। तो आपको जो लिटरल सेंस में मतलब पता है माइनॉरिटी, दैट इज द वन व्हिच इज एप्लीकेबल। ओके, कोर्ट ने केरला एजुकेशन बिल के केस में कहा कि अगर किसी स्टेट लॉ को हम चैलेंज कर रहे हैं तो माइनॉरिटी विल बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टेट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि पूरे इंडिया के बेसिस पे आप कोई माइनॉरिटी डिसाइड करोगे। माइनॉरिटी अगर कोई पर्सन है या नहीं, वो स्टेट वाइज डिपेंड करेगा कि स्टेट में बाकी पॉपुलेशन का क्या रिलीजन है, उसके हिसाब से minorities will change. Okay, so no two states will have the same set of minority because religious or linguistic minority may differ, right? तो ये सारे judgments हैं जिसमें कोर्ट ने ये बातें बोली। Okay, okay. अब आती है माइनॉरिटी स्टेटस। ठीक है, कि क्या आपको कहीं जाके माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम करना है? तो उसका आंसर है नहीं। अगर हम आर्टिकल 30 की बात कर रहे हैं तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनीबडी टू क्लेम माइनॉरिटी स्टेटस। ठीक है, क्योंकि अदर केसेस में आपको अगर माइनॉरिटी बेनिफिट्स चाहिए हैं, जैसे कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, इसके अंदर आपके पास माइनॉरिटी स्टेटस होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 30 की जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस स्टैट्यूट व्हिच हैज बीन एनैक्टेड फॉर अ डिफरेंट पर्पस ऑल टुगेदर। ठीक है, तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इफ यू हैव टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30 देन यू हैव टू गो समवेयर एंड क्लेम अ माइनॉरिटी स्टेटस। ठीक है, इफ यू आर अ माइनॉरिटी इन दैट स्टेट यू कैन डेफिनेटली यूज आर्टिकल 30। ठीक है, अब दो राइट्स हैं, जैसे राइट टू एस्टैब्लिश एंड राइट टू एडमिनिस्टर ऑल्सो। ठीक है, मतलब उसको मैनेज करने का भी आपके पास राइट है। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, एज आई टोल्ड यू इट कुड बी ऑल लेवल्स फ्रॉम प्राइमरी टू पोस्ट ग्रेजुएट, इवन प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैन बी ओपन। राइट टू मैनेज का मतलब होता है राइट टू इफेक्टिवली मैनेज। ठीक है, मतलब अगर आप मिस मैनेज कर रहे हो तो वो राइट आपके पास 30 क्लॉज 1 में नहीं है। ठीक है, कोर्ट ने टीएमए पाई की केस में कहा कि अगर कोई लॉ नेशनल इंटरेस्ट में बन रहा है या इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स, देन इट विल अप्लाई टू ऑल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ओके। अनएडेड माइनॉरिटी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आप अनएडेड माइनॉरिटी हो, मतलब आप स्टेट से कोई एड नहीं ले रहे हो, तो फिर आपके पास पूरा फ्रीडम है कि आपको किनको अपने इंस्टीट्यूशन में एडमिट करना है,
आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, ऑब्वियसली मेरिट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मेरिट को ओवरलुक कर सकते हो, वो आप पे अप्लाई होंगे। रेगुलेशंस फॉर मेंटेनिंग मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी कैन बी इम्पोज्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम एडेड माइनॉरिटी की बात करें तो उनके ऊपर एक और चीज अप्लाई होगी, दैट दे विल हैव टू एडमिट सर्टेन परसेंटेज ऑफ नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स एज वेल, ठीक है। सो दैट इज द ओनली थिंग। अब राइट टू एडमिनिस्टर में कई सारी चीजें कोर्ट ने कहा है कि राइट टू एडमिनिस्टर में ये चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि राइट टू चूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, राइट टू टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट योर स्टाफ, राइट टू सिलेक्टिंग students for admission, ठीक है, again provided merit is being taken care of, okay, so all these things are included, okay, so article 30 आपको इसी context में पढ़ना है, okay. Now I will quickly tell you about article 32 also and then we'll wind up this class, और जो बाकी चीजें बची article 31 A B C that I'll cover in the next class, right. ठीक है, बट बिफोर वी कम टू आर्टिकल 32 लास्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट है जो बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, ठीक है। उसके पहले 33, 34, 35 देख लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर अबाउट, क्योंकि इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है। 33 बात करता है कि जब हम आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है, आर्मी या फिर ऐसी फोर्सेस विच आर फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे आपके BSF है, CRPF है, ठीक है, तो ये सारी जो फोर्सेस हैं इनके ऊपर फंडामेंटल राइट्स बी टेकन अवे, ठीक है। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड, ठीक है। तो जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनको कम फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। तो आपको इसमें बस यही कीवर्ड याद रखने हैं कि अगर आप आर्म पर्सनल्स के फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कैन ओनली बी बाय पार्लियामेंट बाय वे ऑफ अ लॉ, सेकेंडली इट कैन ओनली बी फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। 34 में कुछ भी नहीं है, 34 आपको बस ये याद रखना है कि मार्शल लॉ की बात करता है। कई बार सिंपल क्वेश्चन आता है कि मार्शल लॉ से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है, द आंसर इज 34। 35 आपको बताता है कि हमने जहां जहां पे यहाँ पे लॉज की बात करी थी, वी विल हैव टू मेक अ लॉ फॉर पार्ट 3, तो वो लॉ पार्लियामेंट बनाएगी ना कि स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेंबर आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में था कि आप रेसिडेंस की रिक्वायरमेंट रख सकते हो, तो कौन बनाएगा लॉ, पार्लियामेंट बाय वे ऑफ अ लॉ, ठीक है। 17 बोलता है अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, अगर कोई प्रैक्टिस करेगा तो उसे पीनलाइज किया जाएगा बाय वे ऑफ लॉ, तो वो लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, ठीक है। सिमिलरली 23, 24 में बोला है कि अगर आपको जो लॉज बनाए हैं प्रोटेक्शन ऑफ बॉन्डेड लेबर के लिए या फिर चाइल्ड लेबर के लिए, वो सारे लॉज भी पार्लियामेंट बनाएगी एंड दिस हैज बीन सेड इन आर्टिकल 35, ठीक है। Now I will quickly come to Article 32, which is constitutional remedies. ठीक है, तो बहुत easy, I'm sure everybody is very comfortable with this. Article 32 is your writ jurisdiction, जो बात करता है कि अब ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, जस्टिस BR अम्बेडकर ने इसको बोला दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। उन्होंने ऐसा क्यों बोला, सी क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपके पास है, दैट इज वेल एंड गुड, बट अगर आप उन्हें एनफोर्स ही नहीं कर पाओगे तो व्हाट गुड आर दे, इफ यू कांट गो टू कोर्ट टू गेट देम एनफोर्स्ड, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो दिस इज वेयर आर्टिकल 32 कम्स इन, व्हिच सेज कि आपके पास राइट है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो फॉर वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, ओके, इसी को हम बोलते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, पहले पैरा एक्ट, फिर थोड़ा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में पता होना, और फिर लास्ट में जो रिट्स हैं उन रिट्स के क्या मतलब होते हैं, दैट यू शुड नो। तो 32(1) बोलता है राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स इज गारंटी, ठीक है। अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के साथ आप सुप्रीम कोर्ट जाके अपने राइट्स को एनफोर्स करा सकते हो, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर होगी, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगी टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट्स। किस किस टाइप की रिट्स, हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्शियरी, ठीक है। अभी हम आएंगे इनके इंडिविजुअल मतलब है कि इनका क्या मतलब, ठीक है। 32(3) उतना रेलेवेंट नहीं है, बट 32(3) बोलता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो ये जो पावर्स हैं ये किसी और कोर्ट को भी दे सकता है अदर देन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर 4 बोलता है कि ये जो राइट्स हैं वो गारंटेड हैं अनलेस दे आर सस्पेंडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जैसे इमरजेंसी के टाइम पे कुछ राइट्स को हम सस्पेंड कर सकते हैं, तो दैट इज वैलिड, बट अदर देन दैट द राइट इन दिस पार्ट इज गारंटी, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज गारंटी।
ठीक है, ओके। तो बी आर अम्बेडकर ने इसको बोला था कि आर्टिकल 32 इज द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको कॉर्नर स्टोर ऑफ द डेमोक्रेटिक एडिफाइस भी बोला गया है। कोर्ट को बोला गया है दैट दे प्ले द रोल ऑफ सेंटिनल ऑफ द क्यूबी। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, अब कोर्ट ने कहा कि दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कि आप कोर्ट को अगर अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के थ्रू अप्रोच करोगे तो ही आपके पास ये राइट है। ठीक है, ऑल द अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स क्या होती है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, एंड इट हैज बीन रिलैक्स्ड बाय द कोर्ट इन मल्टीपल केसेस। फॉर एग्जांपल, कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि अगर आप सिर्फ लेटर लिख रहे हो कोर्ट को, तो कोर्ट उसे भी कभी कभी एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर किसी मीडिया रिपोर्ट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बेसिस पे कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगा अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, दैट हैज नॉट बीन डिफाइंड। ओके, कोर्ट ने कहा है कि कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं है डिसाइड करने के लिए कि व्हाट आर अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, कोर्ट ने लेटर्स तक को एक्सेप्ट किया है अंडर आर्टिकल 32 एज पिटिशंस, जिसको हम एपिस्टलरी जुरिस्डिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं रूल ऑफ लोकस स्टैंडी। अब कोर्ट ने इसको काफी रिलैक्स किया, जिस वजह से इंडिया में पीआईएल्स काफी डेवलप हो पाए। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं है दैट यू शुड बी अफेक्टेड फॉर यू टू क्लेम आर्टिकल 32। ठीक है, तो जो पब्लिकली स्पिरिटेड सिटीजन हैं, जैसे कि काफी सारे एनजीओ होते हैं, इवन दे कैन एडवोकेट फॉर समबडी एल्स एंड गेट देयर राइट्स एनफोर्स्ड। ठीक है, ऐसे ही हमारे कंट्री में जितनी भी प्रिजनर्स राइट्स की जो भी जूरिस्प्रूडेंस जनरली डेवलप हुई है, दैट हैज बीन डेवलप्ड अंडर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओनली। ठीक है, तो कोर्ट ने एक्चुअली आर्टिकल 32 के अंदर लोकस स्टैंडी को काफी डाइल्यूट करके रखा हुआ है। ओके, इंडिया में जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे और मोस्टली जिनको एट्रीब्यूट किया जाता है वो है जस्टिस पीएन भगवती। ओके, ठीक है, अब सी यहाँ पे काफी सारे जजमेंट्स हैं जो आपने आर्टिकल 21 में भी पढ़े होंगे, आर्टिकल 19 में भी पढ़े होंगे, सो यू कैन गो थ्रू देम वंस। ओके, आई विल जस्ट लीव दिस एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स एंड रिमेंबर दीज कि किस जजमेंट में कोर्ट ने क्या बोला था, मतलब वो जजमेंट किस चीज से रिलेटेड है। ये सारे लैंडमार्क केसेस है, सो आई एम नॉट रियली गोइंग इनटू दीज बिकॉज दे आर क्वाइट कॉमन नॉलेज बाय नाउ। अब आते हैं लास्ट चीज पर, जो है रिट्स। रिट्स के मतलब भी काफी इजी है। रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस बोलती है यू मे हैव द बॉडी। ठीक है, यानी कि दिस इज अ रिट विच इज बेसिकली अवेलेबल फॉर समबडी हु हैज बीन इलीगली डिटेन। तो अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया है, आपको नहीं पता है कि वो पर्सन क्यों अरेस्टेड है, कहां पर है, तो आप रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस फाइल करके पूछ सकते हो कि वेयर इज दिस पर्सन। तो कोर्ट ये रिट इशू करके बोलेगा कि प्रेजेंट दिस पर्सन टू द कोर्ट। ठीक है, सो यू मे हैव दैट बॉडी। ओके, अब ये जो है रिट, दिस रिट इज द ओनली रिट जिसपे रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, सारी रिट्स पे रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल है, मतलब आपने एक बार कोर्ट से वो रेमेडी मांग ली और अगर कोर्ट ने रिफ्यूज कर दी तो आप दोबारा नहीं जा सकते बोलने कि अरे वी वांट दिस अगेन। ओके, रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस इज द ओनली रिट ऑन विच रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई। ठीक है, रिट ऑफ मैंडेमस होती है सेकंड रिट। ये रिट आप किसी भी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो। इसमें कोर्ट आपको कमांड देता है। ठीक है, कोर्ट कमांड देता है टू अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, तो अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही है तो कोर्ट में इशू दिस रिट। रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्चुरारी दोनों जुरिस्डिक्शनल रिट्स हैं। रिट ऑफ प्रोहिबिशन कोर्ट को मना करती है कि अगर कोई इंफीरियर कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, इफ इट इज ट्राइंग टू डिसाइड समथिंग, कोर्ट विल टेल देम नॉट टू डू दैट, कोर्ट विल प्रोहिबिट देम फ्रॉम डूइंग दैट। रिट ऑफ सर्चुरारी उसके बाद अप्लाई होती है कि अगर किसी कोर्ट ने जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं था, इफ दे हैव गिवन अ जजमेंट और अ फाइंडिंग, तो कोर्ट उसको क्वॉश कर सकती है। ठीक है, कोर्ट बोलेगी कि दिस इज नॉट वैलिड। ओके, फिर आती है रिट ऑफ को वारंटो। रिट ऑफ को वारंटो पूछती है व्हाट इज योर अथॉरिटी। तो अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है तो कोर्ट में आस्क दैट पर्सन टू टेल कि उसके पास क्या अथॉरिटी है वो ऑफिस होल्ड करने की। ओके, सो दिस इज आर्टिकल 32। नाउ लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। ओके, any questions, any doubts? I'll wait for 2 minutes. Meanwhile, I'll just plug my laptop to the charger. Okay, let me know if you have any questions. Okay, so I will end this session now. Okay, so Nisha has asked a doubt. How to remember the name of so many judgments? So Nisha, basically, see, these are bare minimum judgments, right? Like constitution, we know is a very bulky subject, and you have to remember judgments. All right. तो आप कुछ जजमेंट स्किप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बहुत सारे पीआईएल्स कवर किए, किस केस में क्या बोला कोर्ट ने, दोस मे बी यू कैन स्किप। बट जिन जजमेंट्स में कोर्ट ने कोई टेस्ट ले डाउन किया है, या फिर फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जैसे शिरूर मठ केस देखा, एसपी मित्तल केस देखा फॉर राइट टू रिलीजन, राइट, तो ये तो आपको बेयर मिनिमम याद होने ही चाहिए। ओके, आई नो दीज आर अ लॉट, बट यू नो दैट देयर आर सो मेनी केसेस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज आर लिटरली द बेयर मिनिमम, राइट, सो अनफॉर्चुनेटली यू डू हैव टू मेमोराइज देम। आप कुछ केसेस स्किप कर सकते हो, जैसे जो वन लाइन फाइंडिंग्स थी हमारी, जिसपे मैंने 3-4 केसेस मेंशन किए हैं,
आप उनको स्किप कर सकते हो, बट एटलीस्ट जिनकी मेन फाइंडिंग्स हैं आप उनको यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू मेमोराइज देम. ओके, चलो. Any other questions, guys? I will see you tomorrow at 12 p.m. So 12 to 1:30 we'll have a class, and we will cover Article 368 tomorrow, and we will start with legislature and executive in tomorrow's class. Okay, so thank you everyone. I'll end the session now, and take care. Okay, hi everyone. So we are just going to start with today's session. Before we begin, if there's anybody who is new to this session and you face any technical difficulty or glitch, please leave the meeting and rejoin. If you have any questions to me, directly ask it to me through the chat box. Okay, so I will quickly share my screen and then we will start for today. Hi everyone. Right. So yesterday we talked about the remaining fundamental rights. So we are done with all of them. Now we are only left with Article 368 when we talk about fundamental rights. Okay, although it is about amendment, but we will be talking about Article 31A, B, and C while we talk about the amendment process. So that is why we are taking it up right now. All right. So I hope all of it is clear to you. If you guys have any questions, you can definitely let me know. All right. So today I will tell you what all I intend to cover. So the first thing that we're going to start with and cover is the doctrine of basic structure, right? So we will be talking about Article 368, a lot of important judgments which led to the current position of law with respect to amendment of the Constitution. And then we will see how the law has developed and what is the current position, right? So Article 368 discussion will be done here. Once we are done with this, then we will move on to the judiciary, right? Because after we are done with fundamental rights, DPSP and fundamental duties is something which you can read on your own, because there is no conceptual understanding per se that is required for that portion. You just have to know what DPSP is covered under which article. Okay, so important ones like where is maternity leave given, where is village panchayat given, where is uniform civil code given, where is the protection to the environment given. Okay, so you just have to memorize the keywords along with the article number. Right, same applies for fundamental duties. Fundamental duties में भी hardly आपको 2 या 3 duties ही याद रखनी है. Okay, one is about protection of dignity of women. One is about duty to protect the environment. One is the latest one, the 51AK, which was added about protection of children. Okay, and education of them. So this part you can cover on your own. Nothing, no additional material has to be relied upon to read this area. Okay, so today I will talk about doctrine of basic structure. Then I will talk about the judiciary. So we will talk about the jurisdiction of the Supreme Court and High Court as well. Okay, and what is the appointment procedure, what is the eligibility requirements, how can they be removed. Okay, so basics of all of that. Now in High Court there isn't much to read like jurisdiction wise, so we will only be focusing on the eligibility and the appointment and the removal. Once we are done with that, then we will move on to the executive. Okay, so executive, again, although it may seem lengthy from the Bare Act, but it is quite easy. You just have to know about a few offices. So you need to know about the office of the president, of the vice president, of the governor. Okay, and then you need to know about the council of ministers and their collective responsibility. Okay, so even though उसमें लगता है कि बहुत सारा है, but आपको exam point of view से उसमें से काफी कम चीजें पढ़नी है. ठीक है. After I'm done with that, which I think I'll be able to do in today's class, the last topic that I will discuss today will be about the Union Territory of Delhi. Okay, so we will not be talking about union territories in general because that portion is something which is not very frequently asked. But with respect to Delhi, the NCT, the National Capital Territory of Delhi, that is important. So we will cover Article 239AA to finish that off. Okay, so now I will start with doctrine of basic structure. Okay, if you have any questions, you can let me know. Okay. So see, the whole point arises from how much we can amend the Constitution. Okay? So Article 368 of the Constitution basically tells us the procedure in which we can amend the Constitution. Now, Constitution can be amended in a lot of ways. For example, if you have read the part 1 that we saw,
उसमें आर्टिकल 4 में दिया हुआ था कि आप टेरिटरीज ऐड कर सकते हो। ऐड मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो होता है, उसको करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि अमेंडमेंट्स जो इसमें दिए हुए हैं आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो अमेंडमेंट्स होंगे उस पर आर्टिकल 368 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो एक वो तरीका होता है अमेंडमेंट करने का जहां पे वो आर्टिकल 368 के अंदर कवर नहीं होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से दिया हुआ है, वेरेवर दैट इज द केस। ओके, उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसेस है दैट इज गिवन इन आर्टिकल 368। ओके, सो आर्टिकल 368 बेसिकली टेल्स अस how we can amend the constitution and how much we can amend the constitution. Can we amend fundamental rights? Okay, can we amend the preamble? Now we know that we can do these things, but earlier there was not clarity enough as to what can and cannot be done. Okay, so now we need to trace back how we have arrived at this position that we can amend any part of the constitution, and what are the limitations of the parliament while amending the constitution. Okay, so that is wherein the doctrine of um, basic structure comes in, because that tells us how much you can amend the constitution. Okay, so I'll quickly show you 368 as it exists right now, and then we will trace back the cases. Okay, so this is part 20. Part 20 contains provisions with respect to amendment of the constitution. ठीक है, इसमें जो सबसे मेजर अमेंडमेंट खुद इस आर्टिकल में हुआ था दैट वाज द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, जिसमें उन्होंने इसकी हेडिंग चेंज की, क्योंकि यहाँ पे पहले लिखा हुआ था सिर्फ प्रोसीजर कि दिस प्रोवाइड्स ओनली फॉर द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, ठीक है। फिर शुरू में कुछ जजमेंट्स आए जिसकी वजह से पार्लियामेंट ने इसको अमेंड किया, स्पेशली आफ्टर आईसी गोलकनाथ केस, और कोर्ट ने पार्लियामेंट ने कहा कि ये सिर्फ प्रोसीजर नहीं बताता है, इट ऑल्सो गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 368 एज ऑफ नाउ बोलता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट मे इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि आप किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो। इसका मतलब क्लियरली ये भी है कि यू कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स एज वेल। ओके, क्योंकि आईसी गोलकनाथ के केस में कोर्ट ने कहा था कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो, तो उसके रिस्पॉन्स में दे केम अप द 24th अमेंडमेंट। ओके, तो पहली चीज तो अभी भी ये है कि यस, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, एनी पार्ट कैन बी अमेंडेड। ओके, फंडामेंटल राइट्स कैन ऑल्सो बी अमेंडेड, प्रीएम्बल कैन ऑल्सो। ओके, अब क्लॉज 2 बताता है कि एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन may be initiated. Okay, just a minute. Okay, apologies. Yeah, so clause 2 फिर हमको बताता है कि ये आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। So tells us the process. 368(2) बताता है कि amendment may be initiated only by way of an introduction of a bill in either house of the parliament. Okay, so it can originate either in Lok Sabha or in Rajya Sabha, एंड जो इसको पास करने का प्रोसेस है वो है स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। तो 2/3 मेंबर्स की आपको मेजोरिटी चाहिए, सो टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी होनी चाहिए प्लस नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। इसको बोला जाता है स्पेशल मेजोरिटी, वेर यू रिक्वायर दिस काइंड ऑफ मेजोरिटी टू पास एनी बिल, ठीक है। तो ऐसे आप दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के बिल को पास करोगे, एंड देन यू विल सेंड इट टू द प्रेसिडेंट हु विल गिव हिज असेंट। ओके, यहां तक तो काफी इजी है। Now comes the proviso. Now this proviso is very important and it has been invoked 2 times in very important judgments, where the Supreme Court has struck down constitutional amendments because they did not abide by this proviso. Okay, तो अभी proviso बोलता है कि अगर आपको इन चीजों में चेंज करना है जो इन्होंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखी है, ठीक है, जैसे आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट की पावर, 55 अगेन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, 73 अगेन रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव वाले कुछ प्रोविजंस हैं। 279A आई थिंक इज अबाउट जीएसटी। ओके, फिर जुडिशरी वाले प्रोविजंस हैं, ठीक है। चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 विच डील्स विद यूनियन जुडिशरी, दिस डील्स विद स्टेट जुडिशरी, ठीक है। कोई भी आपको 7th शेड्यूल की लिस्ट अमेंड करनी है, ठीक है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। अगर आपको पार्लियामेंट में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन चेंज करना है, या फिर अगर आपको आर्टिकल 368 अमेंड करना है, ओके, सो इफ यू हैव टू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, अगर आपकी अमेंडमेंट में इनमें से किसी भी चीज को आप टच कर रहे हो, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी से तो पास होने करना ही पड़ेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो हैव टू टेक ratification of at least 1/2 of the states, ठीक है। तो यानी कि स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, एटलीस्ट 1/2 of the states in India will have to ratify this amendment for it to actually come into force,
ठीक है, तो दैट इज द होल पोजिशन। अब जो अभी रिसेंट राजेंद्र एंड शाह का केस आया था 2021 में, जहां पे दे पार्शियली स्ट्रक डाउन द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच डेल्ट विद योर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसको उन्होंने इसीलिए स्ट्राइक डाउन किया था क्योंकि इट डेल्ट विद स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट लिस्ट में फॉल होती है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपको ये अमेंडमेंट लाना था तो आपको इस प्रोवाइजो से कंप्लाई करना था, यानी कि आपको स्टेट्स का रैटिफिकेशन लेना था। एंड जस्ट बिकॉज यू डिडंट टेक दैट, दैट इज व्हाई द 97th अमेंडमेंट इज पार्शियली स्ट्रक डाउन। ठीक है, तो इसका भी बहुत ही रीसेंट एप्लीकेशन हो चुका है, राइट। इसके अलावा किहोतो हॉलोहन का एक जजमेंट है जो हमने कई बार क्लास में डिस्कस किया है, किहोतो हॉलोहन वर्सेस जाकिलू। उस केस में भी सेम इशू था कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है पार्ट 10 ऑफ द शेड्यूल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो पैरा 7 था जो बोलता था कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा टू एंटरटेन डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस, उसको कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, नॉट बिकॉज इट वायलेटेड बेसिक स्ट्रक्चर, बट द कोर्ट सेड कि आप अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ले रहे हो तो इट विल कम अंडर दिस, सो यू विल हैव टू टेक द रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो वो एक और इंस्टेंस था जहां पे कोर्ट ने प्रोसीजरल ग्राउंड्स पे एक अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन किया था। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और चीजें भी हैं जो ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, जैसे ये वाला जो पार्ट है 4 और 5। ठीक है, क्या हुआ कि केशवनंद भारती का जजमेंट आया जहां पे कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि आप सब कुछ अमेंड कर सकते हो बट यू कांट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट केम अप विद सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स टू नलिफाई द जजमेंट ऑफ केशवनंद भारती। ठीक है, तो ये उसके बाद ऐड हुआ था कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन टू द कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा मिनर्वा मिल्स के केस में कि ये चीजें, ये वाले अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं बिकॉज आप कोर्ट की पावर नहीं ले सकते जुडिशियल रिव्यू की। ठीक है, तो आप जैसे कि फुटनोट में देख सकते हो कि जो 42nd अमेंडमेंट ने क्लॉज 4 और 5 को ऐड किया था, दिस वाज स्ट्रक डाउन इन द जजमेंट ऑफ मिनर्वा मिल्स। ठीक है, तो नाउ वी नो द करेक्ट पोजिशन। ओके, नाउ द ओनली थिंग वी नीड टू सी आर अ फ्यू जजमेंट्स विच हैव लेड टू दिस पोजिशन। ओके, ऑलराइट, चलो, तो आर्टिकल 368 इज गिवन इन पार्ट 20। ओरिजिनली जैसे मैंने आपको बताया इसमें सिर्फ प्रोसीजर लिखा हुआ था, 24th अमेंडमेंट से उन्होंने इसको चेंज करके पावर एंड प्रोसीजर कर दिया। ठीक है, कितने तरीके होते हैं अमेंडमेंट करने के? सिंपल मेजोरिटी से आप कर सकते हो, जैसे आर्टिकल 4 के अंदर आई टोल्ड यू। स्पेशल मेजोरिटी से करते हो जो हमने आर्टिकल 368(2) में देखा, और फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन जो हमने 368(2) के प्रोवाइजो में देखा। ठीक है, फिर किहोतो हॉलोहन का केस आई जस्ट टोल्ड यू कि इस केस में 10th शेड्यूल में पैरा 7 की वैलिडिटी क्वेश्चन में थी, जो सिर्फ इसलिए स्ट्राइक डाउन की गई क्योंकि वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रही थी। ठीक है, इट वाज नॉट स्ट्रक डाउन ऑन एनी सब्सटैंटिव ग्राउंड्स बट ओनली एंड ओनली ऑन प्रोसीजरल ग्राउंड्स, राइट। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पे। तो नाउ देयर आर एटलीस्ट 4 वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दैट यू नीड टू नो। ओके, द फर्स्ट केस, आप ये दोनों केस साथ में याद रख सकते हो, शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह। इन दोनों जजमेंट्स में कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि आप बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो, यू कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल डूइंग दैट। ओके, तो अब ये जो दो केसेस थे, दे वर चैलेंजिंग आर्टिकल 31A एंड 31B। ओके, तो नाउ आई विल टेल यू व्हाट दीज आर्टिकल्स आर अबाउट। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ रहे हैं? सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज के अंदर, राइट। इसका क्लियर मतलब ये है कि दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट सम लॉज फ्रॉम बिकमिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो 31A वाज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, सॉरी, या फर्स्ट अमेंडमेंट ने ऐड किया आर्टिकल 31A एंड 31B। ओके, अब इनके डिटेल्स आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट 31A सेज, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट्स पर्पस। ओके, सो 31A इसलिए आया था बिकॉज व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट, so there was a lot of inequity in terms of resource distribution. A lot of land was held by in the zamindari system, so government wanted to have a more equitable distribution जहां पे state अपना welfare state के functions को discharge कर सके। ठीक है, तो वो करने के लिए they needed to make some laws which would deprive people of their property or certain rights। ठीक है, तो अब जनरली क्या होता कि अगर ऐसे लॉज वो बनाते तो they would have been struck down as unconstitutional because they would have violated article 14 or 19 or 21, राइट। तो उन लॉज को सेव करने के लिए, उन लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से बचाने के लिए पार्लियामेंट एडेड 31A एंड 31B। ठीक है, 31A थोड़ा नैरो है,
31A में उन्होंने आपको इंस्टांसेस बताए हुए हैं कि कौन कौन सी चीजों से रिलेटेड अगर कोई लॉ बना हुआ है तो इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा नैरो है बिकॉज इट डील्स विथ ओनली पर्टिकुलर एरिया, जैसे आप देख सकते हो एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी एस्टेट, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, अमलगेमेशन ऑफ टू कंपनीज, ठीक है। आपको एग्जैक्टली याद नहीं रखना है कि व्हाट आर दे अबाउट, दो तीन आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर इन चीजों से रिलेटेड कोई लॉ बना है तो इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इनकंसिस्टेंट विद आर्टिकल 14 और 19, ठीक है। तो अगर ये जो लॉज हमने इस पार्ट के अंदर बनाए हैं, अगर ये लॉज 14 और 19 को वायलेट कर भी रहे हैं तो भी हम उन्हें वॉइड नहीं डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ 31A। ओके, अब सिमिलर चीज 31B भी करता है, बट 31B थोड़ा वाइड है क्योंकि उन्होंने वहां पे सिर्फ ये बोला कि वी आर क्रिएटिंग अ 9th शेड्यूल, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 8 शेड्यूल थे। तो उन्होंने कहा वी आर क्रिएटिंग द 9th शेड्यूल, और इस 9th शेड्यूल में जो भी लॉ हमने रखा हुआ है, विच एवर लॉ, रेगुलेशन, रूल वी पुट इन दिस 9th शेड्यूल, इस पे आप अब जुडिशियल रिव्यू नहीं करोगे, ठीक है। मतलब ये अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर भी रहा होगा तो ये वॉइड नहीं होगा, ठीक है। सो इट सेव्ड दोज लॉज व्हिच वर केप्ट इन द 9th शेड्यूल, राइट। तो एक बार हम देखते हैं 31B क्या बोलता है। Validation of certain acts and regulations. Without prejudice to the generality of this, none of the act and regulations specified in the 9th schedule, nor any of the provisions shall be deemed to be void. ठीक है, for the violation of any provisions of this part. ठीक है, तो 31A सिर्फ 14 और 19 से प्रोटेक्ट कर रहा था, 31B प्रोटेक्ट करता है सारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से, ठीक है। तो ये दोनों अमेंडमेंट्स चैलेंज हुए थे शंकरी प्रसाद के केस में और फिर सज्जन सिंह के केस में। ओके, दिस इज हाउ दीज आर लिंक्ड, राइट। तो शंकरी प्रसाद में कोर्ट ने फर्स्ट अमेंडमेंट को अपहोल्ड किया। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास 368 के अंदर पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। सिमिलर फाइंडिंग्स फिर सज्जन सिंह के केस में भी कोर्ट ने दी, ठीक है। फिर आया आपका आईसी गोलकनाथ केस, ठीक है। उसके बाद और भी कई सारे अमेंडमेंट हुए, फर्स्ट, फोर्थ एंड 17th, ये 3 अमेंडमेंट्स थे जिसकी वैलिडिटी कोर्ट चैलेंज कर रहा था। तो फर्स्ट तो हमें ऑलरेडी पता है, फोर्थ एंड 17th वर रिलेटेड टू सम एंट्रीज व्हिच वर एडेड इन द 9th शेड्यूल। तो 9th शेड्यूल में उन्होंने कुछ लॉज ऐड किए थे 4th और 17th अमेंडमेंट से, जिसको उन्होंने आईसी गोलकनाथ के केस में चैलेंज किया, ठीक है। तो नाउ आईसी गोलकनाथ वाज द टर्निंग पॉइंट because in this judgment for the first time court said by a 6:5 majority कि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के जजमेंट्स गलत हैं एंड दे ओवररूल्ड देम। और कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, स्पेशली वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते हो एंड दे ओवररूल्ड शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह, राइट। अब अगर आपको याद हो, दिस केस इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, ठीक है, जिसको हमने कई बार देखा है। प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का मतलब होता है कि दिस जजमेंट विल अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। तो इसका इंटेंशन ये था कि सी दिस केस केम आउट इन 1967, right? 31A and 31B were added in 1951. So there was around 13-14 years that have passed, 15 years almost, which have passed between this duration, right? तो कोर्ट ने देखा कि इस बीच में a lot of laws have been protected by 31A, 31B, a lot of action has been taken under those laws. तो अब हम उसे retrospectively invalidate नहीं कर सकते because it will disturb all of that settled position, right? A lot of property disputes will come up because of this disruption, and that is why the court said that we will apply this judgment retrospectively, which means that 31A and 31B are now unconstitutional, ठीक है। तो इसके अंदर हम पहले जो भी कर चुके हैं that will not be disturbed, okay? तो अब इस जजमेंट के बाद पार्लियामेंट केम अप विद द 24th एंड द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको फिर फाइनली हमने केशवनंद भारती में चैलेंज किया, ठीक है। 25th उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 25th ने एक्चुअली 31C को ऐड किया था, जिसको अभी हम देखेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द 24th अमेंडमेंट विच मेड चेंजेस टू आर्टिकल 13। उसमें उन्होंने 13(4) ऐड किया एंड इट मेड मेजर चेंजेस टू आर्टिकल 368, ठीक है, जो हमने अभी देखे थे, राइट। अब उसके पहले मैं आपको एक बार 31C दिखा देती हूँ, है ना। 31C है डीपीएसपीस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। 31A और B का पर्पस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 31C का पर्पस है कि कुछ डीपीएसपीस को हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखेंगे। अब क्योंकि हमें पता है कि डीपीएसपीस एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, राइट। पार्ट 4 बहुत क्लियरली बोलता है कि डीपीएसपीस आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। सो दे आर नॉन जस्टिसेबल। तो नेचुरली हम उनको तो एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट का काम है अपनी पॉलिसी बनाते वक्त डीपीएसपीस का ध्यान रखने का, राइट। तो 31C का इंटेंशन ये था कि कुछ लॉज जो कुछ डीपीएसपीस को प्रमोट कर रहे हैं, उनको हम आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर रखेंगे। मतलब
अगर वो लॉज जो डीपीएसपी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इवन इफ दे आर वायलेटिंग 14 और 19, दे विल नॉट बी हेल्ड टू बी वॉइड, दे विल बी सेफ। ठीक है, अब इसमें भी एक और अमेंडमेंट हुआ है 42 जो हम समझेंगे। ऑलराइट, तो 31C बोलता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13, नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स सिक्योरिंग। अभी आप इसको भूल जाओ, ये बाद में ऐड हुआ था। ठीक है, इसके पहले 25th में क्या पोजीशन थी, हम उसको देखते हैं। 25th में पोजीशन थी 39B and C। ठीक है, तो बहुत नैरो स्कोप था कि ऐसे लॉज जो 39B और C को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, अगर वो 14 और 19 से इनकंसिस्टेंट भी हैं तो दे विल नॉट बी स्ट्रक डाउन। ओके, 42nd अमेंडमेंट में कोर्ट ने उस चीज, सॉरी कोर्ट ने नहीं, पार्लियामेंट ने उस चीज को चेंज करके क्या कर दिया, ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ पार्ट 4। ठीक है, तो उन्होंने इसका स्कोप बहुत वाइड कर दिया कि उन्होंने कहा डीपीएसपी के लिए अगर आप कोई भी लॉ बना रहे हो तो 14 और 19 को वायलेट करेगा भी तो भी वैलिड होगा। ठीक है, जो कोर्ट ने अल्टीमेटली स्ट्राइक डाउन कर दिया है। तो एक्चुअली अभी एज ऑफ नाउ जो करेक्ट पोजिशन है वो यही है कि 39B और C को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप कोई लॉ बनाओगे एंड इफ दैट वायलेट्स 14 और 19, दैट विल स्टिल बी कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, ये वाला जो पार्ट था, दिस वाज स्ट्रक डाउन इन केशवनाथ भारती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर भी ले रहे थे, वो बोल रहे थे कि आप इसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि आप कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं ले सकते हो। राइट, तो ये सारी चीजें 24th and 25th अमेंडमेंट, दीज वर चैलेंज्ड इन द केशवनाथ भारती केस। ओके, एंड वी ऑल नो अबाउट दिस केस। इस केस में सबसे बड़ी जो आज तक की बेंच है, दैट वाज फॉर्म्ड एंड दैट सेट एंड गिव इट्स जजमेंट। राइट, तो 13 जज बेंच sat in 1973 and gave this case where it upheld the validity of all these amendments। ठीक है, कोर्ट ने आईसी गोलकनाथ को भी पार्शियली ओवररूल किया और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वट एवर यू अमेंड, बी इट द प्रियम्बल, बी इट फंडामेंटल राइट्स और एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई होगी, वो ये है कि इट हैज टू बी सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हो, उसके अलावा आपको जो अमेंडमेंट्स लाने हैं आप ला सकते हो। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर की कोई सेट डेफिनेशन नहीं है कि ओनली दीज थिंग्स विल कम अंडर बेसिक स्ट्रक्चर, ऑल्दो इन अ लॉट ऑफ जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट अ फ्यू थिंग्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू बी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बट ऐसी स्टिल कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में पार्ट फॉल करेंगी ही। ओके, सो कोर्ट ने 31C को भी अपहेल्ड किया, लेकिन वो जो पोर्शन मैंने आपको दिखाया था विच टुक अवे द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उसको कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। ठीक है, सो दिस इज द होल ओरिजिन स्टोरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। राइट, ठीक है, कोर्ट ने फिर ये भी क्लियर किया कि 31B जो 9th शेड्यूल के लॉज हैं, अब जो अभी तक उसमें ऐड हो गए हैं, अब हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट अब जो भी लॉज उसमें ऐड होंगे या अगर किसी एग्जिस्टिंग लॉ में अमेंडमेंट होता है तो देन वो लॉ भी टेस्ट होगा कि वेदर इट इज कंप्लाइंग विद द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और नॉट। ठीक है, तो नो मैटर व्हाट यू आर मेकिंग, व्हाट अमेंडमेंट्स यू आर मेकिंग, all of them will have to comply with the basic structure doctrine। right, ठीक है, अब इसके बाद पार्लियामेंट was not happy of course। ठीक है, तो then they decided to come up with the 42nd constitutional amendment। ठीक है, अब ये जो अमेंडमेंट था, ऑल्दो इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है बिकॉज इट अमेंडेड अ लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वर मेड। ठीक है, वन ऑफ द अमेंडमेंट्स वाज विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 31C। ठीक है, एंड ऑल्सो 368 जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया, 31C में मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, दे एक्सपैंडेड द स्कोप। उन्होंने कहा कि why restrict only to 39B and C, let's extend this protection to all or any principles of part 4। ठीक है, तो ये कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया मिनर्वा मिल्स के केस में, विच इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट इन लाइन। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट से दे डिड अ लॉट ऑफ चेंजेस, दे आल्सो एडेड 31D जो नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है, बट अब ये रिपील हो चुका है। ठीक है, तो वी डोंट नीड टू रीड अबाउट 31D। ओके, so this 42nd amendment was challenged in Minerva Mills versus Union of India, and court basically struck down 368 4 and 5 which took away the judicial review power, and it also said कि 31C में आपने अभी जो changes किए हैं 42nd amendment से, those are also unconstitutional। तो जो पुरानी position है that is now restored, which was only protecting 39B and C। ठीक है, इस केस में कोर्ट ने बहुत ही आइकॉनिक लाइन भी बोली थी कि फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसजेंडेंटल, इनएलिएनेबल एंड प्रिमोर्डियल। ठीक है, तो कई बारी एग्जाम में वो सिर्फ ये देके पूछ लेते हैं कि विच जज सेड इन विच केस। राइट, एंड दिस इज Justice D.Y. Chandrachud's father। Okay, it's not the current CGI that we have। Okay, तो अब आते हैं कुछ जजमेंट्स पे which you need to know कि किस पॉइंट पे कौन सा जजमेंट है, ये आप खुद से याद रख सकते हो, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। Now these things have been held to be part of basic structure of the constitution
over a lot of years. ठीक है, supremacy of the constitution, republic and democratic form of the government, secularism, federalism, sovereignty of India, judicial review, free and fair election, rule of law, limited amending power of the parliament, separation of power, independent judiciary. ठीक है, ये सारी चीजों को कोर्ट ने multiple cases में which I've mentioned, court has said that these are part of basic structure of the constitution. ठीक है, चलो अब केशवनंद भारती के बाद भी दो केसेस आए, वामन राव एंड आईआर कोयलो. आईआर कोयलो इज ऑल्सो नोन एज द 9th शेड्यूल केस. ठीक है, इस केस में कोर्ट तब तक क्लैरिफाई कर रही थी कि 9th शेड्यूल पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, या अब 9th शेड्यूल में जो लॉज हैं क्या हम उन्हें दोबारा इवेलुएट करेंगे. तो वामन राव और आईआर कोयलो में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि 9th शेड्यूल पे जो भी चेंजेस होंगे दे विल अप्लाई फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट ऑफ केशवनंद भारती. ठीक है, तो केशवनंद भारती वाज डिसाइडेड ऑन 24 अप्रैल 1973. तो उन्होंने कहा इसके बाद अब जो भी लॉज इसमें ऐड होंगे या एग्जिस्टिंग लॉज में अगर कोई अमेंडमेंट होगा तो नाउ दिस विल ऑल्सो बी टेस्टेड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो दो ही जजमेंट्स हैं जिनके नाम आपको याद रखना है. ओके, ठीक है. ओके, राजेंद्र एंड शाह का जजमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ओके, ओके अनुष्का, विच स्लाइड? This one or this one, right? By the way, all of this is uploaded for you guys already on your portal, so you can just go back and see this from there. अच्छा, इसके पहले वाली is what you're saying? This one? No, not this one. Okay, case list is what you want. ठीक है. Okay, you can take a screenshot also if you want. If not, it is already there on your portal, right? Okay, so this basically brings us to the end of basic structure. ठीक है, इस पे सबसे रीसेंट जो जजमेंट है वो है राजेंद्र एन शाह, जो है 368(2) के प्रोवाइसो पे. ओके, अदर देन दैट इसमें एज सच कुछ नया डेवलपमेंट नहीं है. सो बट कंसेप्चुअली आपका यू शुड बी क्लियर, बिकॉज अभी तक उन्होंने जनरली इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे नहीं है क्लैट में. सो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट दिस टू बी टेस्टेड एज वेल, राइट? चलो, सो आई विल, अनुष्का, आर यू डन? ओके, ठीक है. तो नाउ दैट वी आर डन विद दैट, नाउ वी मूव ऑन टू द जुडिशरी. ठीक है, ना जुडिशरी पे क्लैट में एक्चुअली काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं ओवर द लास्ट 2-3 years. सो आई थिंक इट्स नॉट वेरी प्रोबेबल फॉर देम टू टेस्ट दैट एरिया अगेन, बट स्टिल आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर होने चाहिए. ठीक है, तो अब जुडिशरी को हमें कैसे अप्रोच करना है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, आई विल प्राइमरली बी रिलाइंग ऑन दीज स्लाइड्स because they contain a very short kind of a summary of the whole chapter of judiciary, which is given in part 5 of chapter 4 of part 4, I think so. No, chapter 4 of part 5. ठीक है, very sorry. Alright, ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे यूनियन जुडिशरी की. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर्स, राइट? अभी हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, फिर हमने आर्टिकल 368 पढ़ा. अब हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में क्या स्ट्रक्चर्स हैं. सो वी नो देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स. वन इज द एग्जीक्यूटिव, which is also the government. Second is the legislature, which is our law making wing, and third is the judiciary. These are the 3 organs that primarily exist in India, right? इन तीनों के अपने अपने functions हैं जो हमें already पता है. अब तीनों चीजें are at 2 levels, क्योंकि we are a federal country, right? So we have a state level government and then we have a central level government, right? तो जो भी 3 हमने organs देखे, executive, legislature and judiciary, ये तीनों organs दोनों level पे हैं. So whenever we talk about judiciary, we need to know about the union judiciary, which is the Supreme Court, and also high courts, which are in the states. ठीक है, अभी high courts पे उतना ज्यादा कुछ है नहीं. I mean, yes, you need to know about eligibility and all, but jurisdiction high courts का 226 और 227 का ही important है. बाकी jurisdiction जो है वो statutes के अंदर दिया हुआ है. ठीक है, so your laws basically deal with that. Supreme Court के केस में we do have original and appellate jurisdiction, so that becomes very important, right? तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, दे आर गिवन इन आर्टिकल 124 to 147.
right? तो part 5 of chapter 4 contains provisions relating to union judiciary, that is Supreme Court, in articles 124 to 147. ठीक है, अब कोर्ट का क्या काम है ये तो हमको पता ही है. सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसाइडर होता है, द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो अल्टीमेट जो से होगा दैट विल बी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट? अब आर्टिकल 124 हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा. ठीक है, यू प्लीज गो बैक एंड रीड फ्रॉम द बेयर एक्ट एज वेल, बट इस स्लाइड्स में मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आई विल टेल यू अबाउट द बेयर एक्ट एज वेल. ओके, पार्लियामेंट बाय लॉ विल प्रिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्ट. ठीक है, तो पार्लियामेंट ने एक लॉ भी बना रखा है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956. इस लॉ के अंदर डिसाइड होता है कि सुप्रीम कोर्ट में एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कितनी स्ट्रेंथ होगी. ठीक है, दिस लॉ हैज बीन अमेंडेड मल्टीपल टाइम्स. जैसे शुरू में इट वाज ओनली 7 जजेस प्लस सीजीआई, नाउ द स्ट्रेंथ हैज बीन इंक्रीज टू 34 जजेस. ठीक है, तो 2019 में इस लॉ के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी कि ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी सुप्रीम कोर्ट की, दैट वाज सेट टू बी 33 जजेस प्लस CGI, so total 34 judges. Okay, अभी recently last week 3 judges were elevated to the Supreme Court, and currently Supreme Court is running at its maximum strength. ठीक है, तो अभी as of now there are all 34 judges in the Supreme Court. ठीक है, जो generally हमेशा केस नहीं होता है because some judges retire and the number comes down, but as of now, right now there are 34 judges. Okay, अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं. व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ सुप्रीम कोर्ट जज, व्हिच इज गिवन इन आर्टिकल 124 क्लॉज 3. क्वालिफिकेशंस में है दैट यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू शुड बी अ जज फॉर एटलीस्ट 5 years ऑफ द हाई कोर्ट, और 10 years प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, और अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो इन पहली कंडीशन सबके लिए है दैट यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर यू कैन सैटिस्फाई आइदर ऑफ दीज 3. ओके, तो दिस इज व्हाट इज द क्वालिफिकेशन. ठीक है, देन द जज शैल टेक ए नोट बिफोर द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के सामने जज ओथ लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज समटाइम्स दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड दैट हु टेक्स ओथ बिफोर होम, राइट? टेन्योर जो होता है सुप्रीम कोर्ट जजेस का, दैट इज अप टू द एज ऑफ 65 years, और इफ दे रिजाइन बिफोर और इफ दे आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस. ओके, बट द टेन्योर इज अप टू द एज ऑफ 65. ठीक है, अब आते हैं रिमूवल ऑफ जजेस पे. रिमूवल ऑफ जजेस एंड इम्पीचमेंट आर डिफरेंट. ठीक है, commonly we sometimes use these two terms interchangeably, but they are different in the Indian context, right? Indian context में impeachment जो term है वो सिर्फ president के removal के लिए use किया गया है under article 61, alright? But for removal of judges it is only called removal of judges, it is actually not called impeachment. But article 124 clause 4 talks about removal of judges. Okay, अब आपको इसके grounds पता होने चाहिए कि judges को आप किन ground पे remove कर सकते हो. There are only 2 grounds: proved misbehavior or incapacity. ठीक है, तो judge of the Supreme Court may be removed by an order of the president on the ground of either proved misbehavior or incapacity. ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन होगी. इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ भी बनाया है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968. इस लॉ के अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है कि इफ यू हैव टू रिमूव अ जज देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. Okay, as of now no judge has actually been removed from its office. All right, 2 बार ये motion, actually 3 बार this motion has been initiated, but it has not come to fruition because those judges have resigned beforehand. ठीक है, तो actually कोई removal इसके अंदर नहीं हुआ है. You can look at the name of the judges also कि motion for removal was initiated against Justice Ramaswamy in 1993, Justice Soumitra Sen in 2011, and Justice Dinakaran again in 2011. ठीक है, अब आते हैं उनकी सैलरीज और इमोल्यूमेंट्स पे. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर ऑन इट कि पार्लियामेंट विल बाय लॉ डिसाइड देयर सैलरी एंड रेम्यूनरेशन एंड ऑल अदर बेनिफिट्स, बट दे कैन नॉट बी चेंज्ड टू देयर डिसएडवांटेज ड्यूरिंग देयर सर्विस पीरियड. ठीक है, तो आप उसे इंक्रीज जरूर कर सकते हो, बट आप उनके डिसएडवांटेज के लिए उसे लोअर नहीं कर सकते हो. एंड पार्लियामेंट हैज मेड दिस लॉ विच नाउ डील्स विद द aspect of salary and allowance. Okay, so Supreme Court Judges Condition of Service Act 1958 is the law on this point. Okay, now we come to the jurisdiction of the Supreme Court. अब ये सबसे important part है. ठीक है, कि Supreme Court के कितने टाइप के jurisdiction हैं. सबसे पहला है, and this is that the Supreme Court is a court of record. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है we will see in a bit. Okay, but Article 129 बोलता है कि Supreme Court is a court of record and it has a power to punish for its contempt, right? फिर रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है आर्टिकल 32 में, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था.
फिर है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन दिया हुआ है 131 में, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन दिया हुआ है 132, 33 एंड 134 में। ठीक है, ये तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, सिविल मैटर्स में अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड क्रिमिनल मैटर्स में। फिर है नेक्स्ट ज्यूरिसडिक्शन विच इज अपील बाय स्पेशल लीव। सी this also comes under appellate jurisdiction only, but this is a different kind of jurisdiction. Okay, that is given in article 136. Then we have the review jurisdiction जहां पे कोर्ट अपने खुद के डिसीजंस को रिव्यू कर सकता है। और लास्टली एडवाइजरी jurisdiction जो आर्टिकल 143 में दिया हुआ है, जिसको हम रेफरेंस jurisdiction भी बोलते हैं। ओके, अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 129। नाउ व्हाट डज इट मीन? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है ऐसा कोर्ट जिसके रिकॉर्ड्स की एविडेंशियरी वैल्यू है। मतलब आप जो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप उसको कहीं और चैलेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट इज नाउ एक्सेप्टेबल एज एन एविडेंशियरी वैल्यू। ओके, सो द रिकॉर्ड्स ऑफ विच आर एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी अदर कोर्ट, ऐसे कोर्ट्स को बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैज एन इनहेरेंट पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट के लिए हमारे पास आर्टिकल 129 है। उसके अलावा देयर इज अ लॉ आल्सो व्हिच डील्स विद कंटेम्प्ट, नॉट जस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बट अदर कोर्ट्स आल्सो। सो वी हैव द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। ठीक है, अब आते हैं हम jurisdiction पे। आर्टिकल 32 I don't think we need to deal in detail because we just saw this article in yesterday's class, right? So this deals with writ jurisdiction, which is a kind of original jurisdiction only. Okay, this is original because original का मतलब क्या होता है? Original का मतलब होता है where you can go to that court in the first instance. ठीक है, मतलब आप पहली बार अपना मैटर जिस कोर्ट में लेके जा सकते हो उसको बोला जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, और जहां पे आप सिर्फ अपील लेके जा सकते हो उस ज्यूरिसडिक्शन को बोला जाता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, सो 32 के अंदर जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ओरिजिनल है, क्योंकि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो फॉर वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। ओके, अब आते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 131। ठीक है, तो 131 बताता है कि 131 ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, राइट। अब यहाँ पे इंडिविजुअल सिटीजन्स नहीं जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर गवर्नमेंट्स। सो अंडर आर्टिकल 131 सिटीजन्स या प्राइवेट बॉडीज कैन नॉट बी अ पार्टी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स इन कोहोर्ट, all of these can only be parties with respect to the original jurisdiction under article 131। ठीक है, अब अगर आपको आर्टिकल 262 याद हो which deals with interstate water dispute, राइट, तो आर्टिकल 262 क्लॉज 2 बोलता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इट कैन मेक अ लॉ एंड आउस्ट द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का, जो अगर पार्लियामेंट बाय लॉ बनाती है तो उस मैटर में कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई नहीं करेगा। ओके, फॉर द पर्पसेस ऑफ 262 क्लॉज 2। नाउ वी कम टू अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, नाउ दीज आर वेरी इजी, आपको बस इसमें कीवर्ड याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर्स में किस मैटर पे, मतलब किस कीवर्ड के बेसिस पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, अब अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के लिए आपको these 132, 33 एंड 134 दे आर टॉकिंग अबाउट अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट ओनली। ठीक है, कि हाई कोर्ट के डिसीजंस को आप चैलेंज कर सकते हो 132, 133 एंड 134 में, और किसी कोर्ट का नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ केसेस में जैसे 132 और 133 एंड इवन क्रिमिनल मैटर्स में आपको हाई कोर्ट से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कि सर्टिफिकेट ऑफ अपील, कि हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा कि हाँ इस मैटर में वी आर परमिटिंग यू टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन वो जो परमिट है वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर ग्राउंड पर ही मिलेगा। जैसे अंडर आर्टिकल 132 अगर आपको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपील लेके जानी है, तो हाई कोर्ट को ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि दैट केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सिर्फ इस मैटर में आप कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट अपील लेके जा सकते हो इफ इट इज एसक्यूएल रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सिविल मैटर्स की अगर हम बात करें जो आर्टिकल 133 में दिया हुआ है, तो इसमें जब हाईकोर्ट सर्टिफिकेट देगा कि दिस केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, देन ओनली यू कैन टेक इट। ठीक है, सो दिस इज द कीवर्ड फॉर दिस। क्रिमिनल मैटर्स में थोड़ा रिलैक्स्ड होता है, बिकॉज वी नो दैट इन क्रिमिनल मैटर्स द life and liberty of people are involved, so naturally the level of appeal and the ambit of appeal is much wider than the previous two issues। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ में हाई कोर्ट भी सर्टिफिकेट दे सकता है, लॉ भी हो सकते हैं जिसमें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास अपील्स होंगी, एंड थर्डली अगर मान लीजिए
हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया है एंड वाइल डूइंग दैट दे हैव रिवर्स द ट्रायल कोर्ट्स जजमेंट, तो उस केस में भी आप ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट अपील लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इट कैन आइदर बी विद अ सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट और विदाउट अ सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट एज वेल, ओके। अब पार्लियामेंट ने लॉज भी बना रखे हैं जहां पे उन्होंने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल मैटर्स में अपील वाइडन करी हुई है, ओके। सो यू डोंट नीड टू रीड अबाउट दैट, बट यू नीड टू जस्ट नो द आर्टिकल 130, ओके। नाउ वी कम टू अपील बाय स्पेशल लीव, ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट ज्यूरिसडिक्शन है बिकॉज आपने कई सारे जजमेंट्स पढ़े होंगे जो SLP होते हैं, स्पेशल लीव पिटिशन, ओके। सो दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 136। तो आर्टिकल 136 applies to all judgments of the court, कोई भी जजमेंट ऑर्डर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, नॉट जस्ट ऑफ हाई कोर्ट बट एनी अदर कोर्ट, ठीक है। जैसे 132 से 134 में क्या था कि आप अपील सिर्फ हाई कोर्ट के जजमेंट्स के अगेंस्ट लेके जा सकते हो। 136 में स्पेशल लीव के अंदर you can take an appeal against the decision of any court or tribunal, ठीक है। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स को भी आप अपील कर सकते हो। 136 इज काइंड ऑफ अ स्पेशल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अब 136 के अंदर कोर्ट का डिस्क्रेशन है whether they want to admit that appeal or not, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे they are giving you the opportunity to appeal anything, right, any judgment, then ultimately it boils down to the discretion of the court कि अगर कोर्ट को लगेगा कि this appeal has to be admitted, then only it will. So it is a largely discretionary jurisdiction, okay. फिर आते हैं रिव्यू jurisdiction पे, which is given in article 137, ठीक है। रिव्यू jurisdiction तो आपने CPC और CRPC में भी पढ़ा होगा, जहां पे कोर्ट अपने खुद के जजमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं, राइट। अब क्योंकि रिव्यू का मतलब होता है लुकिंग एट योर ओन जजमेंट एंड रिवाइजिंग इट मे बी इफ नीड बी, तो ये काफी लिमिटेड ग्राउंड्स पे अवेलेबल होता है, राइट। क्योंकि अदरवाइज पार्टीज विल कीप ऑन रिव्यूइंग द जुरिस्डिक्शन, रिव्यूइंग द जजमेंट्स व्हिच द कोर्ट हैज पास्ड एंड द जजमेंट्स विल नॉट बी एबल टू अटेन फाइनलिटी, राइट। तो 137 कोर्ट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है इन अकॉर्डेंस विथ whatever law parliament may make or any rules that the supreme court might make under article 145, okay। अब रिव्यू के कुछ रूल्स हैं जो 145 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में रूल्स बनाए थे तो उसमें दे हैव कवर्ड दिस, राइट। तो उसमें दिया हुआ है कि आप जो रिव्यू पिटिशन है यू विल मूव इट बिफोर द सेम बेंच, तो जिस बेंच ने उस जजमेंट को डिसाइड किया था पहले, आप उसी बेंच के पास रिव्यू पिटिशन सबमिट करोगे, ठीक है। बस एक अनलाइकली सिचुएशन क्या होती है, इफ द जज हैज रिटायर्ड, ओके, इफ ही इज नॉट इन द ऑफिस एनीमोर, तो उसकी जगह अनदर जज विल बी सब्स्टिट्यूटेड, बट जहां तक है यू विल अप्रोच द सेम बेंच फॉर दिस रिव्यू, ओके। नाउ द ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू आर क्वाइट लिमिटेड, आप हर ग्राउंड पे रिव्यू क्लेम नहीं कर सकते हो, तो यू कैन जस्ट लुक एट व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू। तो रिव्यू के ग्राउंड्स होते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ एविडेंस, अगर आपने कोई ऐसा एविडेंस डिस्कवर किया है जो आपको पहले नहीं पता था या कोई नया एविडेंस है, तो दैट इज वन ऑफ द ग्राउंड्स। अगर कोई मिस्टेक है विच इज अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, कोई प्राइमा फेसी मिस्टेक अगर कोर्ट ने की है, तो दैट इज ऑल्सो अनदर ग्राउंड एंड एनी अदर सफिशिएंट रीजन, ठीक है। तो अगेन दिस रेमेडी इज ऑल्सो हाईली डिस्क्रेशनरी, ठीक है। इवन अभी जो आपका सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया था सेम सेक्स मैरिज वाला, उसको भी रिव्यू में डाल दिया गया है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू दैट, बट रिव्यू में कोर्ट does not really do much because you have to prove that either you have any new evidence or there is any error apparent on the face of the record, only then the court will consider it, okay। lastly है हमारा advisory jurisdiction, ठीक है। अब advisory as the name in itself suggests कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, राइट। इसको हम रेफरेंस जुरिस्डिक्शन भी बोलते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कोई मैटर ऑफ लॉ दे सकते हैं टू गेट द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट को क्या लगता है, ओके। तो अगर उन्हें लगता है कि कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है जिसपे उन्हें सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन चाहिए, तो दे कैन आस्क द सुप्रीम कोर्ट टू गिव देयर ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है, मैटर्स रीच द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज ऑफ अ लिटिगेशन दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है। यहाँ पे कोई लिटिगेशन नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट को ओपिनियन चाहिए, सो दे आर आस्किंग द सुप्रीम कोर्ट टू गिव द लीगल ओपिनियन, राइट। अब ये जो ओपिनियन होता है दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऊपर इफ दे वांट टू एक्सेप्ट द ओपिनियन और नॉट, लेकिन ये जो भी जजमेंट आएगा इस आर्टिकल 143 के अंदर दिस इज बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 141 बोलता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बाइंडिंग होते हैं, तो इवन दो ये प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा, लेकिन ये बाकी सारे कोर्ट्स पे इंडिया में बाइंडिंग जजमेंट होगा, ओके। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थिंग अंडर सुप्रीम कोर्ट विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस बोलती है कि टू स्टैंड बाय योर डिसीजंस, राइट।
कि जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैव टू बी फॉलोड. सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ डिसाइड किया है तो दैट विल हैव टू बी फॉलोड बाय लोअर कोर्ट्स आल्सो एज वेल एज बाय द सुप्रीम कोर्ट आल्सो. ठीक है, अनलेस अ लार्जर बेंच repeals or overrules that particular position. क्योंकि judgments की finality होनी चाहिए and they have to be followed by other inferior courts as well. Okay, so generally the law declared by a court will have retrospective operation if not declared so specifically. Okay, okay. So this was about jurisdiction. Now we will see a few more things about the judiciary. कि judiciary के context में appointment कैसे होते हैं, independence of judiciary का क्या मतलब है, right? Okay, so see, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पहले तो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे अमेंड नहीं कर सकते हो सो एज टू टेक अवे द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ. ओके, वन ऑफ द इंस्टांसेस in which the court held कि this action is violating independence of judiciary was the 99th constitutional amendment which added NJAC, right? उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए क्या किया था पार्लियामेंट ने? उन्होंने कहा कि हम कॉलेजियम सिस्टम को हटा के वी आर पुटिंग इन अ कमीशन विच इज कॉल्ड NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन. अब ये कमीशन डिसाइड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किसको हम अपॉइंट करेंगे. ठीक है, तो फोर्थ जजेस केस में कोर्ट ने कहा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट कर रहा है ये अमेंडमेंट एंड दिस इज व्हाई इट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट स्ट्रक इट डाउन. ठीक है, तो अब अगर वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ग्राउंड पे अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं तो वी नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और व्हाट फैक्टर्स बेसिकली टेल अस वेदर अ जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट और नॉट, राइट? तो पहला तो होता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए. मतलब एग्जीक्यूटिव का जजेस के अपॉइंटमेंट में कोई रोल नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट? क्योंकि अगर उनके पास डिसीजन मेकिंग होगी तो द चांसेस आर दैट दे विल ऑब्वियसली अपॉइंट पीपल हु आर फेवरेबल टू द गवर्नमेंट. ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट एंड फ्री फ्रॉम द इंटरफियरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, राइट? फिर होता है टेन्योर ऑफ ऑफिस कि जजेस को उनके टेन्योर की गारंटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि उनका अपॉइंटमेंट टेन्योर गवर्नमेंट डिसाइड करे, राइट? उनका टेन्योर फिक्स्ड होना चाहिए एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट? सैलरी और अलाउंसेस आप उनके चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज अदरवाइज दे विल बी फोर्स्ड टू गिव जजमेंट्स इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द गवर्नमेंट हु इज डिसाइडिंग हाउ मच सैलरी टू पे देम, राइट? तो इसलिए सैलरी और अलाउंसेस आप उनके डिसएडवांटेज के लिए कम नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग द टेन्योर, राइट? फिर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ, उनके पास अपना स्टाफ अपॉइंट करने की पावर होनी चाहिए. कोर्ट का एक्सपेंडिचर अगेन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए. सो दिस इज व्हाई इट इज चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट? प्रोहिबिशन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट होनी चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद वो कोर्ट्स में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इफ दे आर एबल टू डू दैट then they can exercise their influence and their tenure as a judge may also be affected because they may think that now that they have to practice later on their judgments may be influenced by that decision. Okay, lastly power to punish for contempt, right? अब आते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसीजर पे. ठीक है, पहले क्या होता था अपॉइंटमेंट प्रोसीजर सिंपली जो अभी भी दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जनरली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. ठीक है, बट नाउ दैट वी नो कि प्रेसिडेंट कभी भी कोई भी डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खुद से नहीं लेते हैं. वी विल लुक एट दोज प्रोविजंस बट दैट इज अ वेरी सेटल्ड पोजिशन ऑफ लॉ that whenever president acts, he never acts as to what he wants. Okay, he will either act on the advice of council of ministers, which is the case in most of the situations. और अगर हम यहाँ पे बात करें जजेस के अपॉइंटमेंट की तो प्रेसिडेंट जो भी अपॉइंटमेंट करते हैं दैट इज अपॉन द एडवाइस विच इज गिवन टू हिम. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया भी हुआ है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस एंड ही विल होल्ड कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ इतना बोलता है कि जब भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किसी जज को तो ही विल कंसल्ट विद एज मेनी नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही मे रिक्वायर. ठीक है, now even though this has been written in the constitution, we have evolved the system of collegium which now gives suggestion to the president. ठीक है, और प्रेसिडेंट उस सजेशन के बेसिस पे अपॉइंटमेंट करते हैं. ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास खुद का कोई डिस्क्रेशन नहीं है टू डिसाइड who he will be appointing, right? Now this position has been clarified by the Supreme Court in 4 cases. इनको फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस, थर्ड जजेस एंड फोर्थ जजेस केस बोला जाता है. ठीक है, आपको इनके एक्चुअल नाम भी पता होने चाहिए. तो सबसे पहला जो केस आया था दैट वाज द जजमेंट ऑफ SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1982. ठीक है, इस केस में कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं है.
कि मान लीजिए अगर जजेस किसी और को सजेस्ट कर रहे हैं अपॉइंट करने के लिए, बट प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट को लग रहा है कि उन्हें किसी और को अपॉइंट करना है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट कैन डू व्हाट दे वांट। ओके, मतलब बेसिकली दे वर सेइंग कि प्राइमेसी विल बी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव का अपर हैंड होगा इन मैटर्स ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ठीक है, नाउ दिस डिडंट सिट वेल एंड द सेकंड जजेस केस केम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। इस केस में कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब होता है कॉन्करेंस, मतलब इफ द प्रेसिडेंट इज सपोज टू कंसल्ट the CJI and Supreme Court judges and High Court judges, it means he will have to actually agree with their opinion. Okay, he will have to concur with them. तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो प्राइमेसी होनी चाहिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में वो जुडिशरी की होनी चाहिए, यानी कि अगर हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिक्योर करना है तो अपॉइंटमेंट्स के मैटर में एग्जीक्यूटिव को हम अपर हैंड नहीं दे सकते हैं, राइट। तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉलेजियम सिस्टम होल्डिंग दैट कंसल्टेशन मींस कंकरेंस। ओके, तो जब कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ था तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कॉलेजियम विल इंक्लूड द सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, दिस वाज चेंज्ड लेटर ऑन इन द थर्ड जजेस केस, और उन्होंने कहा कि कॉलेजियम विल इंक्लूड सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, तो उन्होंने कॉलेजियम को एक्सपैंड कर दिया। तो दिस इज द थर्ड जजेस केस in reference presidential reference 1998, so it upheld the primacy of the opinion of CJI in consultation with the collegium, and it expanded the collegium to a 5-member body, ठीक है, comprising of CJI and 4 of his senior most colleagues, right। अब इन सबके बाद 2014 में 99th अमेंडमेंट आया जिससे उन्होंने चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड दे आल्सो केम अप विद एन NJAC एक्ट, बोथ ऑफ विच वर नाउ चैलेंज्ड इन द फोर्थ जजेस केस। ओके, इस केस में कोर्ट ने दोनों चीजों को स्ट्राइक डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि ना तो ये जो लॉ है NJAC एक्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ही 99th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, उनका रीजन सिंपल था कि आप अगर एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावर दे रहे हो जुडिशियल के अपॉइंटमेंट्स में तो दैट विल वायलेट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी विच इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो दोबारा रिवाइव होगा, एंड दिस अमेंडमेंट इज नाउ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, सो दिस इज नाउ द करंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि अभी जो अपॉइंटमेंट है वो कॉलेजियम करता है, राइट। मतलब सी अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, मतलब उन्हीं के नाम पे अपॉइंटमेंट होता है, बट जो नाम सजेस्ट किए जाते हैं दैट इज डन बाय द कॉलेजियम। ओके, सो कॉलेजियम recommends the names to the central government, it sends it to the central government, and then the central government appoints those judges. Okay, they cannot change who they appoint, they will have to appoint whoever the collegium is suggesting. Okay, they may deliberate with them, they may ask the court to reconsider, but the final opinion will be of the collegium only. Okay, तो दिस इज द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू जजेस। हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट भी ऐसे ही होता है, ठीक है, उसमें हाई कोर्ट जजेस का ओपिनियन भी लिया जाता है, मतलब हाई कोर्ट जजेस ही रेकमेंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को, और फिर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम फाइनल डिसीजन लेता है कि किसको उन्हें अपॉइंट करना है एज हाई कोर्ट जजेस एज वेल। ओके, ट्रांसफर के जो पिटिशंस भी होते हैं दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द कॉलेजियम ओनली। ओके, सो दिस इज विद रेस्पेक्ट टू यूनियन जुडिशियरी। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस you guys can ask. ओके ओके, नाउ आई कम टू हाई कोर्ट जुडिशरी। ठीक है, अब हाई कोर्ट जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट में इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन में आपका 226 का रिट ज्यूरिसडिक्शन है विच इज वेरी सिमिलर टू आर्टिकल 32, बट 226 थोड़ा वाइडर है, और 227 में सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, उसके अलावा आपको बस ये पता होना चाहिए, अपॉइंटमेंट तो हमने देख ही लिया कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ हाई कोर्ट जज। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, रिमूवल भी सेम है, रिमूवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस का सेम तरीके सेम ग्राउंड्स पे होता है, एंड अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशंस आर दीस दैट द पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हेल्ड ऑफिस एज अ जुडिशियल ऑफिसर फॉर 10 years और फॉर एटलीस्ट 10 years बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये 2 क्वालिफिकेशन है, अगर आप इसको फुलफिल करते हो देन यू मे बी अपॉइंटेड। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। ओथ लेते हो आप गवर्नर के सामने, ठीक है, आपके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इफ यू आर अ परमानेंट जज एंड इफ यू रिटायर आफ्टर दैट तो आप उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, उसके अलावा आप कर सकते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजेस पे कंप्लीट बैन होता है कि वंस दे रिटायर दे कैन नॉट प्रैक्टिस बिफोर एनी कोर्ट इन इंडिया।
ठीक है। सैलरीज का भी सेम है कि सैलरी विल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, ओके, उनके डिसएडवांटेज के लिए आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। ट्रांसफर ऑफ जजेस इज ऑन कॉलेजियम रिकमेंडेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो, विच इज देयर फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, कि टेम्पररी जजेस अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्टिंग चीफ जस्टिस हो सकते हैं, कि जब चीफ जस्टिस का ऑफिस या तो वेकेंट है या वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो एक एक्टिंग जस्टिस को, चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनल जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, एक्टिंग जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। तो आप एक बार यहाँ पे इनकी कंडीशंस पढ़ लेना कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, है ना, किस पर्पस के लिए। जैसे एडिशनल जज आप कब अपॉइंट करोगे, व्हेन देयर इज अ टेम्पररी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड जजेस को भी आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में टेम्पररी पीरियड के लिए अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, दे वर एक्चुअली वेरी रेलिवेंट last to last year because a very important judgment had come back then, and this was tested in the CLAT exam also, ठीक है। So I don't think it's important as of now because it has already been tested, but just read the bare act once, okay। अब आते हैं 226 पे, which is your writ jurisdiction, ठीक है। अब writ jurisdiction अगर आपको 32 का याद हो, इट्स वेरी सिमिलर, writs का मतलब सेम है, ठीक है। आप इसको बस एक चीज का डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 32 कैन ओनली बी इन्वोक फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ओके, और फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट 226 कैन बी इशूड फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो और फॉर एनी अदर पर्पस ऑल्सो, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन is wider than the Supreme Court's writ jurisdiction. Okay, so notwithstanding anything in Article 32, every High Court shall have power throughout the territory in relation to which it exercises jurisdiction to issue direction, order, or writ, including these writs, for the enforcement of any fundamental right and for any other purpose. ठीक है, तो आपको 32 और 226 के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। Now we come to 227. 227, see बाकी चीजें उतनी रेलिवेंट नहीं है, okay, that's why I'm skipping them. आपको एक बार उसे रीड जरूर करना है, right? Like we are here doing a revision sort of a thing, so that is why I will not be covering each and every part of the Bare Act. But whenever you revise, make sure you at least give it a glance, right? 227 सिर्फ सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करता है. अगेन यू डोंट हैव टू रीड इट इन डिटेल. 227 का मतलब है कि जितने भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स उस हाई कोर्ट यानी उस स्टेट में फॉल करते हैं, उन सब पे हाई कोर्ट एक सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन अप्लाई करेगा, ठीक है. सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट विल बेसिकली लुक आफ्टर, इट विल बेसिकली यू नो exercise superintendent powers over all those courts and tribunals to see if they are functioning properly or not, right? So that is it. ट्रांसफर ऑफ केसेस आप पढ़ सकते हो कि किस ग्राउंड पे कर सकते हैं, कि अगर हाई कोर्ट को किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से खुद के पास अगर कोई केस ट्रांसफर करना है तो किस मैटर में करेगा. इट विल डू इट इन दिस मैटर, एसक्यूएल एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. फिर है आपका ये सब ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट्स. अब हम आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे, ठीक है. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में सिर्फ 233 एंड 235 इंपॉर्टेंट है. 233 हमें बताता है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस को कौन अपॉइंट करेगा, ठीक है. तो डिस्ट्रिक्ट जजेस को गवर्नर अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. और बस आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के लिए द पर्सन शुड बी एन एडवोकेट ऑफ लीडर फॉर एटलीस्ट 7 years, ठीक है. तो जो आपकी हायर जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, you know na, that there are 2 judiciary exams. One is which you can give right after your graduation and one is which you can give after 7 years of practice, right? तो वो इसी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वो बेसिक कंडीशन दी हुई है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए अ पर्सन नीड्स टू हैव एटलीस्ट 7 year एक्सपीरियंस, ठीक है. दैट इज 233. 235 कुछ नहीं है. 235 बस आर्टिकल नंबर याद रखना होता है कि हाई कोर्ट की एक और पावर है, वो है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है. तो हम बस इसको इतना ही पढ़ते हैं, जस्ट द हेडिंग ऑफ इट. Right. So this sums up our discussion on the judiciary, right? If you have any questions, let me know. Otherwise, we are done with judiciary. Okay. Now we come to the executive, ठीक है. बहुत छोटा डिस्कशन होगा ये, क्योंकि सी एग्जीक्यूटिव में आपको कुछ ही चीजें पढ़नी है और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सपोज टू बी मेमोराइज्ड, राइट. जैसे प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है. वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन है, इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं
इनका टेन्योर क्या है, किसके सामने ओथ लेंगे, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मैटर ऑफ फैक्ट, लाइक देयर इज नॉट मच टू एक्सप्लेन इन देम, इट्स मोस्टली टू बी मेमोराइज्ड, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे वही बता रही हूँ कि कौन कौन से हमें आर्टिकल्स पर्टिकुलरली पता होने चाहिए, राइट। नाउ व्हेनेवर यू रीड दीज पार्ट्स, राइट, whenever you read about executive or parliament or judiciary, always make sure that you're reading it on both sides. You are reading it for the union also साथ में and for the state also at the together. Because when we were talking about judiciary, we talked about Supreme Court and High Court together, right? So we have completed one wing एक साथ में. क्योंकि the reason of doing that is because there's a lot of similarity and overlap, right? So why read similar things again and again? Let's just cover them, in one go. So now we are going to start with the first, actually the second, because judiciary we have already covered. We are going to talk about the executive. ठीक है, तो पहले हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, फिर हम साथ में स्टेट एग्जीक्यूटिव की भी बात करेंगे, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन फॉल करता है? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और आपकी गवर्नमेंट, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? इट लाइज विद द प्रेसिडेंट। समटाइम्स दिस वेरी बेसिक क्वेश्चन इज आस्क्ड that who has executive power. Okay, so executive power vests with the president. अब प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि who is in that electoral college. इलेक्टोरल कॉलेज में होंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। मैनर ऑफ इलेक्शन में आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। मैनर ऑफ इलेक्शन में आपको बस ये देखना है कि इट इज डन बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। बाकी चीजों को यू कैन स्किप। अब आते हैं टर्म कि कितने टाइम के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, ठीक है। 5 years, वेरी इजी। अब ये अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ही कैन बी इम्पीच्ड अंडर आर्टिकल 61, ठीक है। आप उनको ऑफिस से निकाल सकते हो 61 के अंदर, या फिर ही कैन रिजाइन ऑन हिज ओन, ठीक है। तो यही 3 कंडीशन है, या तो एक्सपायरी ऑफ टेन्योर or resignation or removal. These are the 3 situations in which the term of the president may end, ठीक है। Eligibility for re-election है, yes, he can be re-elected as well. कोई upper limit नहीं रखी हुई है उन्होंने। Qualification for election as president is important, ठीक है, कि president को क्या क्या situations को comply करना चाहिए for him to be even eligible for contesting. One is that the person should be citizen of India, ठीक है। Second is age limit कि 35 years and above. थर्ड इज यू शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा, मतलब लोकसभा में जो क्वालिफिकेशन है फॉर अ पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, उससे भी प्रेसिडेंट को कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ही नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ही जस्ट नीड टू बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस में कुछ खाता नहीं है, दिस इज वेरी इजी कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करोगे व्हेन यू आर द प्रेसिडेंट, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओथ इज ऑल्सो वेरी इजी दैट द प्रेसिडेंट विल टेक द ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी अदर सीनियर मोस्ट जज इफ सीजीआई इज नॉट अवेलेबल, राइट। फिर है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसका आर्टिकल नंबर भी पता होना चाहिए, दैट इट इज गिवन इन आर्टिकल 61, ठीक है। क्या बोलता है ये कि व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड, किस ग्राउंड पे करोगे आप? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यही इकलौता ग्राउंड है जिसके बेसिस पे आप प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हो। अब इनको रिमूव करने का जो चार्ज है दैट कैन बी प्रिफर्ड इन आइदर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो पहले एक हाउस में चार्ज इंट्रोड्यूस होगा। आपको चार्ज इंट्रोड्यूस करने के पहले 14 डेज पहले एक राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा कि एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस आर इन फेवर ऑफ मूविंग सच अ रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इट्स अ वेरी प्रोसीजरल थिंग, बट सी प्रेसिडेंट को रिमूव करना इज नॉट एन ईजी थिंग, राइट। एंड ऑल्सो बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, क्योंकि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है किसको अपॉइंट करना है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इट इज डन बाय इलेक्शन, और जिस भी गवर्नमेंट की मेजोरिटी होगी उन्हीं का मेंबर अपॉइंट होगा एज द प्रेसिडेंट, राइट। इट्स सिंपल मैथमेटिकल इलेक्शन थिंग। तो अगर आपको ऐसे पर्सन को रिमूव करना है जो खुद गवर्नमेंट का ही पार्ट है, तो यू नीड टू हैव मेजोरिटी इन दैट हाउस फॉर यू टू एक्चुअली पास दैट रेजोल्यूशन। तो इसीलिए काफी सारे सेफगार्ड दिए हुए हैं कि आप इजीली यू कांट मूव सच काइंड ऑफ रेजोल्यूशन। आपको पहले एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स को नोटिस देना पड़ेगा 14 डेज पहले दैट दे इंटेंड टू मूव सच अ रेजोल्यूशन, और उसके बाद हम उसको 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप से अप्रूव करेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट स्पेशल मेजोरिटी, दिस इज अ डिफरेंट मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? मेजोरिटी ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ओके। सो इट इज मोर स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट देन इवन स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। एक हाउस में चार्ज पास होने के बाद इन्वेस्टिगेशन करेगा दूसरा हाउस, और अगर दूसरे हाउस को भी लगता है कि चार्जेस ठीक हैं तो दे
that they will also pass a resolution and that will finally remove the president. ठीक है. टाइम ऑफ फिलिंग वैकेंसी भी है कि अगर पहले तो प्रेसिडेंट का टर्म एक्सपायर होने के पहले आप दूसरा इलेक्ट कर लो. ठीक है. अगर मान लीजिए किसी और सिचुएशन की वजह से उनका ऑफिस एब्रप्टली एंड हो जाता है तो फिर इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 months. ठीक है. फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट पे कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ही विल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है. जैसे हमारे हाउसेस के हेड्स होते हैं. फॉर लोकसभा वी हैव द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर. फॉर राज्यसभा वी हैव द चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन, राइट, डेप्यूटी चेयरमैन. तो राज्यसभा में जो चेयरमैन होता है वो इलेक्ट नहीं होते हैं. जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के, ही हिमसेल्फ विल बी द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ठीक है. तो वो अपने ऑफिस की वजह से राज्यसभा के चेयरमैन की तरह भी एक्ट करते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है. अब आप ये सब पढ़ लेना कि जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होते हैं या उनका ऑफिस एम्प्टी है तो वाइस प्रेसिडेंट उनके काम करेंगे, है ना. इनका जो इलेक्शन है वो सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स करते हैं. ठीक है. इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई इंक्लूजन नहीं होता है. फिर हम आते हैं उनकी एलिजिबिलिटी पे. ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी ओवर द एज ऑफ 35 years एंड ही शुड बी एलिजिबल टू बी क्वालिफाइड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा. ठीक है. टर्म भी सेम है, 5 years का होता है. he may resign to the president, he may be removed from the resolution of राज्यसभा. ठीक है. तो इनका इम्पीचमेंट नहीं होता है. इनका जो रिमूवल प्रोसेस है वो राज्यसभा करती है. ठीक है. राज्यसभा स्टार्ट करेगी और लोकसभा को बस उससे अग्री करना है. ओके. फिर है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, दैट इज फाइन. ओथ लेते हैं, ही टेक्स एन ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट. ऑल राइट. ओके. नाउ वी कम टू 71 विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. आर्टिकल 71 बोलता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो उसको डिसाइड करने की सोल जो जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है एंड सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन जजमेंट विल बी फाइनल. ठीक है. तो 71 हमको याद रखना है. इट इज अबाउट डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. ओके. अब हम आते हैं 72 पे. नाउ व्हेनेवर यू रीड 72 यू हैव टू रीड 72 विथ 161. ठीक है. क्योंकि 72 बात करता है मर्सी जुरिस्डिक्शन की, कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास अंडर 161 पावर है कि वो पार्डन कर सकते हैं किसी को. ठीक है. और भी कई सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे आपका सेंटेंस सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट करते हैं, किसी और सेंटेंस में कम्यूट कर सकते हैं. तो ये सारी जो पावर है ये प्रेसिडेंट के पास एग्जिस्ट करती है. ओके. नाउ अगेन प्रेसिडेंट टेक्स नो डिसीजन ऑन हिज ओन. ठीक है. ये मैं आपको कई बारी बता चुकी हूँ. तो इवन जो ये मर्सी जुरिस्डिक्शन होता है ये प्रेसिडेंट खुद डिसाइड नहीं करते हैं कि उनको किसको पार्डन देनी है किसको नहीं देनी. ठीक है. दिस इज डिसाइडेड बाय द होम मिनिस्ट्री. ठीक है. होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है एंड देन दे टेल द प्रेसिडेंट एंड देन द प्रेसिडेंट कम्युनिकेट्स. ओके. तो प्रेसिडेंट इज बेसिकली जस्ट लाइक अ नॉमिनल हेड. ही डज नॉट रियली हैव एनी रियल पावर. ठीक है. वो बस फेस है कि ही इज द फेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट ही डज नॉट रियली होल्ड एनी रियल पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. दैट इज 72 एंड 161. 73 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं. 73 हमें ये बताता है कि जिन मैटर्स पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है उन्हीं मैटर्स पे यूनियन अपनी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज कर सकती है. ओके. अब आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे. ठीक है. ये काफी इंपॉर्टेंट है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइस एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. जो मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि प्रेसिडेंट खुद से एक्ट नहीं करते हैं, खुद से एक्ट नहीं करते हैं. आई एम नॉट सेइंग दिस ऑन माय ओन, राइट. Article 74 says that कि there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president. ठीक है. Who shall in exercise of his functions act in accordance with such advice. ठीक है. तो उन्होंने mandatorily बोला है, shall बोला है कि president shall act in accordance with such advice. तो उनको जो भी advice council of ministers देंगे उनको उस advice के हिसाब से ही act करना है in the exercise of his functions. ठीक है. ओके. वो एक बार वापस भेज सकते हैं, उसके बाद अगर जो भी एडवाइस आ रही है ही विल देन हैव टू अबाइड बाय इट. ठीक है. रिकंसिडरेशन के बाद भी अगर सेम एडवाइस आती है तो देन ही विल हैव टू डू इट. फिर आते हैं अदर प्रोविजंस पे. अदर प्रोविजंस में कुछ पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड बाकी मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. टोटल कितना परसेंटेज होगा, जो भी जितने भी मेंबर्स हैं उसका सिर्फ 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप कैन बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है. तो एक अपर उन्होंने लिमिट रख रखी है कि सिर्फ 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस कैन बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके. फिर है मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. ठीक है.
आते हैं अटॉर्नी जनरल पे। अटॉर्नी जनरल इज बेसिकली द लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, वो गवर्नमेंट के लॉयर है बेसिकली, है ना। तो उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड इनकी जो क्वालिफिकेशन है, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। अब इनकी क्या ड्यूटीज है? उनकी ड्यूटी है गवर्नमेंट को एडवाइस करना लीगल मैटर्स में, राइट। एंड ही बेसिकली होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उनका कोई टेन्योर नहीं दिया हुआ है, जब तक प्रेसिडेंट को लगता है कि उनको ऑफिस होल्ड करना है तब तक वो करेंगे, अदरवाइज ही कैन बी इजीली रिप्लेस्ड बाय समबडी एल्स। कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो यू कैन लीव दिस पार्ट, ठीक है। तो एज यू कैन सी एग्जीक्यूटिव में एज सच कुछ नहीं है, मतलब अलग से देयर इज नो जजमेंट विच कम्स ऑन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अगर कोई और केस है उसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल 75(3) इन्वोक हो रहा है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, बट अलग से एग्जीक्यूटिव के ऊपर एज सच कोई बहुत सारे जजमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, ओके। नाउ आई विल क्विकली ऑल्सो कवर स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव तो और भी थोड़ा ऐसे बोरिंग सा है, बिकॉज दैट इज इन मच इन इट एज वेल। अब यहाँ पे सिर्फ गवर्नर होता है, यहाँ पे कोई वाइस गवर्नर नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता था, यहाँ पे सिर्फ गवर्नर है। एंड गवर्नर इज अ नॉमिनेटेड पर्सन, ही इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, ठीक है। उनको बस अपॉइंट किया जाता है, उनका इलेक्शन नहीं होता है। प्रेसिडेंट को जिसको अपॉइंट करना है वो उसको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ स्टेट हो सकते हैं, दो स्टेट्स के लिए कॉमन गवर्नर भी हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेस्ट इन द गवर्नर। गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। टर्म होता है उनका वैसे तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट 5 years, ठीक है। वो प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनको रेजिग्नेशन देना है तो ही कैन सबमिट इट टू द प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, शुड बी कंप्लीटेड 35 years, ठीक है, और कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। फिर है ओथ और अफर्मेशन। ओथ लेते हैं बिफोर द सीजीआई, नॉट सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। फिर है पावर ऑफ ग्रांटिंग पार्डन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 72, 161 साथ में। 162 सेम है 73 जैसा, जो बताता है कि जिस मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, उसी मैटर पे गवर्नर भी, नॉट गवर्नर बट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट विल बी एक्सरसाइज, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाले प्रोविजंस भी सेम है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है कि प्रेसिडेंट को हमेशा ही विल हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर के ऊपर भी जनरल ऑब्लिगेशन होती है, बट कुछ केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइंड जहां पे गवर्नर अपना खुद का डिस्क्रेशन एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया आर्टिकल 356 के अंदर, तो गवर्नर खुद से बताएगा ना कि ऐसा हुआ है, दे विल नॉट टेक द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। सेकंड सिचुएशन इज जहां पे फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नर को लग रहा है दैट हमें ये लॉ प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रिजर्व करना है, ठीक है, तो उस केस में भी गवर्नर इंडिपेंडेंट डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करता है, ठीक है। तो गवर्नर के पास एक्चुअली प्रेसिडेंट से थोड़ा ज्यादा डिस्क्रेशन होता है, बिकॉज ही इज नॉट ऑलवेज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। फिर है अदर प्रोविजंस में वही टोटल नंबर 15% है ना, बाकी आपके लिए उतना रेलिवेंट नहीं है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, अगेन सिमिलर टू 75(3). अब यहाँ पे है एडवोकेट जनरल, जैसे यूनियन के लेवल पे होता है आपका अटॉर्नी जनरल, यहाँ पे है आपके एडवोकेट जनरल जनरल जिनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, ओके। बाकी चीजें सेम। सो दिस इज अबाउट यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि अपॉइंटमेंट की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या टेन्योर है, रिमूव कैसे हो सकते हैं, ठीक है। 72, 161, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या पावर है, ओके, कितना डिस्क्रेशन है, आपको बस इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ओके। सो दिस इज ऑल्सो डन। आई गिव यू 2 minutes, take a break, because now the only topic I'm going to cover today is with respect to union territories, ठीक है। So take a 2 minute break and then we will start with this. It will not take much time, hardly 5 minutes. Okay. Okay. All right. So now we come to the last topic for the day, which is union territories, right? So see,
अभी तक हम जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट अप्लाइज टू द स्टेट, राइट। स्टेट में क्या होता है, देयर इज अ लेजिस्लेचर, देयर इज एन एग्जीक्यूटिव एंड वी हैव द जुडिशरी, राइट। यूनियन टेरिटरीज में ऐसा नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनियन टेरिटरीज में सेम स्ट्रक्चर हो। यूनियन टेरिटरीज को हम सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज भी बोलते हैं, मतलब वहां पे बेसिकली सेंटर का कंट्रोल होता है ना। लेकिन द एक्सेप्शन इज दिल्ली, ठीक है। एनसीटी दिल्ली जो है उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस उन्होंने बनाए हुए हैं अंडर आर्टिकल 239 AA, विच डिफाइन कि दिल्ली में लेजिस्लेचर भी होगी, इलेक्टेड बॉडी, और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी होगी, ठीक है, विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हाउ जनरली यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है। तो इसीलिए हमको दिल्ली की जो स्पेशल पोजिशन है उसके लिए we need to know a few things under article 239 AA. Okay, now usually I would not say it's very important, but 239 AA is important because इस पे काफी जजमेंट्स होते हैं। अभी रिसेंटली भी एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया था। द रीजन व्हाई देयर इज सो मच लिटिगेशन ऑन दिस इज बिकॉज वहां पे एलजी भी होते हैं, विच इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और सीएम भी होते हैं जो हमारे अभी अरविंद केजरीवाल है, राइट। अब उनकी जो टसल है आपस में पावर की, दैट बिकम्स वेरी कंटेस्टेड, क्योंकि जनरली क्या होता है स्टेट्स के केस में गवर्नर के पास ज्यादा पावर होती ही नहीं है। बट हम जब एलजी की बात करते हैं, स्पेशली दिल्ली के केस में, तो एलजी के पास थोड़ा ज्यादा डिस्क्रेशन है, बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस बाय द सेंटर एज वेल, ओके, बिकॉज एलजी रिप्रेजेंट्स द सेंटर, है ना, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही रिप्रेजेंट्स द सेंटर, तो दैट इज वाई देयर इज अ लॉट ऑफ पावर स्ट्रगल इन दिल्ली, राइट। 239 बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, वो बोलते हैं कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं दे विल बी एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू लॉ विच विल बी मेड बाय द पार्लियामेंट, और यहाँ पे जो बंदा अपॉइंट होगा ही विल बी दी एडमिनिस्ट्रेटर। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे दिल्ली के केस में एडमिनिस्ट्रेटर को नाम दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओके। 239A नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, द ओनली इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज 239AA, ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था बाय द 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। पहले तो उन्होंने बताया कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसका नाम होगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, तो एनसीटी ऑफ दिल्ली विल बी द नेम। फिर उन्होंने कहा कि एनसीटी ऑफ दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद दे हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसपे डायरेक्ट इलेक्शन से लोग आते हैं, ठीक है, तो जैसा स्टेट्स में होता है वैसा ही दिल्ली में होता है। अब इसमें जो भी रिजर्वेशन सीट्स फिक्स होंगी वो पार्लियामेंट कैन डू दैट बाय वे ऑफ मेकिंग अ लॉ, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं 3 पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे सारी प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। अब देखो, जैसे स्टेट्स हैव पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, राइट, स्टेट लिस्ट पे वो कंप्लीटली लॉज बना सकते हैं, लेकिन ऑल्सो मेक लॉज ऑन कॉन्करेंट लिस्ट। बट दिल्ली के केस में दे कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट एज वेल एज ऑन कॉन्करेंट लिस्ट, बट उन्होंने 3 एंट्रीज को एग्जेम्प्ट किया। उन्होंने कहा आप एंट्री 1, 2 एंड 18 को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज पे लॉ बना सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट आर दीज एंट्रीज? सो एंट्री 1 रिलेट्स टू पब्लिक ऑर्डर, तो पब्लिक ऑर्डर का जो भी मैटर है वो दिल्ली के ज्यूरिसडिक्शन में फॉल नहीं करता है, दैट विल फॉल विद द सेंटर। पुलिस, ठीक है, पुलिस भी दिल्ली के अंदर नहीं आती है कंट्रोल में। एंड 1, 2 एंड 18 इज लैंड, ठीक है। तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये 3 इश्यूज हैं जिसपे दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ नहीं बना सकती है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जैसे जो जजमेंट आया था दिस वाज अबाउट सर्विसेज, तो उन्होंने कहा कि सर्विसेज जो है इट फॉल्स इन स्टेट लिस्ट एंड इट इज नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर 1, 2 और 18, ओके, इट डज नॉट फॉल इन दीज। तो कोर्ट का कहना था कि सर्विसेज जो हैं दे विल बी रेगुलेटेड बाय दिल्लीज लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, एंड नॉट बाय द सेंटर, क्योंकि गवर्नर ने वहां पे कुछ एलजी ने नोटिफिकेशन दिया था जहां पे उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप सर्विसेज पे रेगुलेशन नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो again there was a tussle, so Supreme Court ruled that, but then later on now the parliament is coming up with a amendment to the law to include services also from the list of things which are excluded from the jurisdiction of Delhi, ठीक है। तो उस पर काफी सारा डेवलपमेंट हुआ है which you should read upon, ओके। तो इतना ही याद रखना है, बाकी सब चीजें सेम है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। अब यहाँ पे बस स्ट्रेंथ डिफरेंट है, जैसे स्टेट और यूनियन के केस में क्या होता है 15% होती है, यहाँ पे इट इज 10%, ठीक है, बाकी सब चीजें सेम है। यहाँ पे हमें पता चलता है 239 AA क्लॉज 4 में कि वैसे तो एलजी विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, लेकिन ही ऑल्सो हैज डिस्क्रेशन, ठीक है। स्पेशली एलजी के पास ये पावर होगी कि अगर कोई अर्जेंट मैटर है तो वो खुद से उस चीज को
डिसाइड कर सकते हैं. He will send the matter to the president, but meanwhile he will be the one who will take the decision. ठीक है? Provided that in case of difference of opinion between LG and his ministers on any matter, LG shall refer it to the president for decision. ठीक है? तो president जैसा decide करेंगे वैसे LG act करेंगे, लेकिन pending such decision, it shall be competent for the LG if he thinks that the matter is urgent to take immediate action as he deems fit. ठीक है? So this is the whole reason why there is so much power struggle in Delhi, because LG does have a lot of discretionary powers, right? So that is what you need to know about Delhi. और आप एक बार उस केस से उसे सब्स्टिट्यूट करना, that the case that we already discussed in our classes, the NCT of Delhi judgment, okay, of 2023. All right, so this brings me to the end of today's class. Not tomorrow, I will be taking your class on coming week. We'll have one session for constitutional law in which we will deal with miscellaneous matters. Okay, so I will be dealing with parliament and state legislature and the three lists that we have. So basically distribution of legislative power is what we will talk about. Then we will talk about miscellaneous things like emergency के क्या provisions हैं, ठीक है? और भी अगर कुछ miscellaneous बचा है तो we will cover. Okay, but not much is left now. Most of the parts of the constitution are already done. Okay, so one last class will be done on this in the coming week, right? Let me know if you have any questions. Okay, you're welcome, Archana. All right, chalo. So I will end the session now, guys. I'll see you guys in the coming week and we will finish this off, right? So thank you, everyone, and take care and good luck for your exams. Okay, hi, everyone. So we are going to just start with today's session. So this is the last class for constitutional law revision. So today I will just wind up whatever topics are left to cover. If you have any questions, do let me know, because this will be our last discussion on constitutional law for now, right? So I believe in the last class, we did finish up to executive, right? So we have covered the judiciary, we have covered the executive part as well. Now we are left with the third wing, which is the legislature, right? So now in legislature, it's huge, right? Like there are too many provisions and it can get confusing, right? So today I will tell you how to navigate that bit, how to focus on only the important parts, and what are the things which you should know in like an overview manner, and which articles have to be particularly memorized. Okay? So again, we will do the same thing. We will put the provisions of the union parliament as well as state legislature side by side to compare and to read. Okay. First things first, more important part is with respect to parliament. ठीक है? इसमें से भी जो सबसे important चीज होगी वो होगा थोड़ा सा legislative procedure, यानी कि difference between money bill and ordinary bill. Okay, so article 110 will be important. After that, what will be important will be parliamentary privileges. Okay, so provisions relating to that are important. There's only one provision in parliament and state legislature. Then we will have anti-defection. Okay, so what is anti-defection law? Although it is not covered in this, it is covered in the 10th schedule, but we need to know a little bit about that, right? And then the last thing we need to know about legislature is distribution of legislative power. Okay, how the legislative power will be divided between the state and the union. ठीक है? इसके अलावा जो भी चीजें हैं जो भी हम देखेंगे, they are not too relevant from an exam perspective. ठीक है? जैसे मतलब basic चीजें जो आ जाती हैं कि what is the strength in Lok Sabha, what is the maximum strength in Rajya Sabha, right? What is the tenure, what is the qualification for the speaker? Okay, so these are very basic questions which I don't think require too much elaboration. So this is the part which you can easily just cover from any source, right? Okay, so now let's start with legislature. ठीक है? सबसे पहले general part है. Now this general part is where it is you need to just have an overview understanding. ठीक है? कि पहली बात तो parliament में क्या क्या आता है? Parliament में आती हैं तीन चीजें, president and the two houses being Lok Sabha and Rajya Sabha. ठीक है? Rajya Sabha is called Council of States and Lok Sabha is called the House of People. Okay, why is it called this? Because Lok Sabha is the direct representatives from the public. Okay, so this is why it is House of the People. And in Rajya Sabha, the representation is of the states. Okay, so in the states, whoever we elect, that is when they, decide the representatives in Rajya Sabha. So Rajya Sabha is called the Council of States. ठीक है? अब आप इसका composition पढ़ लो
कि अब ये मेंबर्स की बात है कि राज्यसभा में देयर बी 12 मेंबर्स विच विल बी नॉमिनेटेड एंड 238 दैट विल बी representing the states and UT. ठीक है, तो इसकी टोटल स्ट्रेंथ हुई 250, राइट? सो यू कैन जस्ट रीड दिस बिट, दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा ऐसे आपको याद रखना है कि कितनी सीट्स हैं. 530 डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 20 विल बी फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज. ओके, इसके अलावा जो बाकी सेंसस वगैरह की बातें हैं, डिलिमिटेशन की, दैट इज समथिंग विच यू डोंट रियली नीड टू नो. ओके, कि पॉपुलेशन का क्या मतलब है, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें सिर्फ स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है. Then readjustment after each census also not relevant from exam perspective. Duration आप याद रख सकते हो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है. ठीक है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. बस इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years. ठीक है, तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है. लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व होता है अनलेस एक्सटेंडेड. ठीक है, जैसे इमरजेंसी के केस में जब आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी होती है उसमें टेन्योर ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड. ओके, तो वो यही बात कर रहे हैं कि जनरली तो टर्म 5 years होगा अनलेस इट इज एक्सटेंडेड अंडर एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जैसे उन्होंने बता दिया, प्रोवाइडेड दैट द सेट पीरियड में व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year एट अ टाइम. ठीक है, 1 year एट अ टाइम एक्सीड हो सकता है और इमरजेंसी खत्म होने के बाद 6 months के अंदर आप उसे डिसॉल्व कर दोगे. ठीक है, अब आप क्वालिफिकेशंस पढ़ सकते हो कि मेंबरशिप के लिए क्या क्वालिफिकेशन है. बहुत सिंपल है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एंड यू हैव टू सब्सक्राइब बिफोर इलेक्शन कमीशन दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया. फिर सिर्फ एज रिक्वायरमेंट है कि राज्यसभा के केस में यू शुड नॉट बी लेस देन 30 years, लोकसभा के केस में यू शुड नॉट बी लेस देन 25 years. ओके, और जो थर्ड क्वालिफिकेशन है वो उन्होंने पार्लियामेंट पे छोड़ दी है कि इफ पार्लियामेंट मेक्स अ लॉ then any other qualification that law prescribes. Okay, so we have the representation of People's Act in India जिसके अंदर और भी additional qualifications दे सकते हैं. Okay, so this is also quite easy. अब ऑल ऑफ दिस इज अगेन वेरी बेसिक कि पार्लियामेंट के सेशंस होंगे, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है. ठीक है, कोई मिनिमम उन्होंने नहीं बताया कि हाउ मेनी सेशंस यू हैव टू डू इन अ ईयर, बट बिटवीन 2 सेशंस देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months. तो बेसिकली एक साल में 2 मिनिमम सेशन तो होंगे ही. ओके, अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो हाउस को प्रोरोग कर सकते हैं, यानी कि दे कैन कमेंस द सेशंस और ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा. ठीक है, फिर प्रेसिडेंट का राइट है हाउसेस को एड्रेस करना. स्पेशल एड्रेस भी वो कर सकते हैं जो कि ईयर के स्टार्ट में होता है एंड व्हेन लोकसभा इज कन्वीन्ड आफ्टर 5 years व्हेन इट डिसॉल्व्स. सो आफ्टर दैट व्हेन इट कन्वीन्स देन आल्सो प्रेसिडेंट एक स्पेशल एड्रेस करते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें एज आई सेड आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. ठीक है, अब आते हैं ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट. दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल्सो वेरी बेसिक विच आई थिंक इज क्वाइट वेल नोन नाउ कि लोकसभा में होंगे आपके स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, उन दोनों को लोकसभा के मेंबर से इलेक्ट करेंगे. और राज्यसभा में होंगे चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन. ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन इज इलेक्टेड विद इन राज्यसभा बट चेयरमैन इज द वाइस प्रेसिडेंट. हमने पढ़ा था ना कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. तो चेयरमैन इलेक्ट नहीं होते हैं राज्यसभा के बिकॉज जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे कंट्री के ही विल बी एक्टिंग एज द चेयरमैन फॉर राज्यसभा. ओके, अब ये वाली चीजें आप पढ़ सकते हो कि अगर आपको किसी को रिमूव करना है, ठीक है, तो क्या प्रोसीजर है, अगर रेजिग्नेशन सबमिट करना है तो कौन किसको सबमिट करेगा. ओके, सो दिस ऑल ऑफ दिस इज लाइक वेरी लो इन प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ एग्जाम. ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप एक बार इसको रीडिंग दे दोगे. ठीक है, देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट इन इट टू लाइक एक्सप्लेन. सेम गोज फॉर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, इनका भी सेम है. पहले अपॉइंटमेंट दिया हुआ है कि कैसे इलेक्ट होंगे, फिर दिया हुआ है उनका वेकेशन एंड रेजिग्नेशन. ठीक है, फिर उन्होंने ये भी बताया कि जैसे अगर स्पीकर नहीं है अभी ऑफिस में तो उनके फंक्शंस डेप्यूटी स्पीकर डिस्चार्ज करेगा. ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो फिर हाउस के प्रोसीजर के हिसाब से डिसाइड होगा कि अब कौन सा पर्सन रिप्रेजेंट करेगा. ओके, सो देयर आर contingencies which are provided for in the constitution itself. Okay, then we have speaker not to preside. हाँ ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि जब आपके रिमूवल की बात हो रही है तो आप ऑब्वियसली प्रिसाइड नहीं करोगे. सो दैट प्रिंसिपल इज इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 96. ठीक है, 97 98 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सैलरी और सेक्रेटेरिएट की बात कर रहे हैं. ठीक है, see the reason why I'm skimming through this is because this is how it has to be read. You don't have to sit and read the entire bit from these areas. ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में भी है, ओथ और अफर्मेशन पढ़ सकते हो आप कि किसके सामने ओथ लेते हैं, तो इट इज द प्रेसिडेंट. ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं कि अगर कोरम नहीं है तो फिर आप यू विल हैव टू एडजर्न द मीटिंग.
ठीक है। कोरम उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है 1/10 कि 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स इज द मिनिमम कोरम। ओके, नाउ वी कम टू एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट है। 101 विच टॉक्स अबाउट वेकेशन ऑफ सीट्स एंड 102 विच टॉक्स अबाउट डिसक्वालिफिकेशन। ठीक है, अब दोनों के डिफरेंट मतलब होते हैं। 101 हैज टू बी मेमोराइज्ड। ओके, 101 एंड 102। 101 बोलता है वेकेशन ऑफ सीट्स कि किस किस केस में आपकी सीट वेकेंट हो जाएगी फ्रॉम द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने बोला कि नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, कि अगर आप दोनों हाउस के मेंबर्स हो तो ऐसा नहीं हो सकता है, आपको किसी एक हाउस की सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, आप एक टाइम पे दो हाउसेस के मेंबर नहीं हो सकते हो। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं कि सिमिलरली आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि यू आर अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो उस केस में भी आपको चूज करना पड़ेगा। फिर तो मतलब इन दोनों केसेस में आपकी एक सीट तो वेकेंट होगी ही। ओके, इफ अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, 102 के अंदर अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो तो भी आपकी सीट वेकेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप खुद से रिजाइन कर देते हो तो भी आपकी सीट वेकेंट हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे क्वालिफायर है कि अगर आप रेजिग्नेशन देते हो और अगर स्पीकर को या चेयरमैन को लगता है कि आपका रेजिग्नेशन जेन्युइन नहीं है तो दे में नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये उनका डिस्क्रेशन होता है। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है जिसमें आपकी सीट वेकेंट हो सकती है कि अगर आप 60 डेज के लिए विदाउट परमिशन हाउस से एब्सेंट हो। ठीक है, आप 60 डेज बिना बताए आए ही नहीं, तो ऐसे केस में भी आपकी सीट वेकेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये उन्होंने कुछ आपको सिचुएशंस बताई हैं कि अगर ये सिचुएशन होगी तो योर सीट इन द हाउस विल गेट वेकेंट। राइट, अब 102 पर्टिकुलरली डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन का भी सेम कॉन्सिक्वेंस है, इट विल वेकेट योर सीट, बट आपको डिस्क्वालिफिकेशन की ग्राउंड्स पता होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या ग्राउंड्स है? 1021 में उन्होंने कुछ ग्राउंड्स बताए हैं कि अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो। ठीक है, यू कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाइल यू आर अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अगर आप अनसाउंड माइंड के और कोर्ट ने आपको डिक्लेयर कर दिया। इफ यू आर एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो या फिर आपने कहीं की सिटीजनशिप वॉलेंटरली अक्वायर कर ली। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, और इफ यू आर डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तो अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर कोई प्रोविजंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर कन्विक्टेड फॉर लेट्स से 2 years और मोर, जो राहुल गांधी के केस में हुआ था डेफेमेशन का वेरी रिसेंटली, राइट, तो फिर उस केस में ऑल्सो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, सो दैट इज गिवन अंडर द रोपा। ठीक है, तो ये तो कुछ ग्राउंड्स हुए। अब 1022 का जो ग्राउंड है दैट इज द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन। ठीक है, 1022 में बोलते हैं कि अगर आप 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई हो गए तो देन ऑल्सो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है इन वेरी सिंपल टर्म्स कि आप जिस पार्टी से इलेक्ट हुए थे अगर आपने वो छोड़ के कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है तो उसको बोला जाता है डिफेक्शन। ठीक है, तो 10th शेड्यूल टॉक्स अबाउट एंटी डिफेक्शन, मतलब इट डिस्करेजेस दिस प्रैक्टिस। इट सेज कि अगर आप दूसरी पार्टी में माइग्रेट होते हो तो फिर आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, उसके कुछ एक्सेप्शन है ऑफ कोर्स विच आर प्रोवाइडेड कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पार्टी मर्ज हो गई दूसरी पार्टी में, ठीक है, तो दैट विल नॉट इम्पैक्ट। या फिर अगर आपकी पार्टी के मेजोरिटी ऑफ द लोग हैव फॉर्म्ड अ डिफरेंट पार्टी, ठीक है, तो उसमें कुछ परसेंटेज फिक्स्ड है, तो in that case also it will not be considered to be defection. Okay, so that is 101 and 102. 103 अब आपको बताता है कि डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन कौन लेगा, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि if any question arises as to whether a member of House of Parliament has become subject to any disqualification mentioned in 1021, ठीक है, यानी कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट या फिर अनसाउंड माइंड, है ना, ये जो थी 1021 वाली, तो उसमें डिसीजन होगा प्रेसिडेंट का। ठीक है, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। बट अगर हम 1022 की बात करें यानी कि एंटी डिफेक्शन की, तो ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इट इज गिवन इन द 10th शेड्यूल, बट 10th शेड्यूल बोलता है कि जो एंटी डिफेक्शन के क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि 1021 की डिस्क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट एंड 1022 यानी एंटी डिफेक्शन इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर और द चेयर। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल्स जो थे वो थे 101, 102 एंड 103। ठीक है, आप सिमिलरली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर में से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, सो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन बिकॉज इसका भी सेम ही है, आप इसका वो सब पढ़ सकते हो कि कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ वगैरह है। बट यहाँ पे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन। ओके,
ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस आई एम गोना स्किप। ठीक है, तो 190, 191 एंड 192, ठीक है, एग्जैक्ट सेम चीजें बोल रहे हैं जो हमने अभी देखी। ओके, सो यू मे गो थ्रू इट वंस अगेन, बट दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। ओके, चलो अब पेनल्टी नॉट इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दैट इज 105, ठीक है, और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग होगा आपका 194, ठीक है। दोनों में सेम चीज है तो मैं एक ही पढ़ाऊंगी एंड वी विल अज्यूम दैट द अदर वन इज आल्सो कवर्ड, राइट। सो 105 बताता है कि अब जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं 194 के अंदर, उनके पास कुछ पावर और प्रिविलेजेस होंगी, ठीक है। 1051 बोलता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट में फ्री स्पीच है, आपके ऊपर कोई फॉर एग्जाम्पल देयर कैन नॉट बी एनी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यू फॉर वट एवर यू से इन द पार्लियामेंट, सो देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, राइट। 1052 बोलता है कि आप कैसे वोट कर रहे हो या आप अगर पार्लियामेंट में कुछ कह रहे हो तो ये चीजें दे विल नॉट बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट। ओके, सो नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पार्लियामेंट में किसी के कंडक्ट का डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, तो दैट पर्सन कैन नॉट गो टू द कोर्ट सेइंग डेफेमेशन हैज हैपेंड बिकॉज दिस मिनिस्टर सेड समथिंग अबाउट यू बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड अंडर 1052, ठीक है। दे कैन नॉट बी मेड लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू टू थिंग्स, वन एनीथिंग दे से और सेकंड एनी वोट गिवन बाय देम, ठीक है। 105, 105, 1, 2 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, थर्ड वो बोल रहे हैं कि अदर रिस्पेक्ट्स में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करी एंड फ्रीडम ऑफ वोट की बात करी। अब थर्ड बोलता है कि बाकी रिस्पेक्ट्स में पावर प्रिविलेज और इम्यूनिटी विल बी द सेम विच वॉज इंजॉयड बाय हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड, ठीक है, अनलेस यू मेक अ लॉ, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट लॉ बना के डिसाइड कर सकती है कि बाकी मैटर्स में आपके पास क्या पावर्स और प्रिविलेजेस होंगी। जब तक पार्लियामेंट ये लॉ नहीं बनाती है तब तक इट विल बी द सेम जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटिश का है उनके पास जो भी पावर्स और प्रिविलेजेस होते थे आपके पास भी सेम होंगे, ठीक है। आप ये अमेंडमेंट देख के थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो बट इसका बॉटम लाइन यही है, ठीक है। एक्चुअली पहले उन्होंने यही चीज लिख रखी थी बट देन देयर वाज सम अमेंडमेंट एंड अ फ्यू मोर चेंजेस हैपेंड, सो नाउ द पोजीशन इज आइदर पार्लियामेंट मेक्स अ लॉ and decides the other things. If Parliament doesn't make a law, then it will be the same which was enjoyed by British House of Commons. Okay. फिर है 1054 की प्रोविजंस ऑफ 1, 2 एंड 3, मतलब ये जो प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं मिलेगा, ये बाकी लोगों को भी मिलेगा जिनके पास पार्लियामेंट में स्पीक करने का राइट है, ठीक है। सो एनी पर्सन हु हैज अ राइट टू स्पीक इन, फॉर एग्जांपल अटॉर्नी जनरल के पास राइट होता है तो उनके ऊपर भी सेम प्रोटेक्शन एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो 105 इज actually very important. Okay, I will just show you a couple of things about it, right? हाँ, parliamentary privileges पर, ठीक है। अब parliamentary privileges के कुछ केसेस देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केस है पीवी नरसिम्हा राव जिसको हम जेएमएम ब्राइबरी केस भी बोलते हैं, ठीक है। इस केस में कोर्ट ने बोला था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 105 और 194 में दिया हुआ है दैट इज एब्सोल्यूट इन नेचर, मतलब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होते हैं बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन आर्टिकल 105, ठीक है। द ओनली थिंग दैट इट इज सब्जेक्ट टू इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी रूल्स एंड एनी स्टैंडिंग ऑर्डर्स विच द पार्लियामेंट मे हैव मेड, ठीक है। तेज किरण जैन वर्सेस एन संजीवा रेड्डी के केस में कोर्ट ने कहा दैट नो डेफेमेशन प्रोसीडिंग्स कुड अराइज फ्रॉम स्पीचेस मेड बाय पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है, क्योंकि वो 1052 के अंदर प्रोटेक्टेड होगा, राइट। अब यही सेम चीज कोर्ट ने मार्कंडेय काजू वर्सेस लोकसभा में भी रीट्रेट करी। फिर कोर्ट ने राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर के केस में कहा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो 1053 में दी हुई हैं उसमें स्पीकर के पास राइट होता है टू एक्सपेल अ मेंबर ऑल्सो, ठीक है। तो वो एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हुआ है बट इट इज इंक्लूडेड अंडर 1053, ओके। देन यूपी असेंबली केस, इसको केशव सिंह केस भी बोलते हैं, दिस वाज आल्सो क्वाइट फेमस बिकॉज इन दिस जजमेंट a full bench of Allahabad High Court sat. Okay, so it was a very controversial matter because in UP Assembly they summoned High Court judges क्योंकि High Court judges ने उनके against writ pass कर दी थी, so they issued an order of arrest of the judges itself
in the UP Assembly case. ठीक है, so then the full bench of High Court sat and they said that the state legislature cannot do that, and then a reference was made to the Supreme Court. Okay, so it was a very complicated case. तो इस केस में कोर्ट ने फाइनली बोला था कि for a speech and action in the house, a member is only subject to the discipline of the house. ठीक है, लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं है टू इशू कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द जजेस फॉर देयर जुडिशियल एक्शंस. ओके, फिर हम आते हैं फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स पे, कि अब देखिए पार्लियामेंट के पास तो ये पावर है ही, लेकिन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को जो लोग पब्लिश कर रहे हैं दे ऑल्सो आर प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो पहले तो देयर वाज अ लॉ कॉल्ड द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट 1956, बट इसको रिपील कर दिया गया ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम. ठीक है, उसके बाद 44th अमेंडमेंट हम लेकर आए जिसने 361 ऐड किया, विच बेसिकली प्रोवाइडेड फॉर फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग. ठीक है, अब जो लास्ट जजमेंट है दैट इज द केस ऑफ MSM शर्मा वर्सेस SK सिन्हा, इसको सर्चलाइट केस भी बोलते हैं. दिस वाज आल्सो क्वाइट पॉपुलर. इसमें एक्चुअली एक मैगजीन थी, सर्चलाइट मैगजीन, वेयर दे पब्लिश्ड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, तो स्पीकर ने उनके एडिटर को बोला टू एक्सपंज समथिंग्स फ्रॉम द रिकॉर्ड. The editor was then presented before the legislative assembly to give reasons as to why he has committed the breach. ठीक है, तो फिर at first he was held guilty for his conduct. फिर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील करी saying that it violates his article 19(1)(a) कि उनके पास राइट है कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करें. तो कोर्ट ने कहा कि आपके पास ये फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि वी हैव टू बैलेंस योर 19(1)(a) विद द राइट ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 194. ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि 194 एक स्पेशल प्रोविजन है, 19(1) इज अ जनरल प्रोविजन विच इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी. तो कोर्ट का कहना था कि वी विल अप्लाई हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हियर एंड वी विल अपहोल्ड कि स्पेशल रूल इज सपोज टू ओवर रूल द जनरल रूल. ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे केसेस में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस विल प्रिवेल और जो मीडिया हाउसेस हैं उनके पास कोई एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगा. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द जजमेंट्स ऑन योर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. ठीक है, हाँ, अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आपको जनरली पता होना चाहिए, बट आपको इसके बारे में हर चीज पता होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फर्स्ट क्या पता होना चाहिए कि मनी बिल और नॉन मनी बिल में क्या डिफरेंस होता है ना. मनी बिल में क्योंकि लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है, सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू नो. तो 107 में वो बता रहे हैं कि जो नॉर्मल बिल्स हैं यानी कि अदर देन मनी बिल्स, वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकते हैं. ठीक है, फिर एक हाउस उन्हें पास करेगा और फिर वो दूसरे हाउस में जाएंगे और दूसरे हाउस में अगर वो पास होते हैं तो देन दे विल गो टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट. ठीक है, 108 बात करता है जॉइंट सिटिंग की, कि अगर मान लीजिए कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, कि दूसरे हाउस ने बिल को रिजेक्ट कर दिया, या फिर हाउसेस डिसअग्री कर रहे हैं कि कौन से अमेंडमेंट लेके आने हैं, या फिर 6 months हो गए और दूसरे हाउस ने उसे पास ही नहीं किया है, पैसेज ऑफ टाइम. तो इन 3 केसेस में प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक जॉइंट सेशन कन्वीन करेंगे जहां पे लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के मेंबर्स आएंगे एंड द स्पीकर विल प्रिसाइड, और उस जॉइंट सेशन में जो भी वोटिंग से डिसाइड होगा दैट इज हाउ दैट बिल विल बी पास्ड. ठीक है, बट जॉइंट सेशन डज नॉट अप्लाई टू मनी बिल्स. ओके, मनी बिल्स के लिए जो प्रोसीजर है दैट इज गिवन इन आर्टिकल 109. तो उसमें आपको बता रहे हैं कि मनी बिल्स आप सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, दे कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा. राइट, फिर दे आर सेइंग कि राज्यसभा में 14 days के लिए जाएगा. अगर राज्यसभा कुछ रेकमेंड करना चाहती है तो इट कैन डू दैट विद इन दैट टाइम पीरियड. अगर वो इस टाइम में नहीं रेकमेंड करते हैं तो इट विल स्टिल बी डीम्ड टू बी पास्ड. अगर वो कुछ रेकमेंड करते भी हैं एंड लोकसभा डज नॉट अग्री, देन ऑल्सो द बिल विल बी डीम्ड टू बी पास्ड. ओके, सो ऑल इन ऑल राज्यसभा डज नॉट हैव एनी से इन द पैसेज ऑफ मनी बिल्स. दैट इज द होल एसेंस ऑफ इट. अब 110 में उन्होंने बताया कि मनी बिल्स होते क्या है. ठीक है, तो उन्होंने एक लिस्ट दी है कि क्लॉज ए से लेके F तक, है ना, फिर G तो इंसिडेंटल है, इसमें जो जो मैटर्स दिए हुए हैं ये मनी बिल में फॉल करते हैं. ठीक है, आप 1-2 एग्जांपल दे सकते हो. फॉर एग्जांपल इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन ऑफ टैक्स. ठीक है, टैक्स अगर लगाना है या हटाना है तो ये मनी बिल का मैटर है. अगर आपको पैसे बोरो करने हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड या कंटिजेंसी फंड की कस्टडी की बात है, सो यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट इट, बट यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज ऑल ऑफ दिस. ओके, यू जस्ट नीड टू नो वेयर मनी बिल्स आर डिफाइंड. ठीक है, ओके, फिर अब कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा, स्पीकर. ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करेंगे फाइनली वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट. उनको ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये बिल मनी बिल है बिफोर सेंडिंग इट टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट. असेंट के प्रोविजंस दिए हुए हैं 111 में.
कि जब दोनों हाउसेस किसी बिल को पास कर देंगे तो देन द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही पड़ेगी, ठीक है। एक बार वो वापस भेज सकते हैं, उनके पास पावर है, बट अगर दोबारा वो बिल आता है विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स, देन ही शैल नॉट विथहोल्ड हिज असेंट। ओके, सो दैट इज द होल प्रोसीजर। अब प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स आप इसको थोड़ा सा बेसिक देख सकते हो। 112 बात करता है एनुअल बजट की, जो हर साल फरवरी में इंट्रोड्यूस होता है कि आगे जो ईयर आने वाला है उसमें गवर्नमेंट क्या क्या एक्सपेंसेस करेगी, ठीक है। सो दैट इज 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द एनुअल बजट, ठीक है। इसके अलावा बाकी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो बाकी में आपको प्रोसीजर बता रहे हैं कि अब अगर मान लीजिए बजट पास हो गया, बट बीच में साल के बीच में रियलाइज हुआ कि देर मे बी अदर एक्सपेंडिचर, मे बी सम अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर दैट द गवर्नमेंट विल हैव टू अंडरटेक, तो उसको करने का क्या प्रोसीजर है, दैट इज गिवन हियर कि 113 में एस्टिमेट्स देने पड़ेंगे पहले उनको, ठीक है। फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, है ना, सप्लीमेंट्री एडिशनल या एक्सेस ग्रांट मांग सकते हैं। तो ये सारी चीजें काफी फाइनेंशियल मैटर्स में आती हैं, एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो लाइक द एंटायरिटी ऑफ इट, बट थोड़ा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, स्पेशली एनुअल बजट का, ठीक है। सो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ओके ओके, इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप सिमिलरली इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का भी पढ़ते जाना, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर में सब कुछ सेम होता है, बट एक चीज अंतर होती है कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में दो हाउसेस हों, ठीक है। वो डिपेंड करता है, कुछ ही स्टेट्स हैं इंडिया में जिनमें दो हाउसेस हैं, अदरवाइज वहां पे सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस होता है, यानी कि विधानसभा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जहां पे दो हाउसेस हैं भी, वहां पे भी इन मनी बिल्स एज वेल एज इन अदर बिल्स द पावर इज लाइंग विद द लोअर हाउस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ओके। अब आते हैं रेसिडुअरी पे, कि प्रोसीजर जनरली, कि जो पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोसीजर होगा वो पार्लियामेंट खुद डिसाइड करेगी, ठीक है। तो वो उसके लिए रूल्स बना सकते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, ओके। सो 118 टॉक्स अबाउट दैट। 121 एंड 122 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 121 बोलता है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। तो बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में जब आप किसी भी चीज पर डिस्कशन कर रहे हो तो आप जजेस के कंडक्ट पे डिस्कशन नहीं करोगे अनलेस द डिस्कशन इज अबाउट देयर रिमूवल, ठीक है। अगर आप उन्हें रिमूव करने का अगर डिस्कशन कर रहे हो, उसका रेजोल्यूशन है, देन यू कैन डिस्कस देयर कंडक्ट, अदरवाइज आप उनका कंडक्ट पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करोगे, ठीक है। So no discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of High Court in discharge of his duties, except upon a motion for presenting an address for his removal, ठीक है। Similarly, जैसे आप जजेस का कंडक्ट डिस्कस नहीं करोगे, सिमिलरली कोर्ट भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में अननेसेसरीली इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो उनका कहना है वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कोई प्रोसीजर एग्जैक्टली वैसा फॉलो नहीं हुआ है जो होना चाहिए था, तो उस इरेगुलरिटी के लिए कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज ट्रू। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट्स में कहा है कि दैट इज ट्रू दैट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर, बट सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर इन इलीगैलिटी ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। कि आप जो प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हो अगर वो इलीगल है तो उसमें कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, ओके। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस। अब सिमिलरली आप ये दोनों प्रोविजंस स्टेट लेजिस्लेचर के भी याद रख सकते हो, ओके। आई जस्ट शो यू द प्रोविजन नंबर्स, या 211 एंड 212, ठीक है। बात सेम है, बस 211 और 212 उनका नंबर है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लेजिस्लेचर। अब एज यू हैव सीन कि लेजिस्लेचर में एक्चुअली जो आर्टिकल्स याद रखने हैं वो है विद रिस्पेक्ट टू वेकेशन ऑफ सीट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, एंड फाइनली 121 एंड 122, ठीक है। बीच का जो भी है that has to be understood like in an overview manner, but you don't have to remember each and every article number and what it talks about, ठीक है। So now with this we need to move on to one more section which is related to this, which is anti defection law, ठीक है। अब आप एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए पार्ट 10 यानी 10th शेड्यूल देख सकते हो, बट मैं आपको अभी बेसिक बता देती हूँ कि 10th शेड्यूल में व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि हाउ इट गॉट इंट्रोड्यूस्ड। सो द कमिटी ऑफ डिफेक्शन ऑफ लोकसभा ने 1969 में रेकमेंड किया कि हमको डिफेक्शंस को आउटलॉ कर देना चाहिए, मतलब द होल प्रैक्टिस वेयर
a person fights from one party, gets elected, and then moves on to other party, that practice has to be basically stopped, right? तो इसके लिए वो लेके आए 52nd constitutional amendment which made changes to articles 101, 102, 190 and 191 and added the 10th schedule. ठीक है, तो 10th schedule exactly यही provide करता है, आप एक बार उसको डिटेल में देख सकते हो. ओके, सो पार्ट पैरा 2 जो है 10th schedule का, वो डिस्क्वालिफिकेशंस ले डाउन करता है. पैरा 6 बताता है कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो भी क्वेश्चन होगा वो चेयरमैन या स्पीकर डिसाइड करेंगे. ठीक है, अगर लोकसभा का है तो स्पीकर, अदरवाइज चेयरमैन, राइट. फिर उसमें उन्होंने क्या बोला है कि चेयरमैन और स्पीकर का डिसीजन शैल बी फाइनल. ठीक है, अब ये बात मैं आपको हर बार बता चुकी हूँ, whenever we talk about anything in the constitution which has been given finality, that despite the fact that anybody's decision is made final, be it the president or chairman or speaker, it is still subject to judicial review. ठीक है, तो फाइनलिटी देने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट्स उसे जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकते हैं. ठीक है, कोर्ट्स कैन डेफिनेटली judicially review, although the grounds are a little not very wide while reviewing such an order. तो जो चैलेंज होता है वो इन ग्राउंड्स पे हो सकता है कि द ऑर्डर वाज मैलिफाइड, यानी कि बैड फेथ में था, कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है, इररेलेवेंट कंसिडरेशंस को अकाउंट में लिया है, या फिर इट इज वायलेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है, अब जो पैरा 7 था 10th शेड्यूल का, उसको कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि हो तो हॉल 1 के केस में. ठीक है, आई थिंक आई टोल्ड यू दिस इन द लास्ट सम अ फ्यू क्लासेस बैक, राइट. उसमें क्या था कि देवर बारिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स. उनका कहना था कि इसमें जो भी है इसमें कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे इन मैटर्स ऑफ डिफेक्शन. तो सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो हॉल 1 के केस में उसको स्ट्राइक डाउन किया फॉर द सिंपल रीजन दैट इट वाज टेकिंग अवे द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, बट इट डिड नॉट फॉलो द प्रोसीजर ऑफ आर्टिकल 368. कि आर्टिकल 368(2) का प्रोवाइजो बोलता है कि अगर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर चेंज करना है, राइट, तो आपको उसके लिए स्टेट रैटिफिकेशन भी लेना पड़ेगा ऑफ एटलीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट्स, राइट. सो दैट इज व्हाई दिस पार्ट वाज स्ट्रक डाउन. ओके, हाँ, सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स अबाउट एंटी डिफेक्शन. अब जो अभी रिसेंटली जजमेंट आया था इन द केस ऑफ सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जहां पे द होल इशू वाज अबाउट महाराष्ट्र रिफ्ट बिटवीन उद्धव ठाकरे एंड एकनाथ शिंदे, है ना. तो वो केस काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो वो एंटी डिफेक्शन पे नहीं है, क्योंकि उस केस में मामला ये था कि स्पीकर जो है, अगर स्पीकर के खुद के रिमूवल की प्रोसेस अगर चल रही है, तो क्या ऐसे स्पीकर खुद एंटी डिफेक्शन की प्रोसीडिंग्स को एड्रेस कर सकते हैं. ठीक है, और शुड ही फर्स्ट वेट फॉर हिज रिमूवल टू बी डिसाइडेड एंड देन प्रोसीड विद द एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स. ठीक है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उनके पास ही पावर है टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज डिफेक्टेड और नॉट. तो सुभाष देसाई के केस में एक्चुअली कोर्ट वाज आंसरिंग दैट. ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इवन इफ द रिमूवल इज अंडर वे, स्पीकर कैन स्टिल डिसाइड बिकॉज स्पीकर इज सपोज टू बी अ न्यूट्रल अथॉरिटी. ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि अंटिल द टाइम स्पीकर्स रिमूवल डिसीजन इज डन, ही और शी शुड नॉट इंटरफेयर or decide the pleadings under the 10th schedule. ठीक है, तो सुभाष देसाई case is otherwise also important, but it's not really on anti-defection law. Okay. अब I'm just left with one last thing with respect to legislature, that is distribution of legislative power. ठीक है, कि अब स्टेट और सेंटर के बीच में, यानी कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में कैसे डिवाइड होगी लेजिस्लेटिव पावर, है ना, कि कौन किस चीज पर लॉ बनाएगा, हाउ विल वी डिसाइड दैट. सो फॉर दैट वी हैव पार्ट 11 which talks about relations between union and states. उसमें चैप्टर 1 बात करता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस की, कि कैसे लेजिस्लेटिव रिलेशंस मेंटेन होंगे बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर में वी हैव आर्टिकल 245 से लेके 254. ओके, 255 ओनली एक्चुअली, है ना, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हाउ विल द लेजिस्लेटिव पावर बी डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. 245 सबसे पहले बात करता है टेरिटोरियलिटी की, कि टेरिटोरियली मतलब इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिक एप्लीकेशन ऑफ लॉज कौन किस जगह के लिए लॉ बनाएगा, है ना. तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट. ठीक है, बेसिक सी बात है, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के लिए लॉ बनाएगी, पार्लियामेंट पूरी कंट्री के लिए लॉ बना सकती है जहां जहां पे उनकी पावर है, राइट. अब उन्होंने 245(2) में बोला है कि नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन. ठीक है, अब अगर किसी लॉ का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होता है, मतलब इंडिया के बाहर अगर हम किसी लॉ को अप्लाई कर रहे हैं,
इफ वी हैव रिटन दैट इन आवर लॉज, तो वो अपने आप में उस लॉ को इनवैलिड नहीं कर देगा, ठीक है। मतलब हमारे लॉज का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो सकता है, जो है भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंडियन पीनल कोड अच्छे से पढ़ा है, तो यू वुड नो दैट आईपीसी कैन अप्लाई ऑन समबडी who is not within India also. For example, if it's an Indian ship in the high seas, and if somebody commits an offense on the Indian ship, then that person can be prosecuted in India under the Indian Penal Code. ठीक है, तो लॉज का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो सकता है, इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ठीक है। तो 245 बात करता है टेरिटोरियल एप्लीकेशन की, 246 बात करता है सब्जेक्ट मैटर की, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि 245 में दे आर टेलिंग यू कि जियोग्राफिकली आप कहाँ के लिए लॉ बना सकते हो, ठीक है। 246 बताता है कि आप किन मैटर्स पे लॉ बना सकते हो, है ना, कि कुछ मैटर्स पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, कुछ मैटर्स पे सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी, और कुछ मैटर्स पे दोनों लॉ बना सकते हैं। ओके, दिस इज वेर इन योर होल 7th शेड्यूल कम्स इन, विच हैज 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो चीज यहाँ पे 246 में दी हुई है कि notwithstanding anything in clauses 2 and 3, Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the Union list, यानी कि list 1, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं notwithstanding anything in clause 3, Parliament and subject to clause 1 state legislature also have powers to make law on the concurrent list, ठीक है। तो concurrent list पे दोनों लॉ बना सकते हैं, एंड फाइनली स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, ठीक है। ओके, 246A रिसेंटली एडेड है, ये है जीएसटी के बारे में, ठीक है। तो जीएसटी के जो भी अमेंडमेंट्स हुए थे, 101st अमेंडमेंट, इट एडेड 246A कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 246 एंड 254, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ कैन मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, ठीक है। बस उन्होंने एक एग्जेम्पशन दिया कि जो आपका इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स है, यानी कि बिटवीन स्टेट्स, उस पे जो जीएसटी के प्रोविजंस होंगे, दैट विल बी मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। Other than that, both the parliament and the state legislature are competent to make provisions on goods and service tax, ठीक है। अब 247 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बता रहे हैं कि पार्लियामेंट चाहे तो एडिशनल कोर्ट्स भी एस्टैब्लिश कर सकती है। 248 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 248 बोलता है रेसिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन, कि अब अगर कोई मैटर किसी भी लिस्ट में कवर्ड नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, तो उस सिचुएशन में दैट विल बी लेजिस्लेटेड अपॉन बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो भी रेसिडुअरी है, अगर वो कहीं कवर्ड नहीं है, ना तो लिस्ट 2 में ना ही लिस्ट 3 में, तो फिर उस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है। दिस ऑल्सो इंक्लूड टैक्सेस, कि अगर कोई टैक्स मेंशन नहीं है इस लिस्ट में, तो वो टैक्स को रेगुलेट करने की पावर भी पार्लियामेंट के पास लाई करेगी, ओके। अब 249 and 250, these are two examples when the parliament can make laws in the state list as well, क्योंकि हमें पता है स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट लॉ बनाती है, राइट। बट 249 और 250 में उन्होंने दो सिचुएशंस बताई हैं जहां पे फॉर अ टेम्पररी पीरियड पार्लियामेंट कैन ऑल्सो लेजिस्लेट अपॉन, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने बोला नेशनल इंटरेस्ट में, कि अगर कभी राज्यसभा ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दे बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट टू मेक एनी लॉ इन मैटर्स गिवन इन स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो अगर राज्यसभा ने ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया है, तो फिर पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि वो स्टेट लिस्ट के उस मैटर पर लॉ बना सकती है, ठीक है। अब ये जो रेजोल्यूशन है, ये एक टाइम पे 1 ईयर के लिए फोर्स में रह सकता है, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर, ओके। अब ये जो लॉ होता है, ये टेम्पररी लॉ होता है, कि जब तक ये रेजोल्यूशन फोर्स में रहेगा राज्यसभा का, तब तक ही आप इस लॉ को फोर्स में रखोगे, और उसके एंड होने के 6 मंथ्स के अंदर आपको इस लॉ को खत्म करना है, ठीक है। मतलब उसके बाद इस लॉ का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सो इट इज ओनली फॉर अ टेम्पररी पीरियड, ताकि नेशनल इंटरेस्ट में अगर हमें कोई चीज रेगुलेट करनी है, सो दैट कैन बी डन, ओके। सो दैट इज वन थिंग। 250 में वो बोल रहे हैं कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, इफ देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो ऐसे केस में भी पार्लियामेंट फिर स्टेट लिस्ट के मैटर्स पर लॉ बना सकती है, ठीक है। इसकी भी टाइम लिमिट होती है, मतलब ये भी इंडेफिनिट लॉ नहीं है। जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी, उसके 6 मंथ्स के बाद दिस लॉ विल ऑल्सो सीज टू हैव एनी इफेक्ट, ठीक है। 251 में वो बता रहे हैं कि अब देखिए, आपने अगर कोई टेम्पररी लॉ बनाया है 249 और 250 के अंदर, और अगर वो किसी स्टेट लॉ से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, क्योंकि हो सकता है ना कि उस मैटर पे स्टेट ने ऑलरेडी लॉ बना रखा हो, तो उनका कहना है कि फॉर द टाइम बीइंग, जब तक वो लॉ फोर्स में है 249 और 250 का, सो दैट विल प्रिवेल, ठीक है। तो ये वाला जो लॉ है, ये उतने टाइम तक के लिए अप्लाई नहीं होगा, बट आफ्टर दैट इट विल कंटिन्यू टू अप्लाई, ओके। अब आते हैं 252 पे।
252 बात करता है कि पार्लियामेंट के पास एक और पावर है कि अगर स्टेट्स खुद आके उससे कह रहे हैं, अगर स्टेट्स खुद ही रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि आप हमारे लिए लॉ बना दो, then they will make that law. Okay, so 252 says कि power of parliament to legislate for two or more states by consent and adoption of such legislation. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल लॉ में there's a law which is water act. ठीक है, तो water act के लिए actually the state legislatures themselves went to the parliament with a resolution that the parliament should regulate that matter even though it falls in the state list. ठीक है, तो ऐसे जो लॉज होते हैं ये सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पे अप्लाई होते हैं जिन्होंने इसकी रिक्वेस्ट करी थी, या फिर अगर कोई स्टेट बाद में इस लॉ को अडॉप्ट करना चाहे तो वो उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिन स्टेट्स ने अडॉप्ट नहीं किया है, जिन स्टेट्स ने रिक्वेस्ट नहीं किया है, उन पे दिस लॉ विल नॉट अप्लाई। ओके, फिर है 253 कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को ऑनर करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया किसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट में एंटर हुआ है तो उसको फोर्स में लाने के लिए लेजिस्लेचर कैन मेक अ लॉ। ओके, सो पार्लियामेंट हैज द पावर टू डू दैट एज वेल। अब आते हैं लास्ट आर्टिकल पे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज। ठीक है, अब वो ये जो है 254 इट ओनली अप्लाइज टू कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, सी क्यों? क्योंकि वी नो दैट इन कॉन्करेंट लिस्ट द पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन दैट। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे द लॉज में कॉन्फ्लिक्ट, राइट, कि अगर पार्लियामेंट ने ऑलरेडी लॉ बना दिया उस मैटर पे एंड देन द स्टेट लेजिस्लेचर आल्सो ट्राइज टू मेक अ लॉ, देन व्हाट विल हैपन? तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट का आंसर आपको 254 में दे रहे हैं कि इफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर इज रेपग्नेंट टू एनी प्रोविजन मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तो ऐसे केस में लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल प्रिवेल। ठीक है, तो यानी कि पार्लियामेंट्री लॉ को उन्होंने ज्यादा पावर दी है कि अगर स्टेट और पार्लियामेंट दोनों ने लॉ बनाया है तो पार्लियामेंट्री लॉ विल प्रिवेल। ठीक है, 254 एक सिचुएशन बताता है कि कुछ केसेस में स्टेट लॉ कैन आल्सो प्रिवेल। ठीक है, कि अगर पार्लियामेंट का लॉ है एंड स्टेट आल्सो वांट्स टू मेक अ लॉ ऑन दैट, तो स्टेट कैन डू दैट प्रोवाइडेड कि उनको प्रेसिडेंट से असेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट उस लॉ को असेंट दे देते हैं फॉर दैट स्टेट, तो फिर उस स्टेट में दैट स्टेट लॉ विल प्रिवेल एंड नॉट द पार्लियामेंट्री लॉ। ठीक है, अब पार्लियामेंट चाहे तो इस चीज को बाद में चेंज कर सकती है बाय अमेंडमेंट। ठीक है, तो वो चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर को रिपील भी कर सकते हैं। okay? तो मतलब अल्टीमेटली द फाइनल से विल बी विद द पार्लियामेंट इवन इन मैटर्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, है ना। मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ केसेस दिए हैं कि टेरिटोरियल नेक्सस वाली जो बात थी 245 में, we have a few judgments on that. The first one is स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमटीसी, है ना। इस केस में क्या था कि बॉम्बे का लॉ था विच प्रोहिबिटेड लॉटरीज, है ना, कि आप लॉटरी नहीं कर सकते। तो अब देयर वाज अ न्यूज़पेपर विच वाज पब्लिश्ड इन बैंगलोर, दैट इज कर्नाटका, उसका सर्कुलेशन बॉम्बे में भी होता था। तो अब बात ये थी कि बॉम्बे में तो लॉटरीज आर नॉट परमिटेड, बट दिस न्यूज़पेपर स्पोर्टिंग स्टार, है ना, दिस इज कंडक्टिंग प्राइस कॉम्पिटिशन विच इज इन द नेचर ऑफ लॉटरी। तो इशू पूरा ये था कि अब क्या ये बॉम्बे का जो लॉ है विल इट अप्लाई टू अ न्यूज़पेपर विच इज बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर विच इज इन कर्नाटका, जहां पे बैंगलोर बॉम्बे लॉज वोंट अप्लाई। तो कोर्ट ने कहा कि दैट इज ट्रू, लेकिन यहाँ पे टेरिटोरियल नेक्सस है क्योंकि यहाँ पे पेपर इज बीइंग सर्कुलेटेड इन बॉम्बे, सो दैट इज व्हाई द बॉम्बे लॉ विल बी एप्लीकेबल टू दिस होल थिंग। ठीक है, तो कोर्ट ने ये डॉक्ट्रिन इवॉल्व करी कि डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस होती है। अब जरूरी नहीं है कि हर चीज उसी स्टेट में सिचुएटेड होगी, बट इफ एनी सब्जेक्ट ऑफ दैट लॉ दैट स्टेट इज बीइंग इम्पैक्टेड, देन दैट स्टेट लेजिस्लेचर विल डेफिनेटली हैव अ नेक्सस एंड द एबिलिटी टू रेगुलेट इट। ओके, फिर है आपके कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी लॉ को चैलेंज करता है उसे प्रूव करना है कि लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कोर्ट मान के चलती है कि लॉज आर कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, हर एंट्री को हम ब्रॉडली इंटरप्रेट करेंगे जो कि लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 में दी हुई है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस अप्लाई करेंगे। अगर हमें ये पता करना है कि कोई लॉ किस लिस्ट के अंदर बना है, तो हम ये देखेंगे कि उसका ट्रू कैरेक्टर क्या है, वो किस चीज को मेनली रेगुलेट करना चाह रहा है। ठीक है, तो वो जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से डिसाइड होगा वेदर दैट लॉ हैज बीन राइटली मेड और नॉट। ओके, सो देयर आर 2 जजमेंट्स ऑन दिस पॉइंट, प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स एंड स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा, है ना। फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, कि अगर हमें पता करना है कि किसी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ अपनी पावर में बनाया है या नहीं, तो हम डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन लगा के भी देखेंगे। अब यहाँ पे भी ट्रू इंटेंट देखते हो आप लॉ का, कि
इज द लॉ ट्राइंग टू डू समथिंग इनडायरेक्टली विच इट कैन नॉट डू डायरेक्टली। ठीक है, तो जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो, इज एग्जैक्टली व्हाट दिस डॉक्ट्रिन सेज। ओके, सो देयर आर टू जजमेंट्स, केसी गजपति नारायण राव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड केटी मोपिल नायर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओके, फिर एक और डॉक्ट्रिन है ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज थ्री लिस्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर्स। ठीक है, वो ये बोलती है कि अगेन तीनों डॉक्ट्रिन्स का बेसिक मतलब यही होता है कि आपका एक्चुअल लॉ किस चीज को डील कर रहा है और बाकी चीजें क्या एंसिलरी हैं, है ना। क्योंकि हो सकता है कि किसी लॉ में देयर मे बी एनक्रोचमेंट ऑन अदर लिस्ट बाय एंसिलरी मीन्स, ओके, कि उस लॉ का प्राइमरी पर्पस उस चीज को रेगुलेट करना नहीं है, बट वाइल मेकिंग दैट लॉ सम एंसिलरी एंक्रोचमेंट इज देयर। ठीक है, तो अगर कोई एंसिलरी इंक्रोचमेंट है किसी और लिस्ट पे तो देन दैट इज ओके, बट इफ इट इज नॉट एंसिलरी, है ना, अगर आप कुछ इनडायरेक्टली करना चाह रहे हो तो देन दैट विल नॉट बी पासिंग द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ठीक है, फिर रिपग्नेंसी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ आर्टिकल 254 की, कि रिपग्नेंसी अगर होगी तो पार्लियामेंट्री लॉ विल प्रिवेल। ठीक है, सो देयर इज अ जजमेंट ऑफ दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जहां पे कोर्ट ने बताया था कि रिपग्नेंसी किस किस केस में हो सकती है। ठीक है, सो these are a few judgments on article 254. Now I'm left with only and only one last provision in the whole constitution that is left to be done, that is emergency. ठीक है, बाकी हमने जो भी important था एक बार कवर कर लिया है। Emergency provisions, although ये this has I think been asked in the last flat or last to last flat, so chances of it are coming are less because कोई recent judgment नहीं आता है इस पे, है ना, because thankfully we have not had any emergency in India since the 1980s, so we really don't have any new judgments on this part, so it is mostly just the static understanding of emergency that has to be there. Okay, and since it was asked also very recently तो उसके दोबारा आने के chances थोड़े से कम है ना, but आपको at least पता होना चाहिए कि what is emergency, what are the different kinds of emergency that are provided for in the constitution. ठीक है, 352 बात करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन दिस होल थिंग इज द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई भी ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट करती है जिससे सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटन हो रही है ना, किन तीन चीजों से, आइदर बाय वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, अगर इन तीन चीजों से प्रेसिडेंट को लगता है कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही है तो वो एक प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं सेइंग कि अब हमारे यहाँ इमरजेंसी लग गई है। ठीक है, अब ये जो प्रोक्लेमेशन है आप इसको सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से वेरी या इवन रिवोक भी कर सकते हो, है ना। अब प्रेसिडेंट ऑब्वियसली ये डिसीजन खुद से नहीं लेते हैं क्योंकि हमें पता है प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन खुद से नहीं लेते हैं, है ना। तो उनका जो ये डिसीजन होगा दैट एक्चुअली विल बी कम्युनिकेटेड टू हिम बाय द कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो अगर राइटिंग में लिख के प्रेसिडेंट को देते हैं कि वी नीड टू इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ओनली देन द प्रेसिडेंट विल डू दैट। ओके, फिर इस प्रोक्लेमेशन को हम हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में रखेंगे। ओके, एक मंथ का टाइम है फॉर देम टू पास, अगर एक मंथ के अंदर वो पास नहीं होता है देन द इमरजेंसी विल सीज टू ऑपरेट। ओके, ठीक है, फिर है कि प्रोक्लेमेशन की जो डेट होगी दैट विल बी फॉर 6 months, मतलब 6 months के लिए आप प्रोक्लेमेशन को इशू कर सकते हो एंड दिस कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो, राइट। फिर है कि मेजोरिटी किस टाइप की होनी चाहिए जब आपको प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट में पास करना है, तो दैट इज बाय अ मेजोरिटी ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी प्लस मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, राइट। अब उनका कहना है कि अगर मान लीजिए 1/10 मेंबर लोकसभा के ये बोलते हैं कि दे डोंट अप्रूव ऑफ दिस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, तो वो ऐसा कर सकते हैं 1/10 मेंबर्स अगर ये रिटर्न में देते हैं तो फिर स्पीकर को, अगर पार्लियामेंट्री सेशन है इन फोर्स या फिर अगर सेशन नहीं है तो प्रेसिडेंट को, उनको एक स्पेशल सिटिंग करानी पड़ेगी विद इन 14 days टू वोट ऑन दिस रेजोल्यूशन। ठीक है, अब इसका पूरा इंटेंशन ये है कि अगर लोकसभा के मेंबर्स ही बोल रहे हैं 1/10, क्योंकि लोकसभा इज द प्लेस फॉर द गवर्नमेंट हैज द मेजोरिटी, तो अगर वहीं पे कंसेंसस नहीं है विद रेस्पेक्ट टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी तो दिस हैज टू बी डिसाइडेड एट द अर्लीस्ट। ठीक है, 353 हमें बताता है कि इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे बता दें कि जब इमरजेंसी लगी है तो जितनी भी पावर होती है तो मोस्टली यूनियन के पास चली जाती है, बी इट
द एग्जीक्यूटिव पावर और बी इट द पार्लियामेंट्री पावर, यानी कि पावर टू मेक लॉज. सो दैट इज व्हाट इज गिवन इन 353 A and B, राइट. 354 नॉट इम्पॉर्टेंट, 355 नॉट इम्पॉर्टेंट, 356 होता है. ठीक है, 356 में बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर की. ठीक है, जिसको हम स्टेट की इमरजेंसी भी बोलते हैं, स्टेट में जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है. ओके, सो दैट इज गिवन इन आर्टिकल 356 कि जब भी किसी स्टेट में देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी तो वहां पे हम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं. ठीक है, तो प्रेसिडेंट को अगर लगता है ऑन द रिसीट फ्रॉम गवर्नर और अदरवाइज, ठीक है, या तो गवर्नर बोले ऐसा या फिर अदरवाइज अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि किसी स्टेट में ऐसी सिचुएशन हो गई है जहां पे अब पॉसिबल नहीं है टू कैरी आउट द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो फिर प्रेसिडेंट उस स्टेट में इमरजेंसी लगा सकते हैं. ठीक है, इसको प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी बोला जाता है, राइट. तो इसमें क्या करते हैं ना, ही अज्यूम्स ऑल द पावर ऑन हिमसेल्फ, कि एग्जीक्यूटिव की पावर वो ले लेंगे, स्टेट की लेजिस्लेचर की जो पावर है वो पार्लियामेंट को दे देंगे, है ना. तो ये होता है इसमें जहां पे हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लग गया है किसी स्टेट में, राइट. सो दैट इज गिवन इन 356. ठीक है, 357 नॉट इम्पॉर्टेंट, ये 356 की ही कुछ टेक्निकलिटीज की बात कर रहा है. 358 एंड 359 आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 358 बताता है कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है, यानी कौन सी इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी 352 की इमरजेंसी, तो उस केस में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा. ठीक है, तो फिर अगर आप कोई लॉ बनाते हो विच इज वायलेटिंग आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन, so that law will continue to have effect, है ना. तो all in all article 19 during 352 emergency is automatically suspended. ठीक है, 359 बोलता है कि अब कुछ और फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते हैं, आप उनका एनफोर्समेंट थोड़े टाइम के लिए डिले कर सकते हो. ठीक है, उसमें भी कुछ आर्टिकल्स हैं जिनका आप कभी भी डिले नहीं कर सकते हो. तो वेर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसमें प्रेसिडेंट को स्पेशली ऑर्डर देना पड़ेगा कि राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 मे बी नॉट कैरिड आउट फॉर द ड्यूरेशन दैट इज मेंशन. ठीक है, तो ऑल इन ऑल वो ये बोल सकते हैं कि जब तक इमरजेंसी लगी हुई है तब तक आप, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आर्टिकल 14 वायलेट होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते उसको एनफोर्स कराने के लिए अभी, मतलब आप बाद में जा सकते हो वंस द इमरजेंसी सीजेस, लेकिन जब तक ये ऑर्डर फोर्स में तब तक आप नहीं जा सकते हो. ठीक है, लेकिन आप इसमें 20 और 21 का एनफोर्समेंट कभी भी नहीं ले सकते हो, है ना. मतलब प्रेसिडेंट के ऑर्डर में यू कैन नेवर टेक अवे द एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन. ठीक है, 359 और 358 में डिफरेंस ये है कि 358 में ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है आर्टिकल 19 का, 359 में कुछ ऑटोमेटिक नहीं होता है, प्रेसिडेंट हैज टू डू बाय वे ऑफ ऑर्डर. ठीक है, 358 में सस्पेंशन ऑफ राइट होता है, मतलब उस टाइम पे आपके पास आर्टिकल 19 का राइट नहीं है. 359 में आपके पास राइट है, बस आप अभी कोर्ट नहीं जा सकते उस राइट को अभी एनफोर्स कराने के लिए. ठीक है, सो इट इज एक्चुअली डिलेइंग द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट. ओके, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 358 एंड 359. लास्टली आपका 360 विच इज प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी. कभी हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, थैंकफुली, होपफुली वी वोंट हैव अ सिचुएशन लाइक दैट, बट इट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी. ठीक है, तो इसमें एक्चुअली कुछ नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इज गिवन अंडर आर्टिकल 360. ठीक है, सो दैट इज विद रेस्पेक्ट टू इमरजेंसी. सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो अमेंडमेंट है वो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, अब आई थिंक वी आर डन. लेट मी सी इफ समथिंग एल्स इज लेफ्ट. ओके, मतलब something important is left because obviously constitution is huge and we are not intending to cover all of it in these classes. The intention is to cover like a broad overview of it so that you know which areas to focus on in the last, remaining few days that you have for CLAT or for any other LLM exam if you're preparing, then this discussion is supposed to help with that. ठीक है, अब मैं आपको बस एक चीज और दिखाना चाहती हूँ, that is with respect to tribunals, and then we will end the session. Okay, 323A and 323B is what I want to show you. ठीक है, पार्ट 14A है ना, ऐसा कि आप देख सकते हो ओरिजिनली नहीं था, दिस वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट. ठीक है, 323A बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, 323 B बात करता है अदर ट्रिब्यूनल्स की. ठीक है, 323A बोलता है
कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन और ट्रायल बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑफ सर्विस डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो सर्विस से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, किसकी सर्विस? गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, है ना, हमारी मतलब प्राइवेट एम्प्लॉइज की नहीं, जस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो भी सर्विस से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। दैट इज व्हाट 323A सेज, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने लॉ भी बनाया, 1985 का एक लॉ है जिसके अंदर आपका कैट जो ट्रिब्यूनल है दैट हैज बीन फॉर्म्ड, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई विल टेल यू दैट, ठीक है। 323A2D ये जो पार्ट था ये बोलता था पहले कि ये जो भी आप लॉ बनाओगे आप उसमें सारे कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन हटा सकते हो एक्सेप्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्टिकल 136, ठीक है। तो एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने इस प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन कर दिया पार्शियली, ठीक है। कोर्ट ने कहा जुडिशियल रिव्यू की पावर इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप उसे नहीं ले सकते हो, राइट। तो कोर्ट ने कहा कि दैट इज ट्रू, 136 की पावर तो आप कभी ले ही नहीं सकते हो, लेकिन साथ में आप आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 की पावर भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो कोर्ट ने इसको पार्शियली स्ट्राइक डाउन किया टू मीन कि नाउ you cannot exclude the jurisdiction either under article 136 or even the writ jurisdiction of the Supreme Court or the High Court, ठीक है। तो ये एक लौता there's one judgment which is relevant in this part, ठीक है। 323B में भी सेम ही चीज रेलेवेंट है क्योंकि 323 बात करता है ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स की, क्योंकि 323A is only talking about administrative tribunals, 323B बात कर रहा है कि अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर यानी कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है फॉर द एडजुडिकेशन और ट्रायल बाय ट्रिब्यूनल ऑफ एनी डिस्प्यूट्स ऑन दीज मैटर्स, ठीक है। तो उन्होंने कुछ मैटर्स इशू किए हैं जैसे कि टैक्स से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट से रिलेटेड, है ना। तो ये चीजों पे भी आप ट्रिब्यूनल्स बना सकते हो, राइट। तो यहाँ पे भी सेम चीज, okay. So this is the only thing that I wanted to show you about tribunals as well. So now we are more or less done with the constitutional law revision. Do let me know if you have any questions, okay. And I hope you have gotten like a fair idea of what to, or like what is more important to read at this point in time, okay. Because of course like there are other things also relevant but not in such short duration, so you only have to focus on the most important parts. Okay. All right, so I'll be starting with family law revision classes from tomorrow onwards. I will be sharing the schedules shortly, so I think it will hardly take me 3 classes to finish family law as well. Okay. All right, so I will end this session now. If you have any questions, you can drop them in the comment section, or if you are our student, you have my mail ID or our group where you can communicate whatever doubts you may have. Okay, so thank you everyone and take care.